Of the International Seminar on Indian Knowledge Tradition and National Education Policy 2020, which is jointly organized by the Department of Education and IQAC, Navayug Kanya Mahavidyalaya, Lucknow. I, Dr. Sukhmani Gandhi, on behalf of the Navayug family, extend a warm welcome to the dignitaries present on the dais, Madam Principal, the academicians present here, industry professionals, the conference delegates and the entire faculty of Navayug family. The objective of the seminar is to discuss and highlight the Indian knowledge tradition, its planning and implementation in the national education policy. I am sure today the discussion is going to have a profound impact to create ripples that will resonate beyond the confines of this venue. Now let us commence the seminar further by illuminating this space with the symbolic wisdom of knowledge. We invite you all for the ceremonial lighting of the lamp. I am delighted to invite Professor M.K. Agarwal, Professor Manjula Upadhyay, Madam Principal, Dr. Subhash Mishra to grace us with the honor of lighting the lamp. I would also request the convener, the co-convener, the organizing secretary, and in the glow of this lamp, we find unity and sheer commitment to the pursuit of knowledge, and we see the warmth of collaboration. Thank you, dignitaries. From different fields from all around the world. This plenary session today will be graced by intellectual deliberations from distinguished speakers present over here, Professor M.K. Agarwal sir, Professor Subhash Mishra, Professor Emeritus Shiv Kumar Chaturvedi. We are elated, Professor Jay Shankar Kant. We are extremely elated to express our sincere gratitude to our honored guests. And now I request the dignitaries to please accept our token of gratitude. I would like to invite our Madam Principal, Professor Manjula Upadhyay, to present the token of gratitude in the form of a plantain and memento to Professor M.K. Agarwal. Convener, Mrs. Aishwarya Singh, to present a token of gratitude to Dr. Subhash Mishra. And we humbly request you to accept our token of thankfulness. This tiny renaissance of the Gyan Parampara of our Indian knowledge system. Our rich eternal knowledge history includes Gyan, Vigyan, Jiva Darshan as its guiding principles, with its evolution based on experience and experiments. To become the world leader in knowledge and be the Vishnu Guru, we need to rejuvenate and mainstream our Indian knowledge system. Especially in the context of our Indian knowledge system into the curriculum at all levels, especially at the higher education, so as to impart holistic education. In this direction, we are optimistic that the plenary session today will be a great learning platform for the academicians, researchers, industry professionals and other stakeholders who are attending this conference, and this will help to expand their horizons of knowledge. Moving ahead, I would like to quote now.
The secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old but building the new one. These words so aptly describe our distinguished expert speaker, Professor M.K. Agarwal. Sir is a professor in the Department of Economics, University of Lucknow, with a rich teaching experience of approximately 37 years now. Sir is also the state coordinator of G20 in Uttar Pradesh, appointed by the Higher Education Department, UP. He has also received several fellowships, the few prominent ones being Commonwealth Staff Fellowship, ICSSR Fellowships from Thailand and Paris, etc. His areas of specialization include managerial economics, macroeconomics, Indian economic issues, tourism, demography, and public health. Sir has worked on various research projects which are being funded from national and international agencies. He has more than 60 research papers also published to his credit. Sir is also one of the prominent speakers in DD News and DD India, where he is often called on for discussions and debates on the Indian economic issues. Overall, he has 15 books written to his credit, but the most common ones, the recent ones which are the talk of the town, include Vedic Gyan Vigyan, Development Issues in Uttar Pradesh, and Modi Empowers Development. Now, I invite Sir of the dais to address the gathering. विशेष रूप से डॉक्टर मंगला उपाध्याय का एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए बुलाया जिस पर थोड़ा सा डर भी लगता है ऐसे विषय पर। आजकल फैशन में बहुत बड़ी टॉपिक है और इतने हमारे कॉलीग्स बैठे हैं, निकाल देना कॉलीग से अच्छा कौन हो सकता है। और तो मुझे लगता है थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क दे रखा है। और 2020 का ये नीति आने के बाद मुझे लगता है कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ा है, क्लैरिटी कम है। ठीक वैसे ही जैसे कोरोना के समय हर कोई नया नया मेडिसिन, इवन कि मेडिकल साइंस वाले भी उनको भी नहीं पता था, 2 साल बाद पता चला कि दवा जरूरी है क्या है, किसी को दवा नहीं पता, आज तक उसकी दवा ही नहीं। और जिसको हम लोगों ने वैक्सीन समझ के दिया वो वैक्सीन है ही नहीं। दैट हैज बीन ओनली इमरजेंसी डोज। तो अभी भारतीय ज्ञान परंपरा नीति 2020, एक तो परंपरा शब्द ही यहाँ पर अपने आप में बड़ा बहुत बड़ा शब्द। अगर आप पाश्चात्य दर्शन से जाएंगे जिसका प्रभाव हमारे ऊपर है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। परंपरा का मतलब बैकवर्डनेस। अगर हम पश्चिम से चलते हैं मीन्स लैक्स साइंस, लैक्स मोटिवेशन, lacks forward looking approach, lacks any authenticity. This is the meaning of parampara in Western philosophy with regard to Indian philosophy. मेरा अपना मानना है कि परंपरा का मतलब होता है कि जो एक दीर्घकालीन प्रक्रिया से टाइम टेस्टेड होते होते, नेचुरल टेस्टिंग होते होते जो स्थापित हो जाए वो परंपरा। जैसे किसी कल्चर को समझना है तो सबसे पहले उसका फूडिंग समझना है। उसका फूडिंग क्या है? फूडिंग इज नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फॉर लाइवलीहुड बट इट इज मोर देन दैट। और वो हमारे टोटल समृद्धि को भी बताता है, हमारे एजुकेशन को बताता है, हमारे साइंस को भी बताता है और हमारे तमामों जितने भी आप अप्रोच लगा सकते हैं सबको। सिमिलरली कल्चर इज आल्सो डिफाइंड थ्रू फूड। अब आप देखिए होली का पर्व, किसने कहा था यहाँ पर कि पापड़ और चिप्स चाहिए?
छोटा शब्द लग सकता है यहाँ पर कि इसमें क्या बात कर रहे थे, तो चल ही रहा है, हमारे यहाँ होता ही रहता है। मैं भी तो ये कह रहा हूँ, होता ही रहता है, लेकिन क्यों होता रहता है? आप इसमें देखिए, पर्यावरण जुड़ा हुआ है, इसमें ऋतु जुड़ी हुई है, इसमें ड्यूरेबिलिटी जुड़ा हुआ है, इसमें आतिथ्य सत्कार जुड़ा हुआ है। और अगर ये ना हो तो हम लोगों का चाहे जितना आप 56 भोग का पूरा नहीं पड़ सकता इसके लिए। ये क्या है? ये कोई आगमन? मतलब हम लोग अपनी चीजों को कैसे डिसमेंटल कर चुके, जो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, और ये चर्चा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रप्शन ऑफ इंडियन नॉलेज बेस। अब हम उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, और रिवाइव भी कहां से कर रहे हैं? रिवाइव हम कर रहे हैं पाश्चात्य दर्शन के माध्यम से। और क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि पश्चिम देखिए कितनी देर में आया और कितनी तेजी से आगे चला गया। नारी की आजादी वहां, समृद्धि वहां पर, विज्ञान वहां पर, इनोवेशन वहां पर, लैंड ऑर्डर वहां, सारी चीजें कहते हैं। लेकिन अगर हम कुछ नहीं कहते, हम इट इज अनटेस्टेड सोसाइटी, अनटेस्टेड नॉलेज बेस इन द वेस्ट। थोड़ा सा झटका लग सकता है आपको इस बात से, मैं प्रमाण देता हूं। आप कहते हैं कि उनका बहुत अच्छा विज्ञान है, कैसे हो गया? पाश्चात्य आर्थिक प्रभाव लगभग पिछले 200-300 वर्षों से है। पाश्चात्य आर्थिक विकास 300 वर्षों से ज्यादा पुराना नहीं, और 300 वर्षों में अगर हम आप देखते हैं तो कितनी चीजों का हम नुकसान आज कर चुके। भूजल समाप्त, पर्यावरण का जो क्षरण हो रहा है अब इतना आगे निकल चुका है कि वो रिवाइवल की स्टेज ही छोड़ चुका है। बायोडाइवर्सिटी, आप ध्यान दीजिए, बचपन में हमने कितने प्रकार के आम खाए होंगे। केवल एक बात कह रहा हूं, कितने प्रकार की गेहूं की वैरायटी रही होगी, सब खत्म। अगर ये हमारा विकास है कि जिसमें बायोडाइवर्सिटी का लॉस कितना तेजी से हो, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का लॉस कितना तेजी से हो, हमारे यहाँ फॉरेस्ट को छोड़ दीजिए। फॉरेस्ट तो आजकल फैशन की तरह डिस्कस होता है कि फॉरेस्ट होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, इस पर हम लोग काम करें, इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूं। पश्चिम की एक बड़ी अच्छी बात, बहुत तेजी से उभरता है और बहुत तेजी से नीचे जाता है, फिर वो उभरने की कोशिश करते हैं और कहते हैं देखिए यहां हमारा विज्ञान है। उदाहरण एक देता हूं, बिना प्रमाण के बात नहीं करनी चाहिए, वो आरोप बायस। पश्चिम का विज्ञान कहता है कि जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा वैसे वैसे पर्यावरण पहले नष्ट होगा फिर ठीक। ये कहते हैं ना, और कहते हैं हमें अपना पर्यावरण ठीक करना। तो आप कहेंगे ज्ञान में पर्यावरण कहां से आ गया? बता। पश्चिम ने क्या किया कि ये तो उन्होंने स्वीकार किया कि हमने विकास विनाश के माध्यम से प्रारंभ किया। कैसे? कि पहले हम पर्यावरण को और नेचुरल रिसोर्सेज को क्षति पहुंचाते हैं। ये उनका मॉडल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी थ्योरीज कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। फिर वो कहते हैं कि जब हम रिच हो जाते हैं तो हम पर्यावरण को सुधारते हैं। अब कैसे सुधारते हैं जरा देखिए। All dirty industries have been shifted to Mexico, in the backward, China और elsewhere. ठीक, लेकिन क्लाइमेट चेंज का क्या हुआ? वो तो बॉर्डरलेस है। आज क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है? ये 200 वर्षों के
पश्चिम आधारित विकास प्रणाली से होता है। अब आप कहेंगे 200 साल बहुत बड़ा होता है, मैं कहता हूं 20,000 साल ज्यादा बड़ा। 200 साल में इन्होंने क्या टेस्टिंग किया है? जब से इनका अर्थशास्त्र आया है, तो समाजशास्त्र को नहीं मिलते, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। समाजशास्त्र वाले क्षमा करेंगे कि पश्चिम का तो समाजशास्त्र बहुत अच्छा है, ये कोट करना चाहिए, वो अलग बात है। जहां पर 20 वर्ष की आयु में पहला काम यह होता है कि क्रिमेशन का इंश्योरेंस कराना पड़े जिस समाज में, उसको समाज कैसे करेंगे? या आज हमारे समाज में जब इतना पाश्चात्य जो है इंटरवेंशन है, उसके बावजूद कोविड में लोगों ने अनजाने लोगों का पूरा ध्यान रखा है, हर प्रकार का क्रिमेशन भी उसमें शामिल। तो वो बेहतर हुआ या ये बेहतर? तो उनके यहां इस प्रकार की चीजें नहीं। दूसरा, वो हमको एक चीज और नहीं बताते हैं, दे आर बेसिकली अनएथिकल। कोई भी ज्ञान, कोई भी विज्ञान अगर अनएथिकल होता है, इट कैन नॉट सक्सेस। आप सब जानते हैं, ये भूल जाते हैं, पश्चिम कितने वर्षों में रिच हुआ है? मैक्सिमम 300 ईयर्स, इतना ही तो है। इसके पीछे का इतना कोई इतिहास नहीं मिलता है बिजनेस का। इन 300 वर्षों में इन्होंने सैकड़ों देशों को कॉलोनी बनाकर वहां लूटपाट किया। अपनी वजह से नहीं हुआ, इसको नहीं बताते। आज भी उनका सबसे बड़ा अनएथिकल है, एक प्रमाण देता हूं कोविड। आप कहेंगे हमें तो अपनी पुरानी बात बतानी चाहिए, ये क्या बताना इसलिए पड़ रहा है कि जो हमको चुनौती देगा, हम पहले उसको तो समझे चुनौती देने का उसको अधिकार है या नहीं। कोविड में हमारे यहां से कोविड का वैक्सीन बना, एक्सपोर्ट भी हुआ, फ्री में भी दिया गया कई कंट्रीज को। लैटिन अमेरिका की एक कंट्री से भारत की एक कंपनी का करार हुआ है। ये चीज अमेरिका को बुरी लग गई कि यह हमारे मोहल्ले में भी आके बेच जाएंगे और बहुत कम दाम पर। उन्होंने क्या किया? उनका फाइजर बिक नहीं रहा था, उन्होंने क्या किया? उनके अपोजिशन को उकसा दिया, जैसा होता है डेवलपिंग कंट्रीज में। और वहां इतना ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया कि वो करार कैंसिल। फिर उन्होंने अपना बेचा, और ये कह के बेचा कि भारत का तो 83 से 86% का ही है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और हमारा 93 to 97% का इफेक्टिवनेस। और क्या रिपोर्ट निकल के आई साल भर पहले? लेस देन 50% ऑफिशियल रिपोर्ट में। फाइजर का जो इफेक्टिवनेस था लेस देन 50% था। तो क्या ये अनएथिकल बिहेवियर नहीं? क्या ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ? क्या ये किसी प्रकार का, जिसको कह सकते हैं किसी बड़ी कंट्री का एक जिम्मेदारी वाला रवैया हुआ? When you are playing with the lives of the people in millions and millions, why? To have your hegemony and to earn money unethical. तो इसीलिए मैंने कहा ना कि अगर अनएथिकल है, अब आगे क्या पश्चिम सस्टेन कर पाएगा? हम सबके घरों के बच्चे जा ही रहे हैं और बड़े खुश होके जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, जाना नहीं चाहिए। 2030 24 चल रहा है, 2030 आप देखेंगे कि पश्चिम के कई देशों की आर्थिक सामाजिक स्थिति पूरी तरह से अनियंत्रित हो गई इन्हीं कारणों से। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं। हमारे यहाँ क्या है? एट एवरी स्टेज देयर इज अ सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। हमारे किसी भी प्रणाली में आप देखिए, एजुकेशन हमारा सोसाइटी कल्चर से अलग नहीं रहा। उनका एजुकेशन सोसाइटी और कल्चर को बहुत नहीं मानता है। वो मान करके चलता है कि एजुकेशन इज ए मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट। हम उसको नहीं मानते। उनका जो एजुकेशन सिस्टम है
देखिए, आप मान सकते हैं बहुत सी चीजों में अच्छा है। क्यों अच्छा है? हमारे पास आज के दिन तुलना करने को है ही नहीं। हम अपना बेस लूज कर चुके हैं, इसीलिए हमको पीछे जाना पड़ रहा है। हम कंपेयर नहीं कर पा रहे कि व्हाई आवर्स हैज बीन बेटर देन दियर्स। मैं प्रमाण देता हूं। चलिए, हमारा क्यों अच्छा रहा? हमारे पास हजारों वर्षों का इतिहास। अमेरिका के पास कितने वर्ष का इतिहास है? जो लोग इतिहास के मुझे जरा बता सकेंगे। 1776 के पहले का कोई इतिहास नहीं है ना। हम लोग तो 1500 साल काउंटिंग एरर करते हैं क्या कैलकुलेट करते समय। अभी वैदिक परंपरा की बात करेंगे, कोई कहेगा 3000 साल पुराना था, कोई कहेगा 4000 साल था, कोई 5000, मतलब 1000-2000 साल तो हम काउंटिंग एरर कर रहे हैं। और उनका कोई इतिहास कितना आज भी 250 वर्ष नहीं हुआ। वो कैसे बता सकते हैं कि परंपरा क्या हो? वो कैसे किसी बहुत सी चीजें टाइम मशीन के साथ आती हैं, उनके यहां कहां से हो सकता है? तो आप उनके शॉर्टेजेस देखिए। यूरोप का आप देखिए, यूरोप जब तक यहां उसने कॉलोनीज नहीं बनाई, उसके पहले ब्रिज क्यों नहीं हुआ? ये भी प्रश्न आना चाहिए। उसके पहले का उनका समाज कैसा था? उसके पहले का बहुत से लोग रेफर करते होंगे, रेफरेंसेस देते होंगे। कोई बता सकता है 500 साल पहले का उनका कोई लिटरेचर कोट करते हैं क्या? कोई लिटरेचर है उनका 500 साल पुराना? हमारा देखिए तो आज भी वो उतना ही सत्य, उतना ही एप्लीकेबल है, भले कि मोबाइल आ गया हो, इंटरनेट आ गया हो। मैं उसमें नहीं जा रहा हूं कि संजय ने जो है बहुत दूर से देख लिया था, वो दूसरे डायरेक्शन में ले जाएगा चर्चा को। मेरा कहने को जब प्रमाण से देखिए, दीर्घकालीन देखिए, किसी भी परंपरा को बनने में एक नेचुरल टेस्टिंग होती। क्या पश्चिम के पास इस प्रकार का कोई प्रमाण है अदर देन लैबोरेटरी कंट्रोल्ड टेस्टिंग? हमारे यहां इस तरह का नहीं, लैबोरेटरी या कंट्रोल्ड टेस्टिंग नहीं। हमारे यहां नेचुरल टेस्टिंग, जैसे सोसाइटी पास है। अब एक मैं और बताता हूं, इकोनॉमिक्स का उदाहरण देता हूं कि हमारी अपनी किताब में है सारी भारतीय ज्ञान परंपरा, का नाम तो नहीं दूंगा, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आर्थिक मुद्दे पर है। एक इकोनॉमिक्स वाले और उससे जुड़े सब्जेक्ट वाले समझ सकते हैं। हमारा एक लॉ ऑफ डिमांड बताया जाता है। लॉ ऑफ डिमांड में यह है कि जो उपभोग करता है उसका सुख उसी को मिलता है। यूटिलिटी न कह के मैं सुख के रूप में कहता हूं, उसको प्राप्त होता है। यह पश्चिम का है। दूसरे को उसका सुख मिल ही नहीं सकता, ऐसा उन तक है। न भरोसा हो तो मोबाइल पर चेक कर सकते, या इकोनॉमिक्स वालों से बात कर सकते जो इकोनॉमिक्स। मैं अपने समाज का उदाहरण देता हूं। खाएगा 2 और सुख मिलेगा 6 को 10 को 12, कैसे है? किसी के पास प्रमाण? ये मैं दूं। देखिए, हमारी फिलोसफी कहां जाती है? किसी के घर में कोई ऐसी मिठाई आई जो सबको लेके बच्चे से बूढ़े तक सबको प्रिय है, बहुत टेस्टी, लेकिन तीसरे दिन केवल 2 पीस बचता है। होता ही घरों में ऐसा ही होता है। अब 2 बच्चे हैं, मान लीजिए, उनके पेरेंट्स हैं और फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 6 लोग हो गए, छोटा परिवार। अब जो पेरेंट्स है बच्चों के, वो 2 पीस लेकर के जाते हैं कि पेरेंट्स को दें, अपने पेरेंट्स को दें, यानी कि बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स को दें। अब ग्रैंड पेरेंट्स का उनको अंदाज लग जाता है ये तो 2 ही पीस बचा है। अब वो कहते हैं हमारा तो मन ही नहीं है खाने का, 2 दिन बहुत खा लिया। ऐसा ही होता है ना अपने घरों में। ऐसा नहीं उनको पसंद नहीं, लेकिन उस समय उनका देखिए टेस्ट क्या कहता होता है। वो कहते हैं मुझे तो पसंद ही नहीं, मतलब आज इच्छा ही नहीं, पसंद तो है लेकिन 2 दिन ज्यादा खा लिया है आज। पेरेंट्स तो पहले ही सैक्रिफाइस कर चुके हैं, पश्चिम के हिसाब से कहें। हमारे यहाँ से सैक्रिफाइस नहीं ना, इसको सैक्रिफाइस नहीं करते, पश्चिम में सैक्रिफाइस है।
हमने नहीं खाया, आपको दे दिया, फिर सेक्रीफाइस नहीं। क्यों नहीं सेक्रीफाइस, तुम बता। अब वो पेरेंट्स ले जाके बच्चों को दे देते, बच्चों को क्या पता 2 बचा है, कितना बचा, उनको मिला, उन्होंने खा। अब पश्चिम के अर्थशास्त्र के हिसाब से केवल इन 2 बच्चों को सुख प्राप्त, और हमारे हिसाब से 6 लोगों को सुख प्राप्त। अब हो सकता है कि बाकी 4 को जो सुख प्राप्त हुआ उन बच्चों से ज्यादा मिला, कम तो मिला नहीं, बराबर निश्चित मिलेगा। हो सकता है ज्यादा भी सुख, 2 बच्चे खाते हैं, वाह। तो अब देखिए, ये दर्शन हमारे एजुकेशन में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर आप एनईपी पढ़ते हो तो एनईपी में कहीं पर आपसे नहीं कहा गया है कि आप कितना सिलेबस पढ़िए, और जोर किस पर है, खूब सिलेबस पढ़िए। हमारे यहाँ जोर किस पर है, आप केवल पहला पेज लीजिए, ज्यादा मत पढ़िए। एनईपी का केवल पहला पेज पढ़ लीजिए, जो 60-70 पेज का एनईपी है, केवल पहला पेज पढ़ लीजिए, आपको एनईपी समझ में आएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला पेज छोड़ करके हायर एजुकेशन भाग जाते हैं सीधे, जो 30-40 पेज के बाद आता है, वहां मत आए, आप केवल पहला पेज पढ़िए। वो क्या कहता है, वो कहता है मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ लोग काम कर सके, इसके लिए उनको तैयार करना, उनको अपने लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए तैयार करना। वो क्या तैयार कर रहे हैं, वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए तैयार करना, अंतर समझिएगा। फिर वो क्या कहते हैं, इट इज एन एक्सरसाइज ऑफ मैन मेकिंग, साधारण शब्दों में कहूं, इट इज एन एक्सरसाइज इन मैन मेकिंग। हमारे यहां एक चीज और बताते हैं, कहां से भ्रम आया एजुकेशन को लेकर। हमारे यहाँ रोजगार से इसको जोड़ने की बात चलती है। हमारे यहाँ बेरोजगारी था ही नहीं, तो रोजगार की जरूरत कहां से? उनका पूरा सिस्टम शुरू होता है रोजगार से, नौकरी से। हमारे तो बेरोजगारी या रोजगार का शब्द ही कई, व्यवसाय मिलता है हमें। तो जितने भी लिटरेचर आप उठा करके देखें, 200 वर्ष पुराना, आप रामायण जो रिसेंटली लिखा गया है, जो सब राय है, आप उसमें देख लीजिए, कहीं रोजगार बेरोजगार या इससे मिलता जुलता शब्द है, कहीं नहीं लिखा है कि कोई खाली बैठा, कहीं नहीं लिखा है। कहीं यह नहीं लिखा है कि लोग नौकरी ढूंढने के लिए राजा के पास गए। ये क्या है? पश्चिम में एक और गलत काम, उसकी कॉस्ट वो पे करना है, हम लोग तो पे कर ही रहे हैं, वो भी पे कर रहे हैं। पश्चिम ने एक गलत काम जो किया, लोगों की निर्भरता राज्य पर पूरी तरह से बढ़ा। हमारी भैंस मर गई, सरकार मुआवजा दे। हमारा लड़का एक्सीडेंट करता है बाइक स्टैंड में, मुआवजा सरकार दे। क्यों दे रहे? यही तो है, गलती करने का अधिकार हमको मिले और खामियाजा भुगतने का काम सरकार करे, यानी कि समाज। सरकार क्या है? समाज। तो समाज किसी की व्यक्तिगत गलती की भरपाई क्यों करे? क्या इससे निर्भरता नहीं बढ़ रही है? हमारे कभी हुआ ही नहीं। अगर इस तरह से होता तो राम आश्रय मिठाई वाले भी सरकार से सपोर्ट लिए होते, भाई हम भी मिठाई बनाना सीखेंगे, स्किल सीखेंगे। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए मॉडल के हिसाब से। मान लीजिए नई टेक्नोलॉजी आई, 56 भोग वाले ने किससे सीखा? आप सोचिए, क्या इन्होंने इनोवेशन नहीं किया है? अगर नौकरी पर के परंपरा वाले होते तो पहले यही से हमको मिथक तोड़ना पड़ेगा। भारतीय ज्ञान परंपरा में हम जब जा रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा हमारा समाज कैसा रहा, हमारा आचरण कैसा रहा। तो बहुत सी बातें हैं, ये अंतहीन बातें हैं। तो मैं अपनी वाणी को यही रोकता हूँ और पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, विशेष रूप से कॉलेज का और प्राचार्य। The time to introduce our second eminent speaker, who's
present among us. अरे सेकंड नहीं, ये फर्स्ट है। सेकंड कोई नहीं होता स्पीकर। Dr. Subhash Mishra. Sir is an associate professor in the Department of Education, Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow. He has more than 20 years of teaching experience, and his areas of specialization are curriculum development, inclusive education, and qualitative research. In the area of research, he has worked on 2 research projects and has publications in several journals and books of national and international repute. He has also been awarded by various organizations such as Acharya Narendra Dev, Samajwadi Sangathan Lucknow, IJEE Bhopal and ISEE Chennai. It is our pleasure to invite Sir on the dais and share his views with us. इतने शानदार विषय पर और प्रोफेसर अग्रवाल सर ने जो टोन सेट किया है, सबसे पहले तो मैं इस शानदार विषय पर आयोजन के लिए पूरे महाविद्यालय प्रबंधन और प्रशासन को बधाई देता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर प्रशासन, विद्यालय, नाम शासन। अब मुझे ऐसा है, इसलिए कह रहा हूं, इसके पीछे निहितार्थ है। कोई भी असंगोष्ठी आयोजित होगी तो हर व्यक्ति कहेगा शानदार विषय, लेकिन यह विशेष प्रयोजन है इसे कहने का। और उसमें भी जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में, यानी बाद जो भारतीय ज्ञान परंपरा की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में, तो मंच पर उपस्थित विद्वजनों और साथ में समक्ष बैठे सभी जो हमारे आचार्य सबको प्रणाम निवेदन करते हुए जो प्रोफेसर अग्रवाल सर ने टोन सेट किया है उसके आगे बात हमारे बीच प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद पांडे सर जो विद्या भारती के क्षेत्र संयोजक हैं और बीएसएमबी डिग्री कॉलेज में समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष और आचार्य सर, आपका स्वागत है। आप करना चाहेंगे बाद में, मैं बात कर रहा। बात शुरू हो रही थी कि इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन और एनईपी 20। प्रोफेसर अग्रवाल सर ने बहुत समीचीन बात कही। इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, भारतीय ज्ञान परंपरा। और जब हम परंपरा की बात कर रहे हैं तो ये बात समझना होगा कि जो भारत का लोक चित्त है, और ये बात ध्यान रखेंगे, समाज चित्त से ही निर्मित होता है, समाज चित्त से ही संचालित होता है। और भारत का लोक चित्त भारत की लोक परंपराओं से आज भी चल रहा है, लेकिन भारत का शिक्षा चित्त जो सर ने इनके क्या प्रशासन न करिएगा, बिल्कुल ठीक कहा। जो भारत का शैक्षिक जो हमारा हमने जो लिया है, जो हमारा मॉडल है, जो प्रशासन है, जो व्यवस्था है, वह भारत के लोक चित्त का बिंब नहीं है। यह बात मैं आपके साथ कुछ उदाहरणों से साझा करना चाहता हूं। मैंने ये बात कही कि भारत का समाज भारत के लोक चित्त से संबंधित है, और जब हम लोक चित्त की बात करते हैं तो मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सर ने एक बात कही कि अगर हम बात करें पश्चिमी या बाहर के शासन की और से प्रभाव की, तो 1500 साल, 1700 साल, 2000 साल का ही इतिहास और वह उसका प्रभाव। हमारा दोष भी यही है कि हम बार बार अपनी गलती को न देख करके, हमने चाय नहीं बनाई या न कह करके दुकान बंद थी, चीनी नहीं आई, दूध नहीं आया, हम दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। जब हम, जैसा कि प्रोफेसर अग्रवाल सर ने बात कही कि 1400 साल और 2000 वर्ष के प्रभाव पर हम इतना प्रभावित हैं, और जो हमारा इतना पुराना अतीत है उससे प्रभावित हम नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्या कारण था? तो मैं पुनः उसी बात पर आऊंगा कि भारत का लोक चित्त, भारत की लोक परंपराओं, लोक कथाओं
लोकगीतों, लोक रीति रिवाजों से संचालित है। मैं इसका उदाहरण देता हूं। जब गांव में कथा होती है तो पंडित जी एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, शुरुआत यहीं से करते हैं, जम्बू द्वीपे भारत वर्षे भरत खंडे आर्यावर्त के राज्य, अमुक अमुक से आगे वो बताते जाते हैं स्थान का। हम भारत को क्या बताते हैं बच्चों को अपने? हम भारत की क्या कल्पना कराते हैं? आज भी कक्षाओं में भारत सीमित हो गया कन्याकुमारी से कश्मीर। हमने कक्षाओं में भारत को सीमित कर दिया, समाज ने नहीं सीमित किया है। समाज अभी भी उसी बृहत्तर भारत की कल्पना करते हुए, उसी बृहत्तर भारत को याद करते हुए, उसी बृहत्तर भारत के अतीत से गौरवान्वित होते हुए, भले ही वह लोक चित्त में रह रहा हो। समस्या यह है हम तथाकथित पढ़े लोगों ने उसे स्वीकार नहीं। वो तो पंडित जी गांव में पूजा करने के कहते हैं, हमारे थोड़ी है। हमारा भारत तो जो, फिर मैं नाम ले लूंगा क्योंकि नाम लेने का हम मनोरंजन करते हैं, XYZ के द्वारा जो ज्योग्राफिकल या भौगोलिक या जो मानचित्र दिया है, हम उस मानचित्र की बात कर रहे हैं जो खंडित होकर के हमें मिला हुआ है। खंडित भारत की बात कर रहे हैं, छोटे से भारत की बात कर रहे हैं। वर्तमान जो बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल भारत है उसकी बात कर रहे हैं। और ये बात बार-बार पता नहीं क्यों उद्धृत करते रहते हैं इस बात को कि हमारा जो देश है वो हम धर्मनिरपेक्ष समाज की बात करते हैं। हमें ये बात सोचना होगा और इस पर निर्णय करना होगा। आप धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, धर्मनिष्ठ की बात करते हैं, धर्म रहित की बात करते हैं, धर्म सापेक्ष की बात करते हैं, इसको स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि आपने जो कह रहे थे, आपने संकल्पना ही अपनी नहीं इस्तेमाल की है, आपने संकल्पना ही तो पश्चिम की ली है। चश्मा जिस तरह इसका लगाया है, अब सीधी सी बात है कि अगर हम चश्मा धूप का लगाएंगे तो निश्चित रूप से जो हमें दिखेगा वो आपको पता है। काले चश्मे से और नंबर के चश्मे से तो अंतर आपको दिखेगा। हमने धर्म की जो परिभाषा की, हमारे धर्म की परिभाषा बहुत सी है, बहुत समझ आ जाएगा, मैं उस पर नहीं आऊंगा, मैं मूल बिंदुओं की ओर आऊंगा। महर्षि कणाद कहते हैं यतो अभ्युदान श्रेयसः सिद्धिर् स धर्मः, जिस भी माध्यम से अभ्युदय होता हो, और अभ्युदय कैसा? भौतिक अभ्युदय, निश्रेयस, निश्रेयस मतलब आध्यात्मिक अभ्युदय, जिससे ये दोनों होता हो, यानी भौतिक और निश्रेयस दोनों होता हो, वह मार्ग, वह माध्यम ही धर्म है। तो हमने जो धर्म को यह माना था, समझ रहे हो कि जो माध्यम और माध्यम भिन्न भिन्न हो सकते हैं। हम तो अटक गए माध्यमों पर, और फिर हम बार बार धर्म निरपेक्ष की जगह, धर्मनिष्ठ की जगह धर्म रहित शिक्षा, और मैं पंथ की बात नहीं कर रहा हूं, इंगित करना चाहूंगा, मैं पंथ की बात नहीं कर रहा हूं। पंथ में भिन्नताएं हैं, रास्ते अलग अलग हैं, और भाई एक ही धर्म में कितने सनातन धर्म ने तो ये इतना स्पष्ट किया कि कितने देवी देवता की संख्या में ही हैरानी है, हमारी रीति रिवाज में ही हैरानी है, यानी हैरानी नहीं है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिया है, आजादी दी है कि रास्ते कुछ भी हो, निश्रेयस की प्राप्ति ही अभीष्ट है और उसके लिए हमें प्रयास करना होगा। तो इसलिए हमारे अथर्व में ये कह दिया गया, जन्म विवृति बहुधा विवाह नाना धर्माणाम पृथ्वी यथोपसम सहस्रधारा द्रविणस्य विदुहाम ध्रुवे बधेनुर प्रस्फुरन्। अथर्व में से कहा जा रहा है कि हम बहुत अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, रहना चाहिए, और वे आगे बढ़ें, एक घर में रहें, जैसे घर में व्यक्ति रहता वैसे रहें। तो ये 1400 वर्ष की समस्या नहीं है, हमने गलती से जो अपना मापदंड तय किया है शायद उसकी समस्या है। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, जिस बृहत्तर की भारत की हम बात करते हैं, हमारे बच्चों को ये बताया ही नहीं जाता, या हम बताते ही नहीं है कि हमारी जो भारत की सीमा रही है वो काराकोरम से लेकर के हिंदू का सुलेमान कीरधार पर्वत और इधर समुद्र से घिरी हुई, और उधर अहोम यानी असम से लेकर के पर कोई दूसरी और धाराकान है। यह सीमा तो हम बच्चों को बताते ही नहीं है, जिससे उनका गौरव से कम हृदय करता ये हमारा भारत है। और जो भारत की संस्कृति है
वह निश्चित रूप से उस बृहत्तर भारत में आज भी भारत के समाज में व्याप्त है। जैसा कि दूसरी बात कर रहे थे प्रोफेसर अग्रवाल सर कि भारत केंद्रित शिक्षा, भारत की परंपराओं पर आधारित शिक्षा, जिसकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति वकालत करती है और बात कहती है कि हम भारत की जो शिक्षा है वह भारत की जड़ों, भारत की परंपराओं से आधारित है। रूटेडनेस इन इंडियन प्राइड की जो बात करती है कि उनकी जड़ों से जुड़ करके वो कैसे जुड़ेंगे। फिर हम एक शायद कहीं ना कहीं एक गलती करते जा रहे हैं और वो ये है कि भारत की परंपरा समग्रता की परंपरा रही और हमने गलती से फिर वही काम करना शुरू किया है कि ऐसा ये कमी थी, लाओ को चिपका देते हैं इसके साथ। यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम करिकुलम को उठाकर देखिए, जो विश्वविद्यालयों में इधर बदलाव हो रहे हैं, हमने क्या किया, इंडियन नॉलेज सिस्टम की कमी थी ना, और तो ठीक है ना, तो एक काम करते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक पेपर बना दो। थोड़ी और कमी थी तो चलो अपने ही पेपर में इंडियन नॉलेज सिस्टम भी लिख देते हैं, अब तो खुश, यही तो कमी थी, अब पूरी हो गई। हमें विचार करना होगा कि क्या हमने उस दायित्व को, जिसको एनईपी 2020 आपसे फिर अवसर दे रही है कि भैया अपनी कहानी खुद लिख लो। मैं इसका एक उदाहरण देते हुए एक बात कहते हुए कहूंगा। एक पुस्तक है लिखी है बीएचयू के प्रथम कुलपति सुंदरनाथ, और उस पुस्तक का नाम है भारत में अंग्रेजी राज। उस पुस्तक को जरूर पढ़ें। और उस पुस्तक के मुझे लगता है 8वें 9वें पेज पर ही एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि जो भारत का इतिहास है वो 90% गलत लिखा हुआ है। और यहां पर कहते हैं वो केवल राजाओं के नाम, घटनाओं को छोड़ दीजिए, उनके क्रम को छोड़ दीजिए, तो शेष सब जो कथानक लिखे हैं वे कितने भ्रमित हैं। और उसका वो उदाहरण ऐसे कहते नहीं हैं, उसका तो जरूर पढ़िएगा, उदाहरण देते हैं और यहां तक काम देते हैं कि देखिए चित्र देख लीजिए। अगर मान लीजिए आप चित्र दिखा रहे हो किताबों में, इतिहास की किताबों में चित्र दिखा रहे हो, तो अगर मुगल शासक का चित्र दिखा रहे हो और पैर में जूती मराठा की, हो सकता है प्रभाव रहा हो, लेकिन जब वो कोई शासक भारत आएगा तो मराठा की जूती पहन करके भारत नहीं आएगा। भारत में रहते हुए अलग बात है कि वो मराठा की जूती पहनने लग जाए। तो हमें अपने विषय वस्तु कहां से लेनी होगी, इस पर विचार करना होगा, क्योंकि मूल समस्या यह है कि हमने जो अपने पुराने, जिसे हम कह सकते हैं ऑक्सफोर्ड मॉडल, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के जो दोनों के योग से जो एक मॉडल हम लोगों ने डेवलप किया था, जिनके आधार पर सारे विश्वविद्यालय हम सब संचालित कर रहे हैं, उनकी आत्मा से जब तक हम निकल करके अपने भारत की आत्मा स्थापित नहीं करेंगे, और इसका सबसे पहला उदाहरण मैं यहां इंगित करना चाहूंगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पहली बार अपने नाम में परिवर्तन करती है। इसके पहले की शिक्षा नीति का नाम जानते हैं, नेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन नहीं, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी। शिक्षा राष्ट्रीय हो इसकी बात नहीं थी, ध्यान दीजिएगा। क्या थी? नेशनल पॉलिसी, पूरे देश की एक पॉलिसी बनाएंगे, शिक्षा कैसी भी वाला करेंगे, यह पॉलिसी कह रही है अब। और ऐसे यूं ही सनद में नाम बदल नहीं दिया गया है, कुछ वजह है नाम बदलने की। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो नाम पीछे से दो पॉलिसियों की वजह से चला आ रहा था, वो अचानक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनती है, नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा बनानी है, अपने राष्ट्र की शिक्षा तय करनी है। अपने राष्ट्र की शिक्षा के मापदंड भी आपके होंगे, आपके राष्ट्र की शिक्षा की आवश्यकता आपकी है, आपके राष्ट्र की अवधारणा भी आपकी अलग है। अपने राष्ट्र की अवधारणा के अनुरूप आपको अपनी शिक्षा की व्यवस्था करनी है। एक 1949 में सीवी रमन जी ने प्रयाग में साइंस कॉलेज, जो हमारे यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय
का साइंस डिपार्टमेंट है, उसको साइंस कॉलेज के नाम से जाना जाता रहा है। वहां के दीक्षांत समारोह में एक बात बोली थी, उन्होंने कहा था when we import we do not pay for our ignorance but we pay for our incompetence also। हम केवल अपनी अज्ञानता के लिए नहीं पे करते, जब किसी से कुछ लेते हैं हम अपनी अक्षमता के लिए उसका अदायगी करते हैं। और इसलिए इस प्रबुद्ध समाज को एक बात समझनी पड़ेगी कि हमें वही लेना है जो हमारे पास नहीं है। हमें यह आदत बंद करनी पड़ेगी कि हमें सब कुछ आपसे लेना है, यहां तक कि जो अपना है वो मेरा है, यह बताने के लिए भी आपको ही उद्धृत करना पड़ेगा। नहीं, जो चश्मा आप पहनते ना वो वही वाला है जो आप वाला है। जब आपका चश्मा है, आपकी जरूरत है, आप क्या पैदा है, तो उसे किसी मानकीकरण की, जिसका कि हमने ठेका दे दिया है पश्चिम को, कि नहीं अब अगर आपने शर्ट पहनी है तो ये शर्ट कब कहेंगे, जब हाँ वो परिभाषा जो पश्चिम में गई शर्ट वो होती है, जब उस पर आधारित होगी तभी हम शर्ट को शर्ट कहेंगे या कुर्ते को कुर्ता कहेंगे। हम अपने परिभाषाओं को जब तक स्वयं तय नहीं करना शुरू कर देंगे, आयातित विचार से राष्ट्र कभी समृद्ध नहीं हो सकता है। हाँ, एक बात और है, यहाँ जो मेरे कहने का आशय का रात नहीं है कि पश्चिम ज्ञान की अवहेलना करनी। हम तो वो संस्कृत के लोग हैं, आनो भद्रा कृतो यन्तु विश्वता। Let our thought come from all the directions। विश्व के हर कोने से ज्ञान आए। हम तो उस परंपरा के लोग हैं, हम पश्चिम के ज्ञान का विरोध कहीं नहीं कर रहे हैं, हम पश्चिम के ज्ञान की उपेक्षा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत के ज्ञान की तुलना, भारत के ज्ञान का मानकीकरण पश्चिम करेगा, यह भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। मैं अपने विश्वविद्यालय में NIRF कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी हूं और जो रैंकिंग होती है उसके पैरामीटर देखता हूं। नए के पैरामीटर आप सब क्या देख रहे हैं, और कई बार आप इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी जब आपको ग्रेड सामने आती है तो कुंठा भी लगती है कि आखिर आप चाहते क्या हो और आपके मापदंड कहां से तय होते हैं। जब तक भारत की आवश्यकता के अनुरूप भारत के मापदंड नहीं होंगे संस्थाओं को मूल्यांकित करने के, जब तक पाठ्यक्रम को मूल्यांकन करने के भारत के मापदंड नहीं होंगे, हम पश्चिम के मापदंड के आधार पर निश्चित रूप से मान के चलिए सही मूल्यांकन नहीं कर पाए। और इसलिए हमें जरूरत नहीं है कि हम उन पश्चिमी मानकों के आधार पर अपनी ग्रेडिंग लेकर के और बाहर बोर्ड लगाकर टहलते फिरें कि नहीं क्यूएस रैंकिंग में हमारा यह स्थान है। हम क्यूएस रैंकिंग के रैंक लेने के लिए, और जब कई बार मंच से लोग बोलते हैं कि देखिए हम भारत के लोग अभी क्यूएस रैंकिंग में ही नहीं जगह बना पा रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्यूएस रैंकिंग में जगह बनाना है या भारत के समाज में भारत की शिक्षा की व्यवस्था करते हुए एक उन्नत शिक्षा व्यवस्था खड़ा करना है। यह बात में विचार करनी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कि अगर हम जड़ें देखना शुरू करें तो भारत कॉन्फ्रेंस की संस्कृति है। आप तो जानते ही, आप थोड़े 200 किलोमीटर दूरी पर प्रयाग जहां संगम होता है, ये संस्कृति है हमारी। कोई न्योता नहीं जाता है किसी को, कोई निमंत्रण नहीं जाता किसी को, पूरे देश से लोग अपने आप, और उस समय अगर इलाहाबाद प्रयाग के सड़कों पर की ओर कभी उस रास्ते पर जाइए देखेंगे, ट्रैक्टर में, ट्राली में गांव के लोग पुआल डाल करके और चले जा रहे हैं संगम। कॉन्फ्लुएंस, संगम, यह हमारी संस्कृति है। धर्मों का संगम, विचारों का संगम, लोगों का संगम, इस कॉन्फ्लुएंस। और इसीलिए जब बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की जाती है वो पश्चिम के लिए नई बात होती है। अच्छा जुड़ना है, हमारे यहाँ जुड़ना नहीं है, हम जुड़े ही हैं। कॉन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज, विचारों के संगम, ये हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के पहले से ही अंग रहे हैं। हमने भूला है, हमने उसे केवल धर्म की बात मान लिया कि अगर प्रयाग जाते हैं, संगम में जाते हैं तो इसका मतलब ये धार्मिक यात्रा पर जाते हैं। हमने अपनी संस्कृति के उन तत्वों को शायद अपनी शिक्षा व्यवस्था में शामिल नहीं किया। ये आज जो कॉन्फ्लुएंस है, प्रोफेसर मंजुला मैडम ने बधाई की बात है, जिन्होंने संगम किया है। आप दोनों विश्वविद्यालय से, अंबेडकर विश्वविद्यालय से, आप विभिन्न विश्वविद्यालयों से, विभिन्न महाविद्यालयों से लोग आए हैं। कॉन्फ्लुएंस, ये संगम है, यही भारत की आत्मा है। भारत की उच्च शिक्षाएं, उच्च शिक्षा संस्थाएं जब तक इस विचार को अपने
व्यवहार का आधार नहीं बनाएंगी, निश्चित मानिए कि हम अपने ख्याल लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकेंगे। भारत की जो संस्कृति है उसमें हम सब जानते हैं, जैसा सर कह रहे थे कि हमारे यहाँ बेरोजगारी जैसी चीज नहीं थी, उसके पीछे कारण था हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी वो हुनर और कौशल आधारित थी। और इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब वाणभट्ट की कादंबरी का उल्लेख करती है और 64 कलाओं की बात करती है, ईमानदारी से बताइए उन 64 कलाओं में से कितनी कलाओं को हमने अपने एनईपी के पाठ्यक्रम में जो परिवर्तित किया है, कितना शामिल किया है। और मैं उन कलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, तो एक मॉडल है, अपने मॉडल आप अलग ले आइए, जरूर नहीं कि उस समय की जो कलाएं थी वो आज प्रासंगिक हों, लेकिन वो एक मॉडल तो है जो बताता है कि शिक्षा कैसी हो। और एक बात और है, मैं इलाहाबाद प्रयाग विश्वविद्यालय का स्नातक हूं, एक अंतर मैंने वहां महसूस किया था जब मैं इंटरमीडिएट में साइंस से रहा और जब प्रयाग विश्वविद्यालय गया तो प्रयाग विश्वविद्यालय में मैं बीएससी करने गया, बीएससी का फॉर्म लेने गया। एक मेरे परिचित ताराचंद हॉस्टल में रहते थे, उनके यहाँ रुका और तब मोबाइल का टाइम नहीं था कि घर में मोबाइल से आप बात कर लीजिए, पीपी नंबर हुआ करता था, बड़ी मुश्किल से, वो भी कहीं बड़ी दूर। और बीएससी का फॉर्म लेने गया, वहां जाकर एक नई चीज देखी, बीए का लड़का फौरन रुचि करके वहां रहता था कि मैं बीए कर रहा हूं, और जो बीएससी का लड़का था बीएससी कर रहा हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं था। मैं अपने उदाहरण के निमित्त से दे रहा हूं, ये और वास्तविक घटना है। क्यों? क्योंकि वहां जो बीए करता था लड़का और बीए करने वाला लड़का परसेंटेज की चिंता नहीं करता था। कल बीए का एग्जाम है फाइनल और रात में प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल आती है, वहां फिर होता था फ्राइडे, इस महीने की फ्राइडे को आएगी, अगर शुक्रवार को क्रॉनिकल आई है, दर्पण आई है, तो बच्चा दर्पण और क्रॉनिकल पढ़ रहा होता था, सवेरे का पेपर पढ़ने को तो पास हो ही जाएंगे। वजह मैं दूसरी तरफ इंगित करना चाहता हूं कि वहां इस कला यानी बीए आर्ट्स को एक अलग दृष्टि से देखने की परंपरा वहां रही। उसका परिणाम बड़े लंबे समय तक आप सब जानते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बड़ी भूमिका निभाई। यद्यपि वहां का साइंस कॉलेज और साइंस भी बहुत श्रेष्ठ रहा है, कहीं कोई कमतर नहीं रहा है। यहां कहने का, इंगित करने का एक उद्देश्य क्या है, हमारे यहां जो कला है उसे केवल इन सामान्य जिन्हें हम कला कह देते हैं, कला कौशल कह देते हैं, वहीं तक नहीं है। हम लिबरल आर्ट्स की बात करते हैं। भारत लिबरल आर्ट्स की बात जब करता है तो लिबरल आर्ट्स कहते ही बहुत स्पष्ट समझिएगा, कला की परिभाषा हमारे यहां की गई है। कहा गया है कि शक्तो मोको अपि यत् कर्तुम कला संगम सुतम, वह जो कोई मूर्ख व्यक्ति, बहरा व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति जो कर सके, करने के सक्षम हो सके, वह कला है। यानी निश्चित है कि कला का मतलब केवल फाइन आर्ट्स, केवल गीत संगीत नहीं है। और वाणभट्ट जब 64 कलाओं की बात करते हैं तो कहते हैं नॉट ओनली सब्जेक्ट्स एज सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, बट ऑल्सो साइंटिफिक फील्ड ऑफ एंडेवर। साइंटिफिक फील्ड जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, प्रोफेशनल फील्ड जिसमें मेडिसिन और सर्जरी की बात करते हैं, सॉफ्ट स्किल्स जिसमें कम्युनिकेशन और डिबेट डिस्कशंस की बात करते हैं, उन 64 कलाओं की बात है। और हम जब अपनी पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे हैं, पुनर्निर्माण कर रहे हैं, तो हमें निश्चित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो इंगित किया है उधर देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। मैं एक दो उदाहरण से जल्दी बात खत्म करूंगा क्योंकि अगले वक्ता हैं। तो भारत की जो परंपरा है वह प्रवचनानुसंधान की परंपरा है, प्रवचन और संधान शोध की परंपरा रही है। शोध अब हम बार बार कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड एम्फसाइज ऑन द रिसर्च। जी नहीं, भारत की कुछ शिक्षा संस्थाएं या भारत की संस्थाएं ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान की केंद्र रही हैं। मैं बहुत ज्यादा पुराने इतिहास से उदाहरण देते हैं क्योंकि समय की सीमाएं हैं, मैं बात आगे बढ़ूंगा। हमारे यहाँ जो भारत की परंपरा रही है उसमें मैं एक उदाहरण देता हूं, और शायद यह उदाहरण इसलिए आवश्यक है कि अभी कल प्रो वाइस चांसलर साहब जब यहाँ बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हमने
इवेंट की है और कल बात कर रहे थे कि कैसे बहुत सारे विषयों की और हमारे शिक्षकों की चिंताएं हम देख रहे थे कि सर ये वाला विषय आएगा नहीं आएगा, पेपर में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। मैं एक आग्रह करता हूं इस मंच के माध्यम से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपको अवसर दे रही है कि अपनी करिकुलम में सुधार कर लीजिए, अपना करिकुलम तय कर लीजिए, अपना करिकुलम स्वयं बना लीजिए। ईमानदारी से बैठिएगा, अपना विषय उठाइएगा और देखिएगा कि हम जो सिलेबस बनाते हैं उसके पीछे जो रेफरेंस दे रहे हैं वो कौन सा दे रहे हैं बच्चों को पढ़ने के। और मजेदार बात यह है कि उनमें से आधे तो अप्राप्य हैं, मिलते ही नहीं है, उपलब्धि नहीं है, पुस्तकालय तक में उपलब्ध नहीं है, आधे अप्रासंगिक हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमने लागू कर दिया, हम घोषित भी कर रहे हैं और उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बहुत सारे तत्व भी ले आ रहे हैं, लेकिन मूल बात यह है कि क्या हम अपने विद्यार्थी को उस कुएं को दिखा रहे हैं। वो पानी पिएगा नहीं पिएगा छोड़ देगा कोई बात नहीं, पर अगर कुआं जाता रहेगा तो एक प्यास आएगी तो जरूर मिलेगा। क्या हम अपने विद्यार्थी को उस कुएं तक ले जा रहे हैं? मैं एक छोटा सा उदाहरण गणित विषय को देता हूं और वजह क्या है। एक दिन मैं ऐसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उस पृष्ठ पर ध्यान दे रहा था जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उन 18 चिंतकों के नाम लिखे हैं, एक साथ लिखे हैं कि भारत का विज्ञान परंपरा और एक मॉडल किया है और उसमें देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम के सारे प्रतिनिधि, बड़ी लंबी परंपरा, कितने नाम देते, 18 नाम दिए हैं। और उन 18 को उठाकर देख लीजिएगा जो मैं बात कह रहा हूं अपने सिलेबस को, उन 18 में से 5 नाम छोड़ दीजिए, शेष 13 नाम या तो दर्शन में मिल जाएंगे या थोड़ा संस्कृत में मिल जाएंगे। लेकिन गणित जैसा विषय जब पिंगल को पढ़ने की बात आती है तो पिंगल कितना गणित में आते हैं इसको आप खुद देख लीजिए। जबकि NEP 2020 पिंगल की बात करती है और इंटरनेट पर जब गूगल करेंगे तो आपको क्या सामग्री उपलब्ध होती है, जबकि बड़ा शास्त्र पूरा का पूरा हमारे समक्ष है। तो शायद अगर हम गणित की बात करें तो वैदिक साहित्य, लगधा, सर्वसूत्र, गौतम के न्याय सूत्र, बौधायन, अपास्तंभ, कात्यायन और पाणिनि के अष्टाध्यायी, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही पाणिनि का अष्टाध्यायी पढ़ाएंगे मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन आएगी ही आएगी। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन ऐसा नहीं है कि यहां का जोड़ा वहां का जोड़ा 4 जगह का जोड़ करके और कुंभा बना दिया, ऐसा नहीं है। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन आवश्यकता है और जब मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन बनाएंगे तो करिकुलम अपने आप इतना खूबसूरत होगा, इतना शानदार होगा कि आप स्वयं महसूस करेंगे कि विषय जिसे हम इतना नीरस समझ रहे थे, जिसे हम समझ रहे थे कि ये केवल हमारी बिरादरी का मामला है कि आप इकोनॉमिक्स वाले हैं, आप साइंस वाले हैं, आप कॉमर्स वाले हैं, हमारी अपनी बिरादरी का मामला है, ऐसा नहीं है। ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान की सीमाओं को हमने जो सीमित किया है, ज्ञान खंडित ज्ञान की जो परंपरा हमने स्थापित की है, हमारी परंपरा होलिस्टिक एजुकेशन की रही है। होलिस्टिक एजुकेशन ही हमारा आधार है और निश्चित मान के चलिए कि हम जब ये बाणभट्ट को गणित में पढ़ाना शुरू करेंगे, जब अष्टाध्यायी उनकी बताना शुरू करेंगे, पाणिनि की बात करेंगे, जब पिंगल के छंद शास्त्र की बात करेंगे, आर्यभट्ट की बात करेंगे, वाराणसी की बात करेंगे, भास्कर प्रथम की बात करेंगे, ब्रह्मगुप्त की बात करेंगे, ब्रह्मण्य की बात करेंगे, श्रीधराचार्य की बहुत मुश्किल से हमें याद है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला एक हुआ करता था, इसके अलावा हम लोग कभी नहीं जानते थे कि श्रीधराचार्य कौन थे, कहां के थे, क्या थे, केवल एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला बड़ी मुश्किल हुआ करती थी। जब तक हम श्रीधराचार्य को कक्षाओं में केवल स्नातक पर स्नातक नहीं, शायद कक्षा 6 में या 1, 2, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, जहां जो आवश्यकता है, हो सकता है केवल चित्र दिखाएं बच्चों को, ये तुम्हारे पूर्वज हैं, हो सकता है कहीं आगे नाम बताएं उनके, कहीं उनके ग्रंथ बताएं उनके, कहीं उनके कुछ उदाहरण बताएं उनके, शायद मन चित्त बना सकें। चित्त का निर्माण सबसे मुश्किल कार्य है और जब तक चित्त नहीं बनेगा तब तक चिंता भी नहीं बनेगी और तब तक हम अपने इस जो शिक्षा व्यवस्था है उसके मूल में कोई परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से जयदेव को पढ़ाएंगे। जयदेव हमारे गणित के विषय ही नहीं होते, जबकि जयदेव पर कितना बड़ा कंफ्यूजन है। श्रीपद इसका गणित किला, सिद्धांत शेखर, भास्कराचार्य द्वितीय, नारायण पंडित, संग्राम के माधव जो फाउंडर ऑफ केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स हैं। आप बताइए गणित में आपको इनका नाम सुनने को मिला, केवल ग्रंथों में सीमित रह गए। नारायण पंडित, इसके अलावा केरल के परमेश्वर, नीलकंठ सोमायानी, मुनीश्वर, कमलाकर,
ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्हें केवल उदाहरण स्वरूप दे रहा हूं, नाम बड़ी लिस्ट लंबी है, हर विषय उठाएंगे, ऐसे लोग मिलेंगे तो प्रश्न होता है कि क्या करें, इनको हम ऐसे ही अपने सरबत में डाल दें? जी नहीं। जब आप अपने करिकुलम का निर्धारण करें, उनके प्रसंग के अनुसार उन्हें स्थान दें, संदर्भ ग्रंथ में स्थान दें। कम से कम एक वक्त आएगा जब विद्यार्थी इन किताबों के नाम समझेंगे, हो सके तो पुस्तकालयों में जो उपलब्ध है उन साहित्य को उपलब्ध कराएं ताकि विद्यार्थी उन पुस्तकों तक पहुंच सकें, उन तक जा सकें। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यह सब 18वीं शताब्दी तक भारत के विद्यालयों में था। तो ये बीच के थोड़े से वर्षों में हमने गड़बड़ी की है। कब? जब हमने ऑक्सफोर्ड मॉडल पर भारत के विश्वविद्यालय की स्थापना करनी शुरू कर दी, और जैसे ही हमने कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, ये जो ऑक्सफोर्ड मॉडल पर जो विश्वविद्यालय स्थापित किया, उसके बाद उनकी जो परंपरा शुरू की, वहीं से गड़बड़ी हो रही है। इसका ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 18वीं शताब्दी में मैं उदाहरण दे रहा हूं और प्रॉपर रेफरेंस के साथ बात कर रहा हूं। ब्यूटीफुल ट्री धर्मपाल जी की पुस्तक है, जिसमें हाउस ऑफ कॉमन्स पेपर 1831-32 वॉल्यूम 9 पेज 487। ध्यान दीजिएगा, वह पुस्तक और यह रेफरेंस किसी भारतीय ने नहीं लिखा, किसी ब्रिटिशर ने भी किताब के रूप में लिखा है। भारत में शासन कर रहा उस समय का वायसराय चिट्ठी लिख रहा है अपने शासक को कि भारत की ये दशा है, यहां ये बदलाव करने हैं और भारत की ये समस्या है, भारत में ये पढ़ाया जा रहा है। वो धर्मपाल जी ने उन पत्रों को लंदन के पुस्तकालय वहां जाकर के संसद में, वहां की पार्लियामेंट की लाइब्रेरी से उन पत्रों को निकाला है और उन्हीं पत्रों को सीधे सीधे अपने उस पुस्तक में छापा है। मेरा आग्रह है कि आप सब जरूर एक नजर देखिएगा। 1831-32 की बात है, ये बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। 100 साल 150 साल पहले भारत के महाविद्यालय में जो विषय पढ़ाया जाता हो और अचानक विश्वविद्यालय से गायब हो जाए, बाहर हो जाए, तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है? और फिर हमें शासन मिल जाए और शासन के बाद भी हम 100 साल अगर लगभग 75 साल बीत गए हैं, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हो और फिर भी हम वापस न ला पाए, तो कौन उत्तरदायी होगा? इसका निर्णय आपको करना चाहिए। और मैं उदाहरण देता हूं, समय में बिल्कुल इंगित करके आगे बढ़ूंगा। किताबें कहीं बेल्लारी जिला, बेल्लारी जानते हैं आपको, बहुत मशहूर जिला, बेल्लारी जिले में जो कॉलेज थे उसका उदाहरण दिया गया है और लिखा है मोस्ट कॉमनली यूज्ड किताबें क्या थी? रामायण, महाभारत, भागवत। यूज्ड बाय चिल्ड्रन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग क्लासेस, ABCD ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ही आपसे बात कर रहा हूं ऐसा लिखा है। उसमें लिखा है नाम लिंगायत कथा, विश्वकर्मा पुराण, कमलेश्वर कालिका महता, और फिर लिखा है यूज्ड बाय लिंगायत चिल्ड्रन। फिर लिखा है लाइटर लिटरेचर रीड, जिसमें पंचतंत्र की बात, और फिर लिखते हैं डिक्शनरी एंड ग्रामर, जिसमें 7 पुस्तकों की बात करते हैं और 42 पुस्तकों की सूची देते हैं और कहते हैं कि राजमुंदरी के विद्यालयों में ये पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं। कैसे इन्हें हटाया जाए और अपना विषय लाया जाए, ये समस्या है। तो 1832 में यह हमारे भारत की स्थिति थी। आज हम सबको विचार करना होगा कि हम कैसे अपने इन लोगों को अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं। जब तक शंकर की भाष्य सूत्र, रामानुजाचार्य के श्री भाष्य, माधवाचार्य के गीता भाष्य, नागार्जुन के मूल माध्यम कारिका, दिग्नाथ के प्रमाण समुच्चय, भरतमुनि के नाट्यशास्त्र, पतंजलि का योग सूत्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विश्वकर्मा का पंचतंत्र, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, मेटलर्जी रत्न का समुच्चय, आर्यभट्ट, वारामिहिर, नारद का शिल्प शास्त्र, मायामुनि का महामाया माता, भोज का जो शिल्प बिल्डिंग का सिद्धांत है, क्षेम शर्मा का क्षेम कौतुकलम, यह सब जब तक हमारी पाठ्यचर्या के अंदर नहीं होंगे, हर पाठ्यचर्या में जहां इसकी आवश्यकता है, जब तक ये संदर्भित नहीं होंगे, यह मान के चलिए कि हम उस वृक्ष की स्थापना कर रहे हैं जिस वृक्ष से शायद हम दूसरे फल की कल्पना कर रहे हैं, जबकि जमीन अलग है, जड़ें अलग हैं, वातावरण अलग है। शायद हमें विचार करना होगा कि कैसे हम इन विषयों को अपने अंदर समाहित करें। मैं यह बात कहते हुए एक बात से कि अटल जी ने कहा था, आओ फिर से दिया जलाएं,
भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। ये सूरज परछाई से हारा हुआ है, 150-200 साल के उस कालखंड से हारा हुआ है, उस कालखंड की मानसिकता से हारा हुआ है। अगर शायद अपने उस ताप को एक बार समझ जाएगा, अपने उस संदर्भ को एक बार समझ जाएगा, अपने उस स्रोत को एक बार समझ जाएगा, फिर आवश्यकता नहीं होगी। और फिर ये कहते हुए कि अंतरतम का न्याय जो है, अपने अंतरतम में झांक लीजिए, देख लीजिए, बुझी हुई बाकी सोचनाएं, बुझी हुई बाकी सोचनाएं। और अपनी बातों के साथ आवाज करता हूँ, बधाई देता हूँ प्रोफेसर मंजुला मैडम को, और इतने शानदार विषय पर इस समय ये आयोजन किया है, क्योंकि हम सब बार-बार घोष करते हैं कि 2020 इम्प्लीमेंट कर दी है, अभी बहुत कुछ बाकी है, और वो किसी और के हिस्से में नहीं बाकी है, सरकार ने दे दिया, सरकार ने अवसर दे दिया, हमारे आपके हिस्से का बाकी है। इसी आह्वान के साथ बहुत-बहुत आभार। I request Dr. Vinita Singh, the co-convener of the international seminar, to come forward. We welcome Professor JSMD Lucknow. He is also the coordinator of Vidya Bharati Uच्च Shiksha Sansthan, Eastern UP. With an enriching teaching experience of 30 years, his areas of specialization are Indian knowledge system, women's studies, Indian sociological traditions, government policies and programs on education, and empowerment of persons with disability. Sir also contributes for the social cause, where he is associated with the organization Saksham Seva Sangathan that works for the empowerment of persons with disability. Professor Pandey has worked on several research projects and has been receiving several fellowships. Now I would like to invite him on the dais and enlighten us on the topic. I welcome sir. मंच पे विद्यमान हम लोग को इकोनॉमिक्स में शिक्षा देने वाले आदरणीय मनोज जी, इससे महाविद्यालय के यशस्वी प्रिंसिपल आचार्य मंजूर उपाध्याय जी, अभी जिनका भोजन पाठ्य हम लोगों ने सुना, लंबा अध्ययन इंडियन नॉलेज सिस्टम का, ऐसे हम लोगों के बीच में युवा एवं यशस्वी वक्ता आदरणीय सुभाष जी, इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी की संयोजिका छोटी बहन ऐश्वर्या जी, यहाँ पे उपस्थित सभी सम्माननीय शिक्षक शिक्षिकागण, छात्र एवं बंधु बांधव, इंडियन नॉलेज सिस्टम मूलतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दो ही बिंदु समझ में आते हैं। एक पे अपनी भाषा पे, जो क्षेत्रीय भाषा है उस पे ध्यान देना, उसमें अपना संप्रेषण करना, अपनी किताब लिखना, पढ़ना, बोलना, उसी में जीना, उसी में अपनी संवेदनाओं का संप्रेषण करना और संप्रेषित होना। और सेकंड जो आता है, जो आप लोगों ने इस विषय का मूल थीम है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय विद्या। अपने सुभाष जी ने काफी डिटेल में कई विषयों पर रखा, योगदान की जो विभिन्न मूर्तियां हैं इस देश की जो विरासत में है, जो उन्होंने साहित्य वांग्मय को रिच किया है, समृद्ध बनाया है, ऐसा उन्होंने हम लोगों को भी बताया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यष्टि, समष्टि, समष्टि, सृष्टि और परिवेष्टि, इस पे ध्यान दिया है, दोनों पर ध्यान दिया है। व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास पहला, सेकंड थिंग अच्छी संस्थाओं, गुणवत्ता युक्त संस्थाओं की चिंता करना, उनका निर्माण और उनका योगदान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यही है जो मेरे समझ में आया कि हमने जब से बना है तब से लेके आज तक कहीं कहीं छोटे से हम उसके किल मात्रा में सहयोग किए हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान हमको आता है। विद्यालयों से लेके महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय, अन्य संस्थाओं, गांवों, शहरों, सबके बीच में गोष्ठी, विभिन्न विमर्श के माध्यम से, क्योंकि
हम लोगों का जो मूल विद्या है, भारतीय विद्या है, वो विमर्श का है, संवाद का है, और संवाद के माध्यम से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होता है। एक केवल अकेला ऐसा है कि पूरे राष्ट्र को जोड़ने के काम किया है, और जहां से निर्माण होता है वो संस्थाओं पे ध्यान दिया है। अभी हम लोग बिल्कुल इनिशियल लेवल पे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। जो विश्वविद्यालय कहता है कि हमने लागू किया है, लेकिन लागू करने के बाद जो मूल तत्व है छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण, सर्वांगीण निर्माण, ऐसा होता है क्या? सैद्धांतिक रूप से तो बहुत अच्छा है कहने में, सभी विश्वविद्यालय में जाना, सभी विश्वविद्यालय में जाना होता है संस्थान दृष्टि से। केवल लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं, लगभग 50 विश्वविद्यालय में जाना हुआ है, एक नहीं 50 विश्वविद्यालय में जाना हुआ है। अभी आप लोगों को देखा था NSIL हुआ था, इसी संदर्भ में हुआ था लखनऊ विश्वविद्यालय में, जहाँ से 100 से अधिक माननीय कुलपतिगण आए थे। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, हम लोगों ने आयोजन किया था यहाँ पे। हम लोगों का सौभाग्य था, लखनऊ विश्वविद्यालय का लखनऊ का सौभाग्य था, खुद प्रभु ने काम हमको दिया था, और उसको हम लोगों ने संयोजन करने में सभी टीम के साथ सुभाष जी भी थे, स्वयं जी थी, काफी लोग थे उसमें सहयोग किए हमने, और एक लखनऊ का ये माइलस्टोन हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। ये मूल तत्व है कि जो संस्थाओं के नेता हैं, यहाँ बांग्लादेश के नेता हैं संस्था की, उनका योगदान है कैसे गुणवत्तायुक्त संस्था हम दें, बच्चों के हम स्वागत कैसे करें, उनके प्रत्येक चिंताओं का, समस्याओं का, चुनौतियों का समाधान कैसे करें, उनको इस लायक कैसे बनाएं कि बाद में उनका समाधान कर ले जाएं। अपने मूल जीवन में जब आए हो तो कोई भी समस्याएं, शंकाएं का समाधान और स्वयं कर पाने में सक्षम हो। ये संस्थाओं शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान सुनिश्चित किया गया है। ऐसा होता है क्या? हमको कहने में, भाषण देने में अच्छा लगता है, इतनी मोटी NEP के इम्प्लीमेंटेशन से लेकर सब चीजें हमने पढ़ा है, पढ़ के चले आए हैं, लेकिन क्या है आप लोग पढ़ना चाहें पढ़े उनको, तो जितने क्लास लेके अभी तक का इतना इम्प्लीमेंटेशन है उसमें। लेकिन मूल चीज है छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण। हमारे छात्र छात्राएं मानस पुत्र मानस पुत्री हैं, क्या उस दृष्टि से हम देखते हैं क्या? उस दृष्टि से उनकी चिंता करते हैं क्या? उनके भविष्य की चिंता उस दृष्टि से करते हैं जैसे अपने बच्चों की चिंता करते हैं क्या? उनके सर्वांगीण पक्षों पे ध्यान देते हैं क्या? एक एक की पूरी समष्टि की दृष्टि से देखते हैं क्या? व्यष्टि तक सीमित है, परिदृष्टि और सृष्टि, परिदृष्टि तो बाद में आएगा, आत्मा परमात्मा का मिलन जो मूल शंकराचार्य ने अभी आपने व्याख्यान किया था, वही व्याख्यान है। व्याख्यान के दृष्टि से ही हमारी सनातन पद्धति वही है, और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य सनातन पद्धति ही है, उसका संरक्षण ही है। हमारा सम्मान करना हमारी पद्धति है, बड़ों सम्मान देना वही पद्धति है, संस्कार देना, हमारी आने वाले बच्चों को संस्कार देना मेरी पद्धति यही है। सनातन पद्धति को दार्शनिक जितना भी योगदान है, जितनी रोटियां योगदान दी है, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय, जितने साहित्य हैं, जलने के बाद सब वही समाप्त हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय साहित्य जलने के बाद उसके बाद समाप्त हो गया बड़े लंबे समय में। कुछ अभी आपने कहा था ग्रंथालय की ब्यूटीफुल भी, उन्होंने ढूंढ ढूंढ के जाके विदेश की पुस्तकालयों से ढूंढ ढूंढ के निकाला है अपनी, और जो भारतीय विद्या है, जो वांग्मय है, वहां ढूंढ ढूंढ के निकाला है। क्या हम लोगों ने खोज करने का प्रयास किया है क्या? व्यक्तित्व निर्माण में केवल एक पक्ष होता है कि हम आपके उनको अपने सिलेबस का जो सिलेबस दिया हुआ है उसको बात चल कर अपना सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, यही शिक्षा का योगदान है क्या? ये हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति और सनातन पद्धति भारतीय विद्या नहीं है। इसमें हम लोगों को चिंता करना पड़ेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि जो भारतीय विद्या है छात्रों के प्रत्येक, चाहे मानसिक अवस्था उसकी हो, चाहे उसकी शारीरिक हो, चाहे उसका अन्नमय कोश हो, चाहे उसका बुद्धि का विकास, लॉजिकल कैपेसिटी का निर्माण है, भूमिका द्वंद्व से कैसे इसको निकाला जाए, ये भी हमारे भारतीय विद्या ही है। व्यक्तित्व निर्माण में सबसे बड़ी यदि कोई भूमिका है, हम पहले इसमें तब भी हमने कहा था जितने मानविकी, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान में जितने सिद्धांत दिए गए हैं सभी एक पक्षी हैं, केवल अंतः क्रियाओं के माध्यम से जिन वास्तविकताओं का निर्माण होता है उनको बदल दिया आप लोगों ने। लेकिन अकेला पंचकोश है, अभी विवेकानंद त्रिपाठी जी इसको बोलते हैं,
पंचकोशीय सिद्धांत राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने फोकस किया पंचकोशीय सिद्धांत पे। नेशनल करिकुलम में आया हुआ पंचकोशीय सिद्धांत हम लोगों को सबको पढ़ना चाहिए। तैतृय उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है, संस्कृत में भी उसका हिंदी अनुवाद भी हो गया, इंग्लिश अनुवाद भी हो गया है, हम लोगों के पास राम में उपलब्ध है कि बच्चों के अन्नमय कोश से लेकर के जो हम बताते हैं कभी कभी कि हम साधन के जो कभी कभी लेते हैं कि साधन और साध्य के रूप में लेते हैं, तो हम देखते हैं कि ऐसा क्या है जिनके माध्यम से जो लक्ष्य है हम लोगों का जीवन का आनंद, शिक्षा का एक ही लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति कैसे होगी, ये माध्यमों से होगी। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। अगर हम छात्रों का ये कोर्स हम ठीक कर ले जाते हैं तो मेरी उपलब्धि है छात्र शिक्षक के रूप में, माता पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, तभी उपलब्धि होगी। यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य है। हम बच्चों के भविष्य ऐसा बनाने की आजीविका सुनिश्चित कर सके, वो इस लायक बनाए, अपना इकोनॉमिक मैनेजमेंट कर सके, वो ऐसे लायक बनावे कि संचय भी कर सके, भविष्य में होने वाली आर्थिक चुनौतियों का सामना भी कर सके। ऐसा हम स्कूल बनावे, केवल उनको हम डिग्री मत दें, डिग्री के हमारे भारतीय विद्यालय नहीं देना है। आप जानते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में वहां उसमें ऐसा चर्चा आता है, गूगल में दिया हुआ है कि 2700 शिक्षक 10,000 छात्र होते थे। सोशियोलॉजी का मैं स्टूडेंट हूँ, सोशियोलॉजी में नहीं होता था, लेकिन सभी विषय जानते हैं, सभी लोग सुभाष जी लोग, विवेकानंद जी, सब सुकुमार जी, सभी लोग बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। उसमें सोशियोलॉजी छोड़ के जितने विषय, एस्ट्रोनॉमी की लेके जितने विषय आते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी है, साइकोलॉजी भी है, सभी विषय उसमें पढ़ाए जाते थे। 2700 शिक्षक 10,000 छात्रों को दुनिया में लोग दुनिया से छात्राएं जमाने पढ़ने आते थे उसमें। और आप कभी कभी तेनालीराम का देखिए, तेनालीराम आप लोग देखते होंगे, तेनालीराम की जो लॉजिकल कैपेसिटी है, जो उसके समस्याओं का समाधान, चुनौतियों का समाधान, उसका विज्ञान में कोश क्या कहता है, उसका विज्ञान में कोश कैसा है देख लीजिए। ऐसे छात्र निर्माण करना है, देखो तेनालीराम जैसे जो मेधावी, जो अपने चुनौतियों का समाधान, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान खुद कर सके और उनके ऐसे व्यक्तित्व पैदा करें जो देश समाज के लिए हितकारक हो, ऐसी विद्या हो जो संस्कार युक्त हो, कितना ज्ञान हो जाए। कभी ये मानी के सोभागी बोलते हैं कि हमने डीएम तो बना दिया, शिक्षक तो बना दिया, प्रोफेसर बदला दिया, सब बना दिया, लेकिन ऐसे पद तो पा गए हैं क्या, लेकिन उससे दायित्व का निर्वाह जो भारतीय विद्या में हम लोग पढ़ते हैं, जानते आए हैं, क्या कर पाते हैं? क्या एक पति के रूप में, पिता के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, शिक्षक के रूप में वो पाता है क्या? अच्छे डीएम तो हो गए, अच्छे पति हैं क्या, अच्छे पिता। ये जो ओल्ड एज होम है ये क्यों आया है? कई भारतीय संदर्भ भारतीय में दिया हुआ है क्या? भारतीय संस्कृति में दिया है। कभी संकल्पना देखिए, ऐसे छात्र निर्माण करना है जो अपने पिता, अपने माता को ओल्ड एज होम में भेजें, अपने माता को ओल्ड एज होम में भेजें, ऐसा निर्माण करना है छात्रों। क्या हमको केवल एक दृष्टि कि उनको इस लाइफ को बनाना है, केवल कि वो कमा सकें, केवल भौतिक संसाधन, भौतिक शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाने का काम करें, यही शिक्षा है क्या? जब तक उनका हम क्या ऐसा बनाए कि हम 40 साल में डायबिटीज पैदा करें, डायबिटीज लोग हो जाए, ऐसे निर्माण करना है क्या? तो सीढ़ी पे चढ़े हाँफे 40-50 साल की अवस्था में, ऐसे बनी मनुष्य बनाना है क्या? मेडिकल कॉलेज, मेडिकल अस्पताल में भी भीड़ दिखाई पड़ रही, क्यों? ये हमारी शिक्षा व्यवस्था का दोष है। मैं सामने बताता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था का दोष है। यदि मेडिकल कॉलेज में, अस्पतालों में, नर्सिंग होम में, अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है, केवल हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी फैमिली का दोष है, तो किसी दोष नहीं है भीड़ बढ़ रही है। अन्नमय कोश, भोजन की मात्रा, भोजन की गुणवत्ता, किस समय के भोजन, किसका भोजन, किस माध्यम से कमाया गया वो भोजन करते हैं, किस माध्यम से कमाया गया है। हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो केवल इसलिए कि अपने व्यक्तिगत सुख संसाधन के लिए नहीं, भगवान के निमित्त, धर्म के निमित्त, राष्ट्र के निमित्त, समाज के निमित्त, ये भारतीय विद्या है। निश्चित से उसकी आजीविका लायक बनावे कि आजीविका कमा सके, सम्मान से जी सके, संचय कर सके, लेकिन साधन की सूचना भी बताई गई है कि साधन से हम कमाएं।
ये भी हमको निश्चित करना पड़ेगा। शिक्षकों की भूमिका उसमें बड़ी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो है ही, और ऐसे शिक्षकों के रूप में भारतीय विद्या ने हम केवल चाणक्य एग्जाम्पल देते हैं, लेकिन चाणक्य ने अपने लिए कुछ किया क्या? उसने सोचिए सभी लोग, चाणक्य ने व्यक्तिगत कभी किसी हित के लिए कुछ किया क्या? उसने निर्माण युग का निर्माण करते हैं, ध्वस्त करके कई एग्जाम्पल लोग देते रहते चाणक्य का, लेकिन उनका त्याग, उनका परिश्रम, उनका स्वाध्याय, उनका अध्ययन किस लिए था? राष्ट्र की चिंता करते थे, केवल राष्ट्र की चिंता करते थे वो, चाहे वो संस्थाओं के रूप में हो, चाहे वो राजा के महामंत्री के रूप में हो, उनका निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन अलग था। हमारे सामने भारतीय विद्या कितने बड़े एग्जाम्पल है। हरिदास नाम लिया, हमारी अभी विमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, जेंडर इश्यूज की बात आती है, ये था कहाँ? ये किस कहाँ थे हम लोग, अब कहाँ आगे पहुंच गए हैं। हमको इसको देखना पड़ेगा, भारतीय विद्या को, भारतीय हमारे ज्ञान को, भारतीय हमारी विरासत को, भारतीय संस्कृति और जितने रिच हमारे साहित्य थे, जितने वाङ्मय थे, जितने हमारे संगीत थे, जितने हमारी सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना था, उसको देखना पड़ेगा। सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना कितना लोगों में समरसता थी, समानतावादी मूल्य था, उसको भी हमको देखना पड़ेगा। अन्य कोश 5 कोश, हालांकि बहुत लंबा है, इससे बड़ा काम होता है, बहुत लंबा काम हुआ है। संक्षिप्त में देखते हुए, क्योंकि व्यक्ति का अगर सर्वांगीण विकास करना है तो पंचकोश पे और ध्यान देना होगा। पंचकोश विकास नहीं है, बच्चा हम केवल विषय के ज्ञान दे देते हैं, हम पढ़ा देते हैं, मील पूरे पढ़ा के शौचालय भेज देते हैं, कारपेट पासन सोमाटन दौड़ा के भेज देते हैं, उससे उनका निर्माण नहीं होगा, उनका भविष्य नहीं बनना है। इसके लिए हमको पंचकोशीय सिद्धांत के ऊपर चिंता करना पड़ेगा, जिससे उनका मन ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो, उसका प्राणमय कोश ठीक हो, शुद्ध रक्त संचार हो, उसका मजबूत हड्डी हो उनकी। लेकिन जो हड्डी मजबूत हो किसके लिए हो? रक्षा के लिए हो, दूसरे रक्षा के लिए हो, किसी को तंग करने के लिए नहीं हो। ज्ञान हो तो आतंकवादी करने के लिए नहीं, राष्ट्र के उत्थान के लिए हो, सामंजस्य के लिए हो और राष्ट्र की प्रगति के साथ साथ सामाजिक संवेदना के लिए हो। ऐसा ज्ञान हो, ऐसा तर्क हो, ऐसा विवेक हो, स्वस्थ हो किसके लिए हो कि हम राष्ट्र समाज के लिए उदाहरण दे सकते हैं। वाइबिलिटी ऐसी हो, अपने काम करने की क्षमता 5 घंटे नहीं 10 घंटे काम कर सकते हो, ऐसी क्षमता के काम हो उसके लिए। इसके लिए हमारे यहाँ सब क्या है, पतंजलि जो बताया उन्होंने, पतंजलि का योग है, मेडिटेशन है, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, दौड़ है। शिक्षक 24 घंटे में घंटे समय निकालते हैं क्या इसके लिए? अपने लिए, छोटे दूसरे के लिए, अपने लिए निकालते हैं क्या? अगर 1 घंटा हम समय देते हैं, 1.5 घंटे समय देते हैं 24 घंटे में, हमको लगता है अपने लिए भी, समाज के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी। जो मेडिकल में अध्ययन करते हैं, जो समय देते हैं मेडिकल में डॉक्टर साहब काम लेने के लिए, उससे भी बचेंगे और बच रहेगा और देश के अपने लोगों के लिए काम में काम आएगा। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो 1 घंटे में समय देते हैं क्या बच्चों से? मैं क्लास में जाता हूँ, मैं पूछता है बच्चे से, मुझे मंजूर होंगे कॉलेज में, बच्चे से पूछता है किसने आज टिफिन लेके खा के कौन आया, टिफिन लेके कौन आया। मैं पूछता हूँ बच्चों से कितना व्यायाम किसने किया, कौन दौड़ता है, छात्र पूछता है तुमने योगासन करते हो क्या, तुम लोग प्राणायाम जानते हो क्या, जाने कितना समय देते हो अपने स्वास्थ्य के ऊपर। चमक नहीं आती फेस पे, आप कीजिए देखिए चमक नहीं आ पाएगी, किसी क्रीम की आवश्यकता नहीं किसी को। आज के जीवन में हम लोग इतने इसके हो गए तो आज के जीवन में सही बताओ ने कभी क्रीम नहीं लगाया, दिवाली नहीं लगाया जीवन में, आज तक क्रीम को नहीं लगाया। क्या हो सकता है? सब ड्यूटी आपके अंदर है। आप हमारे प्राणायाम है, योगासन है, आसन है, मेडिटेशन है, आप उसके बाद मनोमय कोश आता है। मनोमय कोश मानसिक एकाग्रता कैसे आएगी, दृढ़ इच्छा शक्ति कैसे आएगी, मन के हाल है, मन के हिते ही हम लोग कहते रहते हैं, लेकिन मानसिक मजबूती आएगी कैसे? इसके लिए विभिन्न प्रकार की भौतिक अवसरों लोग जुड़े हुए हैं। भौतिकवादी समाज है, स्वाभाविक है, सभी के ऐसा वातावरण है, आवश्यकता भी है, लेकिन उन चीजों को सोचना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, सेवा का सिद्धांत है।
सेवा से जो मानसिक मजबूती मिलेगी वो मानसिक मजबूती कहीं नहीं मिलेगी। अपने दायित्वों का समय से निष्पादन करना, पूरी निष्ठा के साथ करना, पूरे समर्पण के साथ करना, उससे आपको शांति मिलेगी। अपने नियमित रूप से क्लास में बच्चों के शंकाओं का समाधान करना समय से और ठीक से पढ़ाना, उनको ठीक से उनकी चिंता करना, उससे हमको मानसिक दृढ़ता मिलेगी। साथ में व्यक्ति के लिए जीना नहीं, दूसरे के लिए जीना। विवेक कहते हैं हमारे विवेक जी, यदि आप दूसरे के लिए जिएंगे तो अपने आप मजबूत होंगे, मानसिक मजबूती मिलेगी। देने वाला से मजबूत होता है, लेने वाला मजबूत नहीं हो सकता कभी जीवन में। देने वाला बनिए जीवन में, किसी के सामने भीख मांगने की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा हमको समाज हमको छात्रों को रहा है। हमको कभी 4 बार स्टेशन पर समोसा बेचता हुआ बच्चा दिखाई पड़े तो जानना है मैं शिक्षक कहीं से नहीं। हमको ऐसे छात्र निर्माण करना है, सभी पक्षों का विकास हो, उनको सुधार कराना, ये भी चिंता करना ये पढ़ते हैं इस पढ़ाई का उनके आर्थिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके क्या वो सक्षम बनेंगे। क्या अगर मैं सक्षम में काम करता तो दिव्यांगजनों के लिए हमने लंबे समय तक सक्षम में काम किया है, और दिव्यांगजनों के लिए वो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए काम किया है, वो सक्षम अलग है। एक सक्षम उनको इस योग्य बनाना कि वो अपने लिए खुद के लिए जी सके और समाज राष्ट्र के लिए भी अपना योगदान दे सके, ये भी चिंता करना। अगर मन ठीक है आपका तो मन ठीक है कुछ भी कर सकते हैं, और मन अच्छा नहीं, मन मजबूत है तो छोटे छोटे काम आपको बड़े लगते हैं। यदि आप दूसरे चिंता करेंगे तो मन व्यापक होगा, अपनी चिंता करेंगे तो हर समय तनाव में रहेंगे। और सकारात्मक होना, पॉजिटिव होना, आशावादी होना, समाधान के लिए आगे बढ़ना, समाधान और किसी के सामने विकट चुनौतियां ना देना, नेगेटिविटी से नाता तोड़ना, ये मन मानसिक मजबूती देगी आपको। लालच अपेक्षा ना करना, है क्या? यदि होता है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। विज्ञान में कोष की बात हम करते हैं, अगर इस लेवल पे हम पहुंच जाते हैं तो विज्ञान में कोष में बढ़ते हैं, जहां भी स्लाइड बनाना, कैसे स्वाध्याय क्लास में नियमित रूप से पढ़ाना, उनके बौद्धिक विमर्श, संवाद, उनके विभिन्न प्रकार के कैलकुलर, को कैलकुलर, इंटर डिपार्टमेंटल कई पाठ्यक्रम हम लोग इसमें दिए गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। उनको उनके ज्ञान का विस्तार करना, उनको अनुभव को बढ़ाना, उनको सबकी सहभागिता करना, उनका अनुभवी ज्ञान बढ़ाना, उनके माध्यम से उनके अच्छी पुस्तकों को बताना, उनके योग्य भविष्य की योग्य, उनके लायक और आने वाले जो अपडेशन है, जो अद्यतन सूचनाएं हैं, उनकी तैयार रहना, उनको तैयार करना। संवाद के माध्यम से ही ज्ञान का उन्नयन होता है। क्यों संवाद के माध्यम से होता है? वन वे कभी नहीं हो सकता है। हमारी भारतीय विद्या में तो संवाद, विमर्श यही दिया गया है, और बच्चों के साथ संवाद करना, बच्चों को उत्साहित करना कि बच्चों तुम लोग पढ़ के आओ, हमको कल पूछोगे तब समझेंगे पढ़ते हो क्लास में। अगर तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आता है वहां से तो ये हमारी पढ़ाई का, पठन पाठन का और किसी का कोई मतलब नहीं, कोई मीनिंग नहीं है। संवाद के माध्यम से उनका विवेक का स्तर बढ़ाना, लॉजिकल कैपेसिटी बढ़ानी, उनको ऐसा ज्ञान देना कि वो संस्कारित हो। और से MBA आप इसमें EDPD आप देख रहे हैं, CI कितना है, उनकी स्लाइड बनाना, ये सारी जो गतिविधियां हो रही हैं उनके जिससे बचें। यदि आप अपने स्वयं में समस्याओं का समाधान उनके विवेक को इस लेवल पर लाते हैं कि अपने समस्याओं का समाधान, भ्रांतियों का समाधान, यदि समस्याओं का विकट स्थितियों का समाधान स्वयं करने में सक्षम होंगे तो आते हैं इसके कहते हैं साथी के रूप में, कभी कहते हैं साथी के रूप में आनंदमय कोश, आत्मा का परमात्मा सम्मेलन, स्पिरिचुअलिटी यहाँ हम कहते हैं, जहाँ कहते हैं सा विद्या के रूप नहीं, वह विद्या जो हमको सभी अवगुणों से मुक्त करे। लोभ, लालच, घृणा, द्वेष, आलस्य, जितनी वृत्तियां हैं, से प्रकार के रोग, मनोरोग, इन लोगों से सबसे आपका मुक्ति करे। आत्मा को परमात्मा सम्मेलन आता है, ये अंतिम आनंदमय कोश है, जहाँ पर किसी की ये गलत ना सोचना, सहयोग के लिए आगे बढ़ना, अपनी भूमिका केवल निर्वाह करना, केवल हमारी हमसे क्या अपेक्षा होती है वो सोचना, किसी से अपेक्षा ना करना, ये आता है। तो किस कंडीशन में आएंगे
जहाँ पे स्वयं आप इस लायक बन जाए कि सब समस्याओं का समाधान करने में आप सक्षम हो, किसी से अपेक्षा न करें। ये क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिया सर्वांगीण विकास करना इस छात्रों का, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताता है कि छात्रों के प्रत्येक के पक्ष का विकास करना ये मेरा लक्ष्य है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य है, ये हमारी भारतीय विद्या है। बहुत बहुत नमस्कार, साधुवाद। The next session for the speaker would join us online. So I request the team to please put down the agenda. Professor Chaturvedi has already joined us. Can you hear us, sir? Sir, please आप अपना it is unmute now. Sir, I request you to please share your views on the topic with us. Share your views on the topic with us. Over to you, sir. Hello. Yes, sir, we can hear you. I think you can. Sir, आप हमें सुन सकते हैं क्या? Are we audible to you? Yes, sir. Over to you, sir. Over to you. Sir? So we can see your screen now. Hello. Yes, sir, we can see your screen. Can you hear me, please? Yes, sir, we can. हम आपको सुन पा रहे हैं. Can you hear me? Can you see my screen? Yes, sir. Sir, we can hear you and see your screen. Can it start now? Yes, sir. Over to you, sir. We invite you to share your views with us. Let's start then. Sir, please begin. Hello, can we start? Yes, sir. You can please begin with your views. Hello. Sir, you can please begin. We can hear you. We can see your screen. So much. Om Shri Guru Namo Namah. Om Angasaya Namo Namah. Om Kaplaya Namo Namah. Om Gangaya Namo Namah. Om Saraswati Namo Namah. Om Bhagavate Namo Namah. Om Shri Radha Krishnabhyam Namo Namah. I bow down to all the audience and I express my special gratitude to Srimati Aishwarya and Dr. Vandana Dwivedi for giving me this opportunity to share some of my thoughts on very important topics. Today I am going to give some brief overview of bigger theme about the Bharati ancient Gyan Vigyan, failure of Hindu civilization, potential reawakening, some critical reflection. Despite this general introduction for me, and I went to America 42 years ago, directly from IIT Kanpur, and I have seen with close distances the intellectual academic world of America in various departments.
including Department of Humanities. But still I think I consider myself a college crazy maverick. It's my lonesome journey. Costly notes, because I will be using some Sanskrit terminology and English terminology, so I want to give you a costly note. Pollution, corruption, uprooting of Vedic wisdom through blind translation in English on one-to-one basis. Few examples: Atman Purusa, not so disparate of rule. Paramatman, Brahman, Purushottam, Bhagwan, not God. Prakriti, not nature, nature is aspect of truth. Maya, original Shakti with 16 primary powers, not illusion. Maya does create illusion too. Vigraha, not idol. Idol is considered to be false god. Yoga is not mysticism. Dharma is not a religion. It is the greatest tragedy happening to Hindu civilization. Spirituality is full of contradictions, confusion, is not a Dhyatma yoga. I have identified virtually hundreds of such technical terms. The scope and depth of this presentation, my dear listeners, only a few selective ideas to be time-constrained, easy to understand levels, corresponding technological development will not be discussed. I won't be able to share the full sense of beauty, wonder, and mystery hidden behind due to lack of time. Your full attention is appreciated. Please also note, Institute Knowledge System has documented an exploration in both of about 64 kinds of knowledge fields, including Naksat, Sangeetsat, Chandasat, Kavyasat, and fields of various scientific and technological disciplines, humanities, and arts. For example, temple architecture layout carry various geometrical configurations, including fractal geometry. However, unfortunately, all this was not formalized in mathematical language. Following questions were raised both by Bharati Rishi and Western thinkers and scientists, starting with the Greeks and probably earlier civilization. But the answers are very different between the answers given by Bharati Rishi and Western thinkers. These are the primary questions raised all the way Greek thinkers, Plato, Aristotle, and all that. Existential reality of the cosmos. Where does the cosmos come from? How does the cosmos come into existence? What is this cosmos? How does it work? Is there the end of cosmos? How will this end? And what is the purpose or meaning behind the existence? Existential reality of human beings. Who are we? Where do we come from? What is the purpose and meaning behind living? How should we conduct our living and why? What is the end point? Some popular slogans. Bharat had all the knowledge that was stolen by West and appropriated to rediscover without due credit to be so. My answer, this is a ridiculous and false statement. The damaging consequences to the sincere effort towards the potential renaissance. Again, our knowledge is frozen in time. No changes, development or growth can be made. They are frozen in time. My answer, this is factually wrong and goes against the very principle of Vedic knowledge tradition. If you look at the Vedic knowledge tradition from ancient time, from starting with Rig Veda all the way to Smriti, you will find continuously changing ideas, thoughts, structure. But these changes are not arbitrary. These changes have been based on the foundational doctrines illustrated, and talked about in the very first scripture, Rig Veda.
Nowadays, for last 10 years, you can hear these voices, I hear very loudly. Bharat is suddenly on the verge of becoming the distributor. My answer is a statement: illusion, wasteful, naivety. Economic, geopolitical power alone do not make a country distributor. Majority of Indian so-called intellectuals and political leaders are still trapped in the colonial and slave mentality. So my question is, are we trying to rediscover wheat by digging into the ancient knowledge system? These lots of ideas have already been discovered by them. So, from my opinion, what is the importance value of digging into ancient Vedic wisdom? These are some of the primary answers. It has a historical value. It can promote long overdue self-identity and respect for the leader. It can remove and trace the colonial mental slavery and civilizational inferiority complex. It can impart the tools to establish new knowledge and wisdom to move forward with technologically changing time, to engage in the assessment of technological advancement in the sense of holistic welfare and all-rounded upliftment of humanity and potential collective measure to achieve the harmonious interconnectivity, mutual relationship, and ordering of the inner world and outer world, and a path to virtually transcend them toward experiencing the state of eternal Nityanand and Nityanand. Charging against digging ancient Vedic wisdom, many intellectual thinkers in the West as well as India, so-called, I call them so-called intellectuals. To many it may appear that of cultural appropriation to read ancient culture through the paradigms of the latest technology. Always we say, okay, oh, this is new thing has this gone. Oh, we already have this in my Veda or my scripture or my wisdom tradition, without ever thinking about what they are talking about. Nevertheless, claiming that abstract techniques of knowledge and artificial meta-language belong uniquely to the modern industrial West is not only historically inaccurate, but also lacks in one of the implicit epistemic colonialism toward culture to other places and other times. This statement, very powerful statement, it answers all those who are confused. This is the professor of mathematics at the University of Rome, and I fully concur with this authentic, powerful statement. Western paradigm, broader theme. There are three fields I can picture out here in these three diagrams. Field of religion, ethics, and morals, made in the ideas of God, salvation. Field of art and aesthetics, sociology, and society, humanity, etc. Field of rationality, philosophy, and reason, and field of all sciences. All these fields are mutually exclusive. They hardly overlap, and they are antithetical. So this is the state of the knowledge of the West. These are mutually exclusive and significant perception. Notice the separation, discordance. Field of religion is undoubtedly antithetical to the field of science. Conclusion: there are several attempts made to bridge the gap between science and religion, and unfortunately, we did not know at the time, we did not know how Sarva Dharma Sambhav or Dharma Nirdesh, the very fundamentally brutal, damaging idea in the Constitution. I have given a lot of talks on that as well, analyzed critically. That the long-standing antagonism between science and religion is irreconcilable, has been taken for granted. It is in the wake of recent controversy over teaching intelligent design and ethics of stem cell research, the divide seems as unbridgeable as ever. Like Professor Edmund, there is a long history of antagonism, including persecution
punishment, science books burning the Western historical landscape. Thematic categories in classification as contrasting with the Western, because a couple of slides ago. Bigger field is Sanatan Yoga Dharma Gyan Vigyan Kshetra. Simply saying Sanatan Dharma does not convey the all-encompassing object meaning to the world of Hindu wisdom. And there are four primary classifications: Adhyatmic Yoga Dharma Gyan Vigyan Kshetra, Adhyatmic Yoga Dharma Gyan Vigyan Kshetra, Adhibhautik Yoga Dharma Gyan Vigyan Kshetra, Adhyatmic Yoga Dharma Gyan Vigyan Kshetra. There is another entity called Adharma Agyan Kshetra. When this becomes overlapping reality of the other Kshetra, other Gyan Vigyan Kshetra, we run into deep darkness of ignorance and stupidity. Let me give you briefly. Hello. Let me give you briefly the question about what is Yoga Dharma, what is Gyan and Vigyan. Let me give you a simple example. Let us look at the water as an example. Water is yogic integration of hydrogen molecules and oxygen molecules, which is a source of transformed life. This is, I named it as the Adhibhautik Yoga. You will hear a lot of new terminology which has emerged through my contemplative, yogic contemplative meditation. Vigyan, mechanistic and material science, investigating the microstructure and quantum structure of the hydrogen and oxygen molecules, investigating different physics and physical powers. That's the Vigyan. Gyan is knowing the properties at different scales in relation to with its uses for the human and natural world. That becomes Gyan. Yoga Dharma is identification of the various states with their corresponding qualities. Yoga Dharma. Yoga Dharma requires the following: Nam, Rupa, Guna, Karma, time, and mutation. All these characteristics make up a set according to which you can define the entity. And this is called Yoga Dharma. I'm giving you two examples. Hopefully I have enough time. Otherwise I will skip one. One is the Agni Chandra Yajna, a source of artificial intelligence. Sankhya Yoga, case for celestial. The very first central image of the Rig Veda and Vedic Sanatana Dharma is Yajna. The very first devata is Agni, and the very first action to karma is Yajna. Here is centrally the beginning of Srishti, Yajna. First Chan, which is very likely Chan, will be 1.1.1, Agni Vide Purvottam Yaktat Devan Sujam, Bhutan Ratnadhatmam. I sing laws to Agni, Purohit, the priest, the Devata, the Rudra, the chanter, the Ritvik, the performer who brings all spells and blessings. My dear listeners, ponder upon Agni as the Devata, as the Purohit, as the oath, as the Ritvik, all in one yogic personality. Chandas is a Gayatri Chand, Master 24, measure of Ganesha and Chandasa. Time is continuous, containing peaks and values the way it is decided. Is a music there, Sangeet is there, music is sound vibration. Vak is a language structure, and Ratna means all kinds of bells, including Vidya. The very first mantra consists of the hidden structure which I have spelled out in brief here. Gyan, the experimental step. Artificial ritual arena, Northern altar 10,800 feet. Professor Fritz Stahl was the first great Indologist who
whose help was instrumental to perform this in 1975 Nambutri Brahmanas of Kerala. The most ancient, uniquely performed tradition has been Vedic. Contemporary AI development can be traced back to this yajna. 3,000 years of well-documented rituals, the emergence of the computational space. This is written by Matthew Pespanelli, is a professor of media philosophy, University of Art and Design, and very internationally recognized authority in this area. And he has studied the Sun Sutra, 800 BC in India, and he has reconstructed, based on the structure of the Vedic, how the bricks are arranged, how they are organized, and he is tracing back the origins of AI to this year. Agni was polymorphous, many forms, many attributes and physical properties. He pervades all three lanes, Prithvi-lok, Antariksha-lok, Sun-lok, in fact all the galaxies. There are three manifestations, I am not going to talk about it. Adi Bhautik, Adhyatmik, Adi Devik Sarup. What a wonderful union of three fields of existence in the following mantra addressed earlier. That the mathematical operations are matrix multiplication. If you really extract this mantra from Vedanta. Contemporary scientific understanding of the sun's electromagnetic spectrum is divided into several regions. Common digital radio-based, microwave, infrared, visible light, ultraviolet, X-ray, and gamma rays. How do we unify this diversity through the eyes of Vedic Jnana? I coined a new term, emergence of a new Brahman. I call it the digital Brahman. Another example. This is the Sankhya Yoga. I've been raising this question since 1990. And you will see here, Ahankar differentiates into the five element of smell, tanmatra, taste, form, touch and sound. Sense of smell, sense of taste, sense of touch, sense of form, sense of sound. This comes out to the field of Ahankara Kshetra. They are separate and distinct, differentiated from the common source Ahankara. Here the manifests coupled to intermingling. Yes, the condition called synesthesia. Oh my goodness. Color synthesia of letters, alphabet, tones of the digital scale, for numbers and for days of three. Made tasted state. Synesthesia is a fascinating world of blended senses. Synesthesia experience, you taste words, you see music, and hearing the color. This is the wonderful, I found that answer when I looked at the 1993 book by Dr. Rachel Khayruddin. And this comes out directly from the matrix of the Sankhya. Please note, this is a question I am raising to the audience. Indian doctors, biologists, saints, yoga practitioners did not discover this phenomenon. Why? We have to answer that one. Concluding thought. Despite the profound wisdom given the polymorphous attributes of the Agni, manifesting all the three rays, Hindu mind failed. And I claim that, I emphasize that, Hindu mind failed to physically identify, characterize, and experiment to generate electricity. And to organize long-distance communication through the electromagnetic propagation. To really comprehend the Vedic idea and the Vedic dance can lead to divinity through electromagnetic propagation. It's an information carrier medium
when we do the Agni Homa, and chant the hymns, they reach to the Swargaloka, to the divine world. How I asked a question to many of such experts from tradition who deals with the yajna or homa. They did not have answer. Answer was within the Vedic tradition, and answer came out in very specific form through electromagnetic propagation in this cosmos, which is information carrying medium. Hindu civilization says there are two primary forces, internal forces and external forces. I will list down the internal forces. Everyone is talking about the external forces, imperialism, Macaulay, all kinds of invasion. But internal forces are equally prominent to talk about. Decay and disappearance of basic tradition. It has been for several hundred years. Focusing only on the aspect beyond by those the Sankhya and Vaisya. Brahma Satyam Jagat Mithya, Jagat has become Mithya. All the ideas collapse. The whole world collapses, I collapse, Yoga collapses. Every entity on this planet collapses. That means that no other significant attempt to re-establish lost unified God. No further discovery, innovation beyond the explosion of Bhakti Yoga tradition. Bhakti Yoga tradition was the only explosion of new dimensions in the Bhakti Yoga between 19th and 18th century. We have really ignored the natural world and associated it in the physical science, loss of values and focus upon wisdom tradition. Decay and destruction of experimental sciences and technology, corruption, pollution, and uprooting of wisdom tradition to translate them into English language, even of the untranslated Sanskrit technical terminology. Oh my goodness. Look at simple things. Look at the invitation card for the Vivaha Sanskar or Janma Yuva Sanskar. Even learned people, a Sanskrit Gyani, Sanskrit teacher, professor, university professor, they write the word marriage or wedding, even the subject, Vivaha Sanskar is kept. And I have done a lot of research on marriage and wedding, which are nothing more than a legal contract starting from the Greek tradition. We have sanskars much more dimensional, much more wonderful, much more beautiful, but we are forgetting each and every kind of sanskar with its true strength, because we have never cared to review, revive, to innovate, to re-establish. Reasons are several things. Undermining, consequence, education, Sir, sorry to interrupt you. We just pause. Excuse me, sir. Sorry to interrupt. You have to excuse me, sir. Sorry to interrupt you in between. I think that would be better if we solve it then. Excuse me, sir. Sorry. Yeah. Sir, we just were having paucity of time. We just request you, although yours is a very enlightening session, but due to paucity of time, we just request you to please wind up in another 5 minutes. Yes, I will wind up in another 5 minutes because I started at 11:29. So I have still 5 minutes, please. Sure, sir. Sure, sir. The 5 minutes all are yours. Thank you, sir. I will end up in 5 minutes. Thank you so much. All reality is material or physical. These are the product things.
of the modern materialistic reductionist type. Consciousness is byproduct neurological activity in brain. This is an illusion. Matter is unconscious, minds are in high-tech, nothing. Activities of brain. Existence is purposeless and no goal or direction. Lot of people are fixed, they will be forever. Whole existence is linear from zero time till when God exists only in idea, human mind, and hence in human head, and so on. That is wisdom tradition rejects the above that term. And he is still in India. Scientists, philosophers, many of them intellectuals, hollow and blinding, hollow and empty dogma, which are failing in the Western world. Let me give you an example. The state of success in contemporary scientific research advancement. Those who have considered or consider the modern mechanistic reductionist science, not Vidya, as the new God emerged in the West in the period of enlightenment, 17th century. More than 50% research done of this the field of chemistry is contradicted within a couple of years. More than 30% research done of this the field of medical science are falsified within a year, according to the Journal of American Medical Association. Who should you believe? How you should look at the entire piece of modern science and technology? I will say it is a big question mark. Concluding thought, the blindest path. Why science cannot ignore human experience? Adam Fresh, Marcus Gleiser, and Simon Beck, thinkers have reasoned we are in a crisis that is over, civilizational, existential and state, a conceptual transformation needed to blind our students. Why? That conceptual transformation will must come from the very true. According to the whole humanity are facing towards achieving the needed peace, happiness, and all normal prosperity to appropriate knowledge and action. Education at all levels, from elementary to PhD, that is human-centric, environmental-centric, ethics and moral-centric, human total upliftment-centric, rather than based on the goal century, corporate century, and corrected political move century. Address the fifth serious issues such as brokenness of family, dissatisfaction, meaninglessness, purposeless living, and very painful loneliness and failure after retirement, with pollution, corruption at all levels, all kinds of cause and serious damage to perceive human body, the values, and also this living planet. Real question, can and must be vetted with them. Through innovation, growth and development provide the necessary corrective measure. My answer is yes. That's the only hope for not only for India, the ancient country, but for the whole humanity. I have no time to talk about it. Many Western thinkers were good friends of mine. They are one of the best thinkers. They are looking forward to the wisdom from Veda and Vedic corpus. Even outer space now, some of the human producers, the latest information I want to share with you. In 1957, humanity, our first satellite launched. Today, number is 10,000, and there's 500,000 more planned. Space is no longer pristine. What was once not unpolluted refuse of all the environment that affects planet Earth, outer space, itself is now dealing with pollution, with living creatures, and including human basically consciousness. We cannot replace the trajectory done on Earth. Consequences human fast and breaking things in person for millennium. It is time to act now. In fact, we must prepare for potential space war. We are fed up with the people, humanity on this planet. We are fed up with the natural world on this planet. So we have to go out in space, or we have to go out on Mars and Moon to colonize and again start fighting and polluting the entire galactic system.
This is what we are. And we quietly try to follow. Go ahead and do it. Om Antim last mantra. All together. Om Sahanavatu Sahanau Gunantu Sahaviriam Karvavani Tejastu Navaditamastu Mahisvatavani. Om Shanti 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 Hari Om. With my folded hands, I bow down to all of you, asking for forgiveness for any offenses I might have committed during this talk. Also, I am requested with my folded hand to please offer your blessings on me this way. You call it Anpal Dhamma Bihar. Thank you. Thank you so much, sir, for your enlightening words. Thank you to say something, I think. Thank you so much for your enlightening words. Coming to the end of this plenary session, I am sure this discussion has certainly enhanced the cognitive ability of the participants, and it has paved Sir is connected with us or he's still connected? The discussion today has certainly enhanced the cognitive ability of all the participants, and it has surely paved new perspectives of designing the future strategies in context of the Indian knowledge system and its implementation in NEP. I thank my dignitaries that were present over here today, Professor M.K. Agarwal sir, Professor Jay Shankar Pandey, Dr. Subhash Mishra and Professor Emeritus Shiv Kumar Chaturvedi, who joined all the way from USA. Thank you so much dignitaries for sharing your rich perspectives with us. We are extremely grateful to all of you for taking out your valuable time out of your busy schedules and being with us here. We look forward to have all of you with us again in our future endeavors also. Thank you so much. And I request all of you to please be seated for a while. By the time the technical session team is just arranging, I would like to thank our Madam Principal, Professor Manjula Upadhyay, who has been a visionary herself, part academician, part excellent, and a charismatic leader who does not believe in following the footsteps of visionary to dream and to achieve it. कितने प्रेजेंटर्स हैं जो यहाँ पर अपना पेपर प्रेजेंट करना चाहते हैं? इसी रूम में allotted यहाँ. Want to leave now? I request the technical session team to please take over. करना है पेपर. ये जितने लोग यहाँ हैं उनको या तो वो दर्शक हैं या तो वो यहाँ पर पेपर प्रेजेंट करना है. नहीं, रूम नंबर 1 में काफी लोग हैं. So you can take your time and focus on the main points. And the second is that you will be given marks because the best presenter will get a certificate. So please be cautious, and marks will be given on the basis of content and clarity. So please be careful of that. From Lucknow University, we consider her our own. Because she was here in Navyo earlier, but she is from the Department of Education, Lucknow University. And then we have another guest, Dr. Shiv Kumar Mishra, Associate Professor. He is from Indira Gandhi National Tribal University, Amarkanta. So after they take their coffee, I will request him to come on the dais, please. And all those who are giving PPT presentation, we'll take you first, and we will start with Dr. Ranjana Krishna. As I already told you, Principal Haricharan PG College. Professor Upadhyay is an acclaimed academician
administration, institution building, and corporate training. He is a scholar of international politics and has a large number of research publications. He has to his credit more than a dozen radio talks, many TV talks and interviews, and around a dozen YouTube videos on different topics. So a very warm welcome to you, sir. And the co-chair of the session is Dr. Amit Kumar, Assistant Professor in the Department of Education in R.A. Karna Degree College, Prayagraj. His PhD is from BHU and he is an expert on Bharati Gyan Parampara and Hindu studies. He has also taken up a major project titled Bharati Gyan Parampara mein Rashtriya Swayamsevak Sangh ki Shaikshic Vichardhara ki Prasangikta. He has published 28 research papers in various UGC care history journals. And again, I welcome you, sir, on this dais. We have another guest who is Dr. Shiv Kumar Mishra. He is Associate Professor in Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak. Dr. Shiv Kumar Mishra के पास 13 वर्षों से अधिक का शिक्षण और अनुसंधान अनुभव है। उन्होंने बीएससी और एमएससी की उपाधि भौतिकी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से और पीएचडी की उपाधि जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से प्रायोगिक संगणित पदार्थ भौतिकी में प्राप्त की। डॉक्टर मिश्रा ने प्रतिष्ठित यूजीसी डॉक्टर डीएस कोठारी पोस्ट डॉक्टर के साथ भूतल भौतिकी और सामग्री विज्ञान प्रभाग साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता और भौतिकी विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में प्रायोगिक संगणित पदार्थ भौतिकी में 4 साल का पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान अनुभव पूरा किया है। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग विश्वविद्यालय से एनआरएफ पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मिश्रा को महर्षि स्कूल ऑफ साइंसेज महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICMSS 21 में उत्कृष्ट शोधकर्ता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। डॉक्टर मिश्रा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन SIRO इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स के सदस्य और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ फिजिकल साइंसेज प्रयागराज की आजीवन सहयोगी सदस्य भी हैं। उन्होंने पर्यावरण संबंधी मुद्दों प्लास्टिक के उपयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कई व्याख्यान दिए हैं और उन्होंने कई MSc MTech के साथ साथ 2 PhD छात्रों का पर्यवेक्षण भी किया है। उन्होंने 50 से अधिक शोध की SCI पत्रिकाओं और पुस्तक अध्याय भी प्रकाशित किए हैं। So we welcome you, sir. And last but not the least, we have Dr. Neetu Sen, Associate Professor, Department of Education, Lucknow University. And although I do not have her CV here, but I know her very well because she was in Lucknow and she has a versatile personality. And apart from being brilliant in academics, otherwise also technology-wise also she is very tech-savvy, and she has been, a very a person of a multifaceted person and a person who has been looked up to in Degree College. So thank you so much. Thanks for nice words. Welcome. First of all, Professor Chandra Mohan Upadhyay with Amento and मैं एक बार हाथ लगा लीजिए सर हाथ लगा ठीक Dr. Amit Kumar. ओके Dr. Neetu Sen. The first part deals with the concept of cause, the second part with the
Mother Goddess, and the third part with the art, architecture and sculpture of ancient India. The paper explores the ancient literature and sculpture. It explores how Vedas and Puranas record the supreme deity. The classical texts are full of such details and anecdotes which modern scholarship has denounced as myths. But most of the deities might have been historical personages. They are depicted as establishing peace into a chaotic world. They are defined by their glorious deeds. The principal sources of mythology are historical. Now, in the first section, I have dealt with the mythical geography of the earth, how gods have been depicted into different Vedas and Puranas, and I have discussed in detail the Hindu triad and the other major gods. Due to the paucity of time, I will present here the second part of the paper. I will focus on that. While the layman, the male gods appear more energetic, to the mystic, it is the mother goddess who stands for the active principle in ancient world. This energy of God is personified as Shakti. In the classical texts, Mother Goddess is depicted in various aspects. This part deals with the mythological and historical representation of Mother Goddess, as it appears in various classical texts, and also its narratives, how it changes in various texts with the passage of time. So I have focused on all the three Vedas, and I have also mentioned here in which mantras and Shruti we have the mention of Mother Goddess. Among the most popular manifestations of the goddess is Durga, Mahishasura. Durga is the name which means difficult to access, a reference to perhaps Durga's own invulnerability. Why I have chosen this topic? Because in many ways Durga violates the model of classical Indian womanhood, since she is not submissive or subordinated to a male deity, but excels in what traditionally was a male preserved quality. Shakti is worshipped as the highest principle and source of all being. It is believed that all gods emanate from her. In classical texts, Mother Goddess is depicted either as creative and peaceful, for example Lakshmi and Parvati, or it can be seen in its destructive and terrifying aspect, Durga and Kali. Surprisingly, this form Durga and Kali is worshipped more in India and receives even sacrificial offerings. Now we all know the story of Durga and Mahishasura. I'll just read in a couple of sentences. When Shiv and Vishnu were approached by the gods after getting terrified by Mahishasura, all the mighty gods, when they came and complained that Mahishasura has uprooted the mountains with the tip of his horn and he has struck the ocean by his horn, his matchless strength cannot be challenged anyone other than Mother Goddess. After hearing the story, Shiv and Vishnu flew into a rage and a flame of rock sprang and fire finally turned into a radiant female shape. She transformed herself into a beautiful Durga by the combined energies of the gods, who has also gifted her powerful weapons. Shiva handed over his Trishul, Vishnu his Chakra, Vayu his bows and arrows, Agni his spear, Indra gave his Vajra, Kal, sword and shield, and Vishwakarma the battle axe. Thus, equipped with all the weapons, Durga rode on a fierce lion which was gifted by the Himalayas. In the combat, the earth was sheltered by
Mahishasura's swift turns, the ocean lashed by his great tail, and mountains collapsed by the blast of his breath. Every time Durga gained an advantage, Mahishasura changed his shape to a lion, a man, an elephant, and back to a buffalo. At last she leaps on his back and cuts off his head, to the joy of gods and the heavenly sages, quote unquote. Because of this great victory, Durga is called the Mahishasura Mardini. So in my paper, I have discussed how Mother Goddess has been represented in Rigveda, Atharvaveda, Yajurveda. Even in Markandeya Puran, we have Devi Bhagavad. It runs on all 19 chapters. In Vaman Puran, we have a description of the exquisite beauty of the goddess. In Varan Puran, Mahishasura is fighting against the gods to bring the beautiful goddess. In the third part, I have taken up the sculptures and cave paintings from Ajanta and Ellora and from various parts of India. Now this is the first which we find from 5th century, and we can see that the goddess Durga has lifted up the Mahishasura. This is the second one from Ellora caves in 6th century. Now, one thing you can note is that in some of the sculptures she has 2 hands, in some she has 4, in some she has 6, and in some she even has 12 arms. And here you can see in the last slide, because of the paucity of time I'm not going into details to analyze everything, but you would see that as the time passes, it depends on the ruler, how they are represented, how the girl is represented. Here you can see that she is standing on Mahishasura, which is because at that time the rulers, Kushan dynasty, they were worshipping Shiva. And similarly, Mahishasura also keeps changing. In the beginning, he is the demon, the buffalo demon. In the second part, when we have rulers who were Buddhists, alright, okay, I have to sum up? Okay. So, over the last 1300 years, the goddess has proved her ability, yes, this is the last sentence, to transfigure and transform many of the female deities rooted in the native cults of India. With each victory, she acquired a new competence and a new power. The energy of all gods, the Parashakti, whose energy pervades in the entire universe. Thank you. So my request is to please keep to 5 minutes limit, because I think you must have read in the instructions that there is negative marking for exceeding the time limit. And our PPT presentation topic is Beyond Binary, Fostering Gender Inclusivity in School Education for Holistic Development. Meenakshi Yadav. Respected professors, distinguished members of the chair panel, and scholars, students, and whosoever is here present for learning. My name is Meenakshi Yadav, and I am a PhD research scholar at Banaras Hindu University. I am presenting this paper with my supervisor, Dr. Deepa Mehta, and the topic of the paper is Beyond Binary, Fostering Gender Inclusivity in School Education for Holistic Development. As we all know that NEP, New Education Policy, has been continuously focusing on the overall development of students. That is, they should be emotionally intelligent, academically intelligent, socially intelligent, adaptability quotient should be high. Hence, the paper is focusing how classrooms and the educational institutions can be more inclusive in their approach. The need for a shift in educational practices to ensure equity and comprehensive growth for all students, considering the diverse gender identities and expression. This paper will signify on holistic development in education. And as we all know that holistic development not only just
and enhancement in your academic output, but it also gives you good well-being, mental health and mindfulness. There are few suggestions that an educator can incorporate in the practice for making the school and the classrooms more gender inclusive. Promote diversity and representation. Integrate diverse practices and experience and materials into the curriculum to reflect the identities and background of the students. Inculcate literature, language, and examples of various genders, ethnicities, cultures, and abilities in the curriculum. Second is inclusive classroom norms. Collaborate with students to develop and establish ground rules and norms that promote respect, empathy, inclusiveness. Encourage open dialogue and active listening and constructive feedback. Provide flexible sitting arrangement. It should not be the क्या बोलते हैं कि teachers boys एक side बैठेंगे, girls एक side बैठेंगे. That should not be the approach. Use inclusive language and terminology. Offer diverse learning materials. Like NCERTs are coming up with gender-neutral textbooks in which, for example, there is a postman. They are also representing a postwoman. Address biases and stereotypes. Be mindful of the biases and stereotypes in the teaching practices. Instruction material and classroom interaction should be engaged among all the students with diverse needs, whether they are special students, gifted students, or students from other marginalized sections. Support social and emotional learning. This one aspect has been time and again coming, in every seminar, that the students should be given emotional learning support also, because this is a journey not just which is going to stop after school, but we are also making responsible citizens. Encourage students' collaboration and participation. Provide accessible learning material and technologies. One more important aspect is involve families and communities in promoting inclusivity. I'll be summing up because of the positive time. Gender equitable inclusive growth would eliminate gender gaps in the unemployment and opportunities, and it will also give increase in the creation of work for both men and women equally. Gender equitable growth should not be understood in the terms of enabling women's lives to be more better than men, but it should be understood that दोनों को हम समानता का अधिकार दें. The role played by the education in the society is pervasive and imperative. Today, as the society is moving forward and progress towards a world of acceptance, equality, inclusiveness, it is crucial for educators and especially educational institutions like us to design a curriculum to initiate the movements towards more inclusive and adaptive world. The current pedagogy shows us that the image of a world that is exclusively and biased will not be the system in the future. At last, I would like to only sum up with the lines that there are cases where the parents are raising their children gender neutrally. There are projects which are exclusively focusing on the inclusiveness. And with this, I would just like to quote the Declaration of 2030 Agenda for Sustainable Development will resolve also to create conditions for sustainable and inclusive economic growth, shared prosperity, decent work, taking into account different levels of national and international capacities. Thank you and have a great day. Have anyone else who has the PPT presentation here? Okay. So the next candidate is Rahul Yadav and Education, Dr. Hari Singh Gaur, University, Sagar, Madhya Pradesh. मेरा टॉपिक है आज की प्रेजेंटेशन का रोल ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम इन शेपिंग लाइफ स्किल एजुकेशन अंडर NEP 2020। मेरी शोध का विषय है माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के जीवन कौशल के प्रभाव का मूल्यांकन करना। मैंने अपने शोध को संगोष्ठी के विषय से सम्मिलित करने का एक छोटा सा प्रयास किया। में पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत करने की बात कही है, साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कितने पॉलिसी प्रोग्राम्स में जीवन कौशल की महत्ता बताई गई है। इंडियन नॉलेज सिस्टम के छोटे से परिचय से शुरू करते हैं। भारतीय ज्ञान प्रणालियों में ज्ञान, विज्ञान,
और जीवन दर्शन शामिल है, जो अनुभव, अवलोकन, प्रयोग और कठोर विश्लेषण से विकसित हुए हैं। इसने भारत की शास्त्रीय और अन्य भाषाओं को प्रभावित किया है, जो पाठ मौखिक और कलात्मक परंपराओं के माध्यम से प्रसारित हुई है। साथ ही इस अर्थ में भारत का ज्ञान में प्राचीन भारत की ज्ञान, उसकी सफलताएं, चुनौतियों और शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और वास्तव में जीवन के सभी पहलुओं से संबंधित भारत की विश्व आकांक्षाओं की भावनाएं भी सम्मिलित है। अब देखते हैं कि जीवन कौशल क्या है। What are the life skills? जीवन कौशल एक ऐसा शब्द इस बात को संदर्भित करता है कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दक्षताओं के एक समूह को संदर्भित करता है, जो विद्यार्थियों को अपने तनाव को प्रतिबंधित करने, स्वस्थ निर्णय लेने, प्रभावी ढंग से संवाद करने में कुशल बनाने में सहायता करता है। जीवन कौशल के माध्यम से एक छात्र या एक बच्चा अपने समक्ष आने वाली किसी भी प्रकार की जो भी समस्याएं, चुनौतियां होता है, उसका सफलतापूर्वक सामना करने में समर्थ होता है। According to WHO, जीवन कौशल को इस प्रकार परिभाषित किया है: अनुकूली और सकारात्मक व्यवहार की क्षमताएं, जो व्यक्तियों को रोजमर्रा की जिंदगी की मांगों और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाती है। WHO के अनुसार 10 core life skills हैं, जिसमें पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, coping with stress, coping with emotion, empathy, self awareness and interpersonal relationship. Next. यूनिसेफ ने भी 3 प्रकार के जीवन कौशल की बात करी है, जिसमें बेसिक, साइकोलॉजिकल, सोशल स्किल, सिचुएशन स्पेसिफिक स्किल, अप्लाइड लाइफ स्किल। नेक्स्ट। इन सभी कौशलों को अगर हम 3 डोमेन्स में बांटना चाहें तो पहला कॉग्निटिव स्किल, दूसरा सोशल स्किल, तीसरा इमोशनल स्किल्स। कॉग्निटिव के अंतर्गत सेल्फ अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। सोशल स्किल्स के अंतर्गत एम्पैथी, इंटरपर्सनल रिलेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स और इमोशनल स्किल्स के अंतर्गत कोपिंग विद स्ट्रेस, कोपिंग विद इमोशन एंड सेल्फ मैनेजमेंट। नेक्स्ट। अब आईकेएस और लाइफ स्किल की बात करते हैं कि किस प्रकार हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के द्वारा बच्चों में जीवन कौशल को विकसित कर पाएंगे। अगर हम योगा और आयुर्वेदा की बात करें, ये प्रथाएं प्राचीन शारीरिक और मानसिक कल्याण को बढ़ावा देती हैं, जिसके द्वारा हम एक विद्यार्थी में तनाव प्रबंधन, आत्म देखभाल और स्वस्थ आत्म को विकसित कर सकते हैं। साथ ही एथिकल वैल्यूज की बात करें तो इससे बच्चों में सत्य, अहिंसा, करुणा जैसे मूल्यों को विकसित किया जा सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात करें तो जैसे हमारे वेद, उपनिषद, इन सब का ज्ञान कराने से बच्चों में इस प्रकार की स्किल्स को विकसित किया जाता है। Living in harmony with nature, IKS emphasizes respecting the environment and living sustainability. This knowledge translates to life skills like resourcefulness, conservation, and appreciation of the natural world. Next. उसी प्रकार हम अगर आयुर्वेदा की बात करें तो ये the ancient Indian system of medicine focused on holistic healing and preventing healthcare. योगा, वैदिक एजुकेशन की बात करें तो वैदिक is ancient Indian primarily imparted through the Vedic tradition, emphasize the pursuit of knowledge, critical thinking skill and moral values. धर्म की बात करें तो धर्म the moral and ethical duty prescribed by Hindu scriptures guiding individuals in leading righteous life, understanding one's dharma and adhering to moral principles such as truthfulness, compassion and non-violence. Art of welfare, art of warfare. युद्ध कला की बात करें तो प्राचीन भारत में विशेष रूप से युद्ध कला पर बहुत ध्यान दिया जाता था, जिसके द्वारा आत्मरक्षा जैसे कौशलों को विकसित कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे गेस्ट सर ने बात करी थी, पंचकोश की बात करी थी, उसके द्वारा भी हम स्किल्स को, मैंने यहाँ बैठे बैठे को सोचा कि इनके द्वारा भी हम बच्चों में जीवन कौशल को विकसित कर पाते हैं। कोई शॉर्ट नोट बनाया वो भी आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे उपनयन कोश की बात करी है, इसके द्वारा उन्होंने कहा शुद्ध और स्वस्थ भोजन देना। हम ये लाइफ स्किल बच्चों में सेल्फ अवेयरनेस विकसित करेंगे तो वो अवेयर होंगे कि उन्हें किस प्रकार का स्वस्थ और स्वच्छ भोजन लेना है। प्राणमय पोषण जो बच्चों में फिजिक्स को अच्छा लगता है, इसके माध्यम से हम बच्चों में सेल्फ अवेयरनेस विकसित कर सकते हैं।
IKS ज्ञान के कोर्स से संबंधित प्रमाणित अच्छी तरह से शोध की गई व्यापक सामग्री विभिन्न स्कूल पाठ्यपुस्तकों और अन्य विशेषज्ञों के लिए पाठ्यपुस्तक की संदर्भित सामग्री के रूप में काम करती है। भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी अधिक व्यापक और प्रासंगिक रूप से प्रासंगिक शिक्षण अनुभव बनाने के लिए आधुनिक शिक्षा के साथ पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करने के मार्ग को पहचानती है। थैंक यू एवरीवन। हम बच्चों को कोई वेद या अध्ययन करवाएंगे सर, जैसे कोई उपनिषद या वेदों का ज्ञान है, तो कोई इसका एक उदाहरण दीजिए कि किस ऐसे श्लोक से या किस अध्याय से आप स्वयं प्रभावित हो जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि ये हो सकता है। सर गीता में जो श्लोक है कुछ श्लोक नहीं याद है, पर क्योंकि सर मुझे सर अच्छा आरोन सीमा पांडे, डॉक्टर सीमा पांडे प्लीज। Very good afternoon to all of you, respected guests and my dear colleagues and students. आज के सेमिनार में बहुत बार इस टॉपिक का जिक्र हुआ है कि इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मैं स्पोर्ट्स को इस कंटेंट जो हमारा आज का मेन टॉपिक है उससे इंटरकनेक्ट करना चाहती हूँ। Sports culture. It is a profound impact on the various aspects of global culture, including sports. Its rich history, spiritual insight, holistic approach continue to the influence to the head. हमारे पौराणिक कथाओं में, परंपराओं में, हमारे जो एथिक्स, फिलॉसफी, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स में कैसे, जैसे कि हमारा शतरंज, हमारा कलाई पट्टू, गटका एंड बहुत सारे जो हमारे स्पोर्ट्स की चीजें, मलखम्ब, धनुर्विद्या, मल्ल युद्ध, ये सारे के सारे हमारे पुराने एंशिएंट समय से लिए गए हैं और कहीं ना कहीं उनका जो प्रभाव है आध्यात्मिक आधुनिक युग में वो आज हमको दिखता है, लेकिन जड़ें उसकी हमारी भारतीय परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। जैसा आप देख सकते हैं हॉलिस्टिक सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन इन स्पोर्ट्स में डाइवर्स हेरिटेज, एंशिएंट टेक्स्ट, फिजिकल फिटनेस एम्फेसिस। जितने भी हमारी पौराणिक कथाएं हैं, महाभारत, रामभारत, जिनको महाकाव्य जिनको हम फॉलो करते हैं, जो हमारी बेसिक रूट है इस समय सनातन धर्म की, उसमें हर जगह इन बातों का जिक्र बहुत अच्छे से पाए गए हैं। योगा और मेडिटेशन ये स्पोर्ट्स कल्चर में बहुत ज्यादा इस समय पूरे विश्व में प्रभावित किया है। माइंड बॉडी कनेक्शन, फोकस, परफॉर्मेंस अपने और बेटरमेंट के लिए स्पिरिचुअल हार्मनी। हम आयुर्वेद को कहीं इग्नोर नहीं कर सकते, हर लेक्चर में कहीं ना कहीं आयुर्वेद का भी जिक्र है। तो आयुर्वेद हमारे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को कैसे इंपैक्ट करता है, वाइटल हेल्थ प्रिंसिपल्स, यानी कि हमारे बहुत सारे आयुर्वेदिक तुलसी, अश्वगंधा, बहुत सारे जिंजर, लहसुन, जिसको हम लोग ये देख सकते हैं कि कोरोना काल में हमने अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए इन्हीं मसालों का उपयोग करके हमें पता चला कि इंडियन इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये आयुर्वेद ने ही हमें ये सब ज्ञान दिया, नेचुरल एनर्जी बूस्टर के तौर पे बैलेंस करना और उसको रिस्टोर करना। इंडियन स्पोर्ट्स कंट्रीब्यूशन टू द कल्चर, कबड्डी, क्रिकेट, योगा और कलारी पट्टू। कुछ ऐसे फिलॉसफी और एथिक्स हैं जो हमारे स्पोर्ट्स की ट्रेडिशंस हैं, जैसे कि हमारे जो हमारे एथिकल कंडक्ट है, वैल्यूज एंड इंटीग्रिटी, स्पिरिचुअल हार्मनी, बैलेंस, माइंड बॉडी अप्रोच। कुछ न कुछ ऐसे इम्पैक्ट इंडियन ट्रेडिशन में है जिन्होंने पूरे विश्व में छाप छोड़ी है। पीटी उषा जी, क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, ध्यानचंद जी, जिसको आइकॉनिक फील्ड हॉकी प्लेयर बोला गया, मिल्खा सिंह। कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम इस पूरे उसमें कंक्लूड करते हैं। इसके साथ जो हमारा मेन पॉइंट है ग्लोबल स्पोर्ट्स कल्चर, इसमें योगा एंड माइंडफुलनेस इन द एथलेटिक्स, कि हम खिलाड़ियों को उनके मेंटल फोकस को बढ़ाने के लिए उनकी इंजरीज को प्रिवेंट करना, उनको रिहैबिलिटेट करना ड्यूरिंग द कंटिन्यू एक्सरसाइज, माइंड बॉडी कनेक्शन, हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, ग्लोबल एडॉप्टेशन एंड
एंड रिकॉग्निशन। आयुर्वेद के भी हम जैसे हर्ब्स की बात कर रहे थे, होलिस्टिक अप्रोच, हर्बल रेमेडीज, डायरेक्टरी गाइडलाइन, हॉलिस्टिक वेलनेस प्रोग्राम, क्रॉस कल्चर एक्सचेंज एंड कोलैबोरेशन, यानी कि अलग अलग कल्चर से कुछ न कुछ अच्छा सीखना, मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस, जैसे कि हमारा बहुत पुरातन समय का जो कलारीपयट्टू गटका, कलारीपयट्टू केरल का एक बेसिक फॉर्म है जिसमें हम सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीखते हैं। इसमें हम लोग इक्विपमेंट का यूज करते हैं, ट्रिक्स का यूज करते हैं। गटका एक पंजाबी रिलीजियन से पाया गया है, इसमें हम लोग बहुत सारी कृपाण और इसकी जो सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स हैं ये बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे कल्चर को। और ये जो आज के समय का मार्शल आर्ट है वो कहीं ना कहीं इनके थ्रू ही बेसिक रूट्स में बना गया है। कल्चर, स्पिरिचुअल वैल्यूज इन स्पोर्ट्समैन, नॉन वायलेंस जिसको हम अहिंसा कह रहे हैं, डिसिप्लिन, सेल्फलेस, सेवा करना, अपने बारे में ना सोच के समाज के प्रति हमको इसमें देखना कि स्पोर्ट्स ऐसा है जो ग्लोबल लेवल पे किया गया। और एक लास्ट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रिकेट एंड कबड्डी। इस समय हम जानते हैं खेल जगत में कहीं ना कहीं क्रिकेट ने अपना पूरा कब्जा मारा हुआ है। हम कितना भी हम आगे और स्पोर्ट्स को करते हैं तो क्रिकेट हमारा जो इंटर रिलीजियन दूसरे एक्सचेंज कल्चर की बात करते हैं तो क्रिकेट का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, चाहे फैन एंगेजमेंट है, क्रॉस कल्चर टीम्स है, स्पोर्टिंग डिप्लोमेसी है। उसी के साथ साथ प्रो कबड्डी, यानी कि कबड्डी में प्रो कबड्डी लीग्स हैं, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हैं और कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि ये सारा जितना भी जो ग्लोबल स्पोर्ट्स कल्चर है, ये जो हमारी भारतीय जड़ें हैं, हमारी जो भारतीय फिलॉसफी, हमारे एथिक्स, हमारे जो स्वदेशी खेल हैं वो कहीं ना कहीं विश्व में हमारे भारत को एक बहुत इम्पोर्टेंट स्थान दिलाने के लिए इम्पोर्टेंट है। योगा, आयुर्वेद और जिसको बोल सकते हैं हमारा योगा के थ्रू, ये सारी चीज़ों में हम लोग अपने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्व में जो चाइना में मार्शल आर्ट है उसका भी जो जड़ है केरल के कराईपयट्टू से इम्पोर्टेंट है। तो यही हम इस कंटेंट में कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों की संस्कृति पर प्रभाव। दक्षिणी पूर्व एशियाई देशों की संस्कृति पर प्रभाव। मेरा पीएचडी का जो टॉपिक है वो है भारतीय ज्ञान परंपरा में कला प्रबंधन, विशेष संदर्भ अंकिया एवं पर्यावरण। भारत की महाकाव्यों की बात करें तो रामायण और महाभारत और हमारा एक नाट्य शास्त्र जो हमारे आर्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बेसिकली मैनेजमेंट की सोर्सेज हैं जो कल्चर से है। तो हम रामायण की बात करते हैं। भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशियाई और पूर्व एशियाई देशों में रामायण कथा का विस्तार हुआ है। वहाँ की कला, संस्कृति, दर्शन, जीवन शैली आदि में रामायण की व्यापृति देखी जा सकती है। ईसा के 3वीं शताब्दी में म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिब्बत, चीन, जापान तथा श्रीलंका आदि देशों में भारतीय संस्कृति का विस्तार, देशों की स्थापना हो चुकी थी। इस बीच में इन देश में रामायण का आधारित कई काव्य, महाकाव्य, कला रूपों का विस्तार हुआ है। भारतीय तथा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में रामायण का जो मेन सोर्स हमको देखने को मिलता है वो सबसे पहले तो थाईलैंड में दिखता है। थाईलैंड में एक आर्ट का फॉर्म है जिसको रामायण कहा जाता है। ठीक है, रामकेन में बेसिकली ये उस तरीके का आर्ट फॉर्म है कि हम जैसे रामायण को खेलते हैं वैसे रामकेन को खेला जाता है। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो आर्ट फॉर्म है वहाँ पे रामायण की जो पुरानी कथाएं हैं उनको खेला जाता है, आर्ट फॉर्म में खेला जाता है और ऑडियंस को कनेक्ट किया जाता है। ये सबसे पहले हम लोगों को सबसे ज़्यादा देखने को थाईलैंड में मिलता है, जो इंडियन कल्चर वहाँ पे अडॉप्ट किया है। क्योंकि गया कैसे, अगर हम इसकी बात करें तो उपनिवेशी काल में जब यहाँ पे लोग आए उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किए, निवेश किए हमारे साथ, जो भी चीज़ें हम लोगों के साथ हुई थी उनको एक समूह चाहिए था जहाँ पे वो लोग रहेंगे। अब ऐसा तो था नहीं कि वो 10-15 दिन 1 महीने के लिए आए थे, वो लोग आए लंबे पीरियड के लिए थे। 600 सालों तक उन्होंने हम पे राज किया। हमारे देश से जब वो वापस वहाँ पे गए तो हमारे कल्चर जो था, ट्रेडिशन जो था वो उसको लेके गए।
और इनको एक चीज़ ये समझ में आई कि यहाँ पे जब हम यूपी, बिहार और एमपी छत्तीसगढ़ में देखते हैं तो हमारे पास एक मजदूर तबका जा रहा है। अब उनको लेबर क्लास के लोग चाहिए थे जो यहाँ से वो लोग अपने साथ लेके गए। हम लोग वहाँ गए तो हमारी सोच में एक चीज़ बसी हुई है, वो है यहाँ का रामायण महाकाव्य, ठीक है, जिसके इतर हम लोग कभी सोचते नहीं हैं। तो हमारे साथ वो कल्चर भी हमारा वहाँ पे गया, और जब उस कल्चर को हम वहाँ जाते हैं तो धीरे धीरे हम प्रोसेस देखते हैं कि वहाँ पे हमारी संस्कृति का किस तरीके से विस्तार होता है। हम नाइके की बात करें, कंबोडिया की बात करें, थाईलैंड की बात करें, लाओस की बात करें, यहाँ सारी जगह आपको धीरे धीरे हमारा कल्चर प्रमोट होता दिखेगा। इसका रीजन सिर्फ इतना है कि यहाँ से लोगों ने किस तरीके से पलायन करना शुरू किया, ठीक है, डायस्पोरा से जैसे चीजें जाती गई और हमारा कल्चर वहाँ प्रमोट होता गया, ठीक है। हम अगर मूलता देखें किस तरीके से मॉरिशस में रामायण, अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट हमको ये देखने को मिलती है, कुछ रामायण वहाँ की हैं उसमें कई तथ्य जो है वो चेंज हुई थी। जैसे मॉरिशस की रामायण में हम एक तथ्य ये देखते हैं, यहाँ हमारा जो सीता माता का जो अग्नि का वो है, क्या बोलते हैं उसको, पाठ नहीं, ठीक है, सीता माता का अग्नि का अग्नि परीक्षा, हाँ, अग्नि परीक्षा जो है वहाँ पे चेंज है। वहाँ पे क्या है कि इंद्र जी जब आते हैं वो शिव जी को बोलते हैं कि प्रभु आप भी कुछ करिए, सीता माता अग्नि परीक्षा देने जा रही हैं। देन शिव जी राम जी को और पार्वती जी को और सीता जी को बुलाते हैं और वहाँ वो डिस्कशन करके इस चीज़ का सोल्यूशन करते हैं। ये एक अलग चीज़ वहाँ पर देखने को मिली। जैसे हम लोग किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो धीरे धीरे सीधे किसी के कानों से कुछ और पहुँच जाती है, वो चीज़ वहाँ भी देखने को मिली। पर इतना बड़ा चेंज नहीं देखने को मिला। वो चीज़ हम वहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से प्रेडिक्शन जो गया है वो वहाँ पे अभी भी हम लोग धीरे धीरे प्रोसेस यही चलता है और हमारी जो संस्कृति है उसका प्रभाव वहाँ पड़ता रहा। Later on, when the session is concluded, then you can ask. I call upon Dr. Anjali Zaira, and it is a pleasure to announce her name. Is she here? Okay, she's not downstairs. And her topic is Unlocking Potential, Life Skills and National Education Policy 2020. All the respected teachers, our esteemed guests who are chairing this session, our respected Principal Professor Chandra Upadhyay sir, Dr. Amit Kumar Mishra sir, Dr. Shiv Kumar Mishra sir, and Dr. Neetu Singh ma'am. My heartfelt gratitude to respected Principal Professor Manjula Upadhyay ma'am, the members of the organizing committee, and all the faculty members of Navya Kanya Mahavidyalaya for giving me opportunity to present my paper. My name is Nancy Yadav. I am a research scholar from Department of Education, University of Lucknow. And the topic of my paper is Unlocking Potential, Life Skills and National Education Policy 2020. So first we will understand what is life skills. Life skills are very important at all stages of life. Life skills like empathy, self-awareness, interpersonal relationship, coping with stress and emotions. These all life skills help the learner to face all the hurdles in their life. Now, the NEP 2020 recognizes the importance of instilling these life skills at an early stage, fostering attributes such as creativity, critical thinking, collaboration, and emotional intelligence among learners. So, my paper aims to highlight the importance of life skills in different domains of life, including education, employment, and mental health. So now we will understand the concept of life skills. See, different organizations have defined life skills according to their respective area of work. So first we will see how World Health Organization has defined life skills. World Health Organization considers life skills in the context of health and define life skills as abilities for adaptive and positive behaviors that enables individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life. Life skills are thus viewed as psychosocial competencies to propagate mental, emotional, and physical well-being. Another one is from UNICEF. UNICEF, on the other hand, looks at life skills through a right-based empowerment approach for youth. Life skills are defined as a behavior change
The National Education Policy on Education stresses on the role of education for fulfilling human potential, developing an equitable and just society, and promoting national development. So now we will discuss the key features of NEP 2020. Empowering and transforming education, foundation of New India, preparing India for 21st centuries, ensure knowledge, attitude and skills, enabling how to think, to develop critical thinking and innovative thinking abilities. So now we will see what are the roles of life skill in holistic development. This section explores the pivotal role of life skill in fostering holistic development among learners. It examines how the acquisition and application of life contribute to cognitive, emotional, social and physical well-being. Now we see how life skill is an important part in curriculum design. The NEP 2020 advocates for a flexible, multidisciplinary curriculum that goes beyond rote learning and encourages critical thinking, creativity and problem-solving skills. Another one is teacher training and capacity building. Effective implementations of life skill education necessitates adequately trained and motivated educators capable of nurturing these skills in students. This section examines the importance of teacher training and capacity building initiatives in aligning pedagogical practices with the objective of NEP 2020. So at last, I would like to conclude that by fostering holistic development, critical thinking and adaptability among learners, life skill education not only prepares students for academic success, but also equips them with the competencies needed to thrive in the dynamic realities of the 21st century. It calls for concerned efforts from policy makers, educators, parents and stakeholders to realize the vision of unlocking the full potential of every learner through holistic and inclusive education system. Thank you everyone. Have a nice day. Expression. The next is Mr. Santosh Kumar Yadav. He is from Lucknow University Research College. नीति में महिलाओं का योगदान व समस्याएं। सभी शिक्षकगण का चरण स्पर्श करता हूँ और जीवन का ये पहला मंच मेरे है। ग्रामीण अंचल से मैं यहाँ तक पहुँचा और अभी मेरा DMRS PGT में चयन हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता और उसके साथ शिक्षक को मैं कनेक्ट करूँगा। कोई मैंने ज़्यादा इस पे अभी रिसर्च भी नहीं किया जो टॉपिक है, लेकिन मैंने एक चीज़ ये रियलाइज किया कि जो नई शिक्षा नीति में जो महिलाएं या जो बच्चियां पढ़ रही हैं, आगे जो पढ़ते पढ़ते मान लीजिए उनकी पति की डेथ हो जाती है, इतनी ज्यादा समस्या है। मैंने नियर अबाउट 10 ऐसे महिलाओं से मिला जिनकी इतनी समस्या है कि हम किताबों में रह जाते हैं और उनकी दुनिया में नहीं जा सकते, नहीं जा पा रहे हैं। इस तरह की जो समस्या है उस पर हमारी जो ये समितियां बनी हैं, शिक्षा आयोग है, नई शिक्षा नीति है, उनको विचार करना चाहिए कि उनको कैसे कनेक्ट करें जिनसे उनकी जो दिनचर्या की समस्याएं हैं, जो रोजी है वो चल सके। अभी मैंने पर्सनली एक प्रतापगढ़ से हूँ मैं, तो एक मेरी भाभी हैं, उनके हस्बैंड नहीं है, उनके घर गया, इतना जीवन उनका अस्त व्यस्त है, उनके बच्चों की शिक्षा, उनकी समस्याएं, मतलब उनके पास कोई भी ऐसे संसाधन नहीं है जिससे वो अपने जीवन चला लें। और हमारे पास, आपके पास शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से पूरी दुनिया को जगा सकते हैं। तो मैं मैं स्टार्टअप करना चाहूँगा कि जो महिलाएं समस्या में हैं उनके लिए मैं कितना अच्छा कर सकूँ, ये मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी। और मैं उस जगह जा रहा हूँ, ऐसी जगह पे मेरा चयन हुआ है जहाँ पर शिक्षा का प्रकाश बहुत ही विलंब से पहुँच रहा है, या कहिए कि वो उस शिक्षा से दूर हैं। तो मैं ये बहुत कम शब्दों में कहना चाहूँगा कि आज जो हम कर रहे हैं, क्या उसका आने वाले 10 साल में क्या परिणाम होगा। अगर हमने महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया तो हमारे साथ साथ 3 पीढ़ी, हमने ये रिसर्च किया, 3 पीढ़ी का नुकसान होता है। जैसे मैं हाई स्कूल में फेल था, सब विषय में फेल था, और मेरी माता जी गृहिणी थी, इतनी समस्या, उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दे पाए कि बच्चा कहाँ जाएगा। अगर वो पढ़ी होती मैं यहाँ पे और पहले आ गया होता, आया तो लेकिन लेट आया।
इसलिए हम ये देखते हैं शहरों में है, जैसे आप लोग देखते होंगे बच्चे को उठने से लेकर रात के 10 बजे तक भैया ये खाएगा, भैया ये कैला, भैया वो कैला, भैया एकदम मतलब बहुत ही अच्छे से पाले जा रहे हैं। लेकिन हम लोग कुटज हैं, हम लोग ऐसे कुटज हैं कि हमको कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन हमको जहाँ पहुँचना हम पहुँच गए। अब मेरा उद्देश्य ये है कि हम वहाँ तक पहुँचने के बाद क्या अपने उस शिक्षा का सही योगदान समाज में कर पा रहे हैं कि नहीं, एक बात। और दूसरी बात, मैंने ये रिसर्च किया कि लोग बहुत टेंशन में जी रहे हैं। इतनी टेंशन है, जितनी ज्यादा क्रीम है उतनी ज्यादा टेंशन है। मैं सोच रहा था मैं फिनलैंड जाने वाला हूँ। फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे लोग बहुत खुश हैं। हम ये सोचते हैं वो क्यों खुश है। पहले हम बहुत खुशी रहते थे, हम पहले बहुत हंसते थे, सबके साथ बहुत चाहते थे, स्कूल में हो, घर में हो, समारोह में। अब क्या है, मैंने हीरे का पहना है, मैंने फलाने पहना है, मैंने ढीके पहना, उसमें हमारा जीवन सिमटा हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी लाइन कही है, हम बंधे हुए हैं जंजीरों से, कोई सोने के जंजीरों से बंधा है, कोई लोहे की जंजीरों से बंधा है, हमको उसको काटना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं रिसर्च में। हमारा हिंदी साहित्य और सिनेमा टॉपिक है। मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या गोदान मेरी माँ जानती है क्या उसको पता है? हाँ, उसको पता है कि भूख होती है, ग्रामीण अंचल में लोग समस्याओं से जूझते हैं, लेकिन चलचित्र के माध्यम से उसको पता होना चाहिए कि जो समस्या है, जो गरीबी है, उसके चक्कर में कैसे उसकी डेथ हो जाती है। हिंदी साहित्य और नई शिक्षा नीति की महिलाओं पर ज्यादा फोकस करें, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हंसी के कैसे रास्ते ढूंढे, कैसे हम खुश रहे, क्योंकि अंत में जितना भी काम आप कर रहे हैं, चाहे मेकअप कर रहे हैं, चाहे जूता पहन रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, अंततः आपकी आत्मिक खुशी होनी चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है। और उन महिलाओं के लिए जो शिक्षा से दूर हैं, जो हमारे प्रोफेसर हैं, जो आने वाले भविष्य में प्रोफेसर बनेंगे, प्लीज मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ उनके लिए कुछ किया जाए बेटे, ताकि उनके साथ साथ उनका परिवार का भी जीवन सुखमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वविद्यालय को। The next candidate is Shailja Mishra, Assistant Professor from KRC Girls Degree College, Bangalore. And my friends and colleagues, the topic of my paper is the Indian knowledge system dividing India's roots. So very briefly I will speak about this topic. India has a rich cultural heritage spanning thousands of years, characterized by diverse traditions, languages, arts and philosophies. It has been a hub of intellectual and spiritual pursuits since ancient times, with contributions in mathematics, astronomy, medicine, literature and philosophy. From the ancient civilizations of the Vedic period to the advancements during the Gupta Empire and the Islamic and British colonial periods, India has been a center of learning and innovation. Its cultural richness is reflected in its festivals, music, dance, cuisine, architecture and religious practices, making it a fascinating and vibrant tapestry of human civilization. We can discuss how the British rule deteriorated our education system, but there is a lack of, or we can say, I have very less time, so I will just briefly say something about this. During the British rule in India, which lasted for about 2 centuries, the education system underwent significant changes that had a detrimental impact on the country's socio-economic fabric and intellectual progress. The British implemented policies that aimed to serve their colonial interests rather than foster the holistic development of Indian society. The British introduced English medium education, which marginalized indigenous languages and knowledge systems. This led to a disconnect between the education system and the cultural roots of the Indian population, hindering the holistic development of the students.
So we should come out of this education system and we should reroute our studies to the Vedic era, or we can say what Dayanand Saraswati said, back to Vedas. The concept of Indian knowledge system has gained momentum in recent years as a movement to revive and promote India's ancient traditions, wisdom and indigenous knowledge. It seeks to integrate its traditional knowledge with modern science and technology to address contemporary challenges and foster holistic development. The Indian knowledge system recognizes the wealth of knowledge embedded in ancient texts, including the Vedas, Upanishads, Ayurveda, Yoga, and various philosophical and scientific treatises. It seeks to integrate this traditional wisdom into modern education and research frameworks. Indian knowledge system encourages an interdisciplinary approach that bridges the gap between traditional and modern knowledge systems. It promotes dialogue and collaboration between scholars, scientists, practitioners and policymakers from diverse fields to explore synergies and innovative solutions. The Indian knowledge system advocates for the preservation and promotion of the indigenous practices such as organic farming, sustainable living, traditional medicine and etc. These practices embody centuries of wisdom and are often more environmentally friendly and culturally sustainable than modern alternatives. The Indian knowledge system aims to revive and celebrate India's diverse cultural heritage, including languages, arts, rituals, festivals, and storytelling traditions. By reconnecting with cultural roots, the Indian knowledge system fosters sense of pride, identity, and belonging among Indians and promotes cultural exchange and understanding it globally. Indian knowledge system emphasizes the importance of incorporating traditional knowledge into formal education systems at all levels. Obviously, education begins at home, so mothers, they need to be more educated and we can say that the traditions and customs which the family owns, they should start from that. From primary schools to universities, the Indian knowledge system has a wide variety of opinions and objectives which can be fulfilled by incorporating the values which Indian knowledge system provides. It supports research initiatives that explores the relevance of ancient Indian knowledge in fields such as agriculture, healthcare, architecture, and sustainable development. Indian knowledge system advocates for policy supports and funding from government agencies and international organizations to promote research, education, and innovation in traditional knowledge systems. It calls for the recognition and protection of traditional knowledge holders and practitioners' rights, as well as the integration of indigenous perspectives into policy-making processes. The revival of Indian knowledge system represents a holistic approach to education, research, and development that honors India's rich cultural heritage by addressing contemporary challenges in a sustainable and inclusive manner. Now, something about the new education policy. Under the new education policy of India, the country is indeed embarking on a transformative journey to restructure its education system with a renewed emphasis on the Indian knowledge traditions. The NEP approved in 2020 aims to overhaul the entire education system from early childhood to higher education to make it more inclusive, holistic and aligned with the needs of 21st century. So there are many positive points, but also there are many negative points also. Or what we can say that we can also critically analyze the new education policy. While the new education policy of India has received praise for its ambitious goals and potentials to transform the education system, it has also faced several criticisms, like it lacks a clear roadmap for implementation, leading to uncertainty about how these ambitious goals can be achieved. Because we, as I said, we have to overhaul the whole education system, and there are so many inconsistencies because of the education system which we have been following
which has been promoted by Lord Macaulay, that it cannot be overhauled in a blink of an eye. So we need a proper strategy which is not very clear in the new education policy. Also, there are very practical problems which are being faced by the students, teachers, and also the families. They cannot afford the education not only at the primary level but for technical assistance and all that. So what we can do it, solution is also important now. As I said, back to the roots, back to the Vedas, back to the indigenous knowledge system. If a person wants to do well in farming, he should only follow his father, what his forefathers have been doing. So skill development can begin at home. But the problem is we have commercialized everything. The main problem which education system faces is commercialization, because of which the economic disparity has increased so much, and it has also resulted in the social disparity. Education was free in India. It was everyone's right. But now we have to, we cannot just claim it. Although we have so many freedoms and rights and everything still. Thank you. Chandramohan Upadhyay to share his views with us because he has to leave. होता है, मैं इसी को मानता हूँ और बहुत मैं इसलिए चाहता हूँ कि नौकरी इतनी कठिन हो गई है बाहर से आए हुए म्यूनिसिपल लोगों की, कि हम लोग को बहुत बार देखना पड़ता है कि कार्य में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो नौकरी बचाना बहुत जरूरी है। भले मैडम ने कमर्शलाइजेशन का बहुत विरोध किया है, लेकिन बिना उसके काम नहीं चलने वाला है। तो नौकरी बहुत जरूरी है। अब रही बात थोड़ा सा मैडम शुरुआत आपसे करेंगे, जल्दी है। हमारे बीच में हमारे बैच में टाइम दे दो, इसको कंक्लूड करेंगे। मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। अब मैंने सवाल पूछा तो मुझ पर कुछ गुस्सा सी लग रही है। ऐसा तो नहीं, देखिए सवाल तो उठता है कि हमारे नए बच्चे उनको जरूरी है वो पहले पुनर्जागरण होना। अगर आप भारतीय ज्ञान परंपरा की बात आज की डेट में कर रहे हैं तो आप कैसे वहां तक पहुंचेंगे, और फिर वहां से जाने के बाद क्या लेके आपको आना। आप लोग बार बार एक चीज रिपीट कर रहे हैं जो मुझे आपसे संतुष्ट है कि वेदों की ओर दौड़ो। निश्चित रूप से वेदों की ओर दौड़ो, लेकिन क्या वैदिक समाज की स्थापना के लिए लौटो, या वेदों से प्राप्त अनुभव और ज्ञान के वे तत्व जो जीवंत है, या हम वेदों की सोसाइटी की अगर बात करें तो आई मस्ट रिमाइंड यू कि सभा समिति और विरत 3 प्रकार की समितियां हुआ करती हैं, और वैदिक काल का अंत आते आते विरत से महिलाओं को वर्जित कर दिया गया। तो ऐसा नहीं था कि सब कुछ उस वक्त गोल्डन एज थी। और दूसरा सवाल मेरा आप लोगों से भी जरा विचार कीजिएगा कि वैदिक सोसाइटी भी थी, उपनिषद की सोसाइटी भी थी, हमारे पास संस्कृति भी थी, सभ्यता भी थी, तब हमारे पास कोई ग्लोबलाइजेशन का संकट नहीं था, फिर हम गुलाम थे। इस सवाल का जवाब हमें ढूंढने के लिए इन महान ग्रंथों का, उपनिषदों का, वेदों का अध्ययन के साथ साथ उन तत्वों को लेकर हम वर्तमान में कैसे आ सकते हैं। यही बात पुनर्जागरण में सिखाया दुनिया को। अगर हमारा वेद कहता है कि आनो भद्रां ततो यन्तु विश्वतः, तो हमें तो कभी भी किसी के ज्ञान से ऑब्जेक्शन नहीं था, तो हमें तो वास्तव में ज्ञान लेना चाहिए। इसलिए मैं किताब लाया भी आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आपका ऑब्जेक्शन मेरा ये है कि हमें अपने संदर्भ को और लक्ष्य को, रिसर्च में 2 चीज जानना बहुत जरूरी है कि हम अगर वेदों की ओर लौटना चाहते हैं या भारतीय ज्ञान परंपरा को लाना चाहते हैं तो आखिर कौन सी चीजें हैं जो वर्तमान में लाई जा सकती है, और कौन ऐसी चीज है जो हम बाहर से ले सकते हैं और दोनों को मिला करके, या अगर बाहर की जरूरत नहीं तो न सही, लेकिन ये तब तो क्या है, उनको पहले कैटलॉग करिए, उनको एक तरह से पॉइंट में लिखिए और लिखने के बाद रिसर्च पेपर प्रस्तुत करिए। ये वो चीजें हैं जिनको हम समझते हैं। वेदों की ओर लौटो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, इससे क्या होने वाला है। तो इसलिए जरूरी है कि उन चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करें। संतोष यादव जी तो स्वयं बहुत कुछ कहे गए, उनके कहना बहुत मुश्किल है। सीमा जी से मैं शुरू करता हूँ, डॉक्टर सीमा मांगे। हाँ, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, बार-बार नहीं समझ, अध्यात्म से आपने क्या behind the point both is my spiritual pure soul and the strongest of the mind. inner soul pure है और उसको हम स्पोर्ट्स में, जैसे हम बोलते हैं स्पोर्ट्समैनशिप है,
बेईमानी नहीं करना, चीटिंग नहीं करना, दैट इज द स्पिरिचुअल प्योर बाइबल। आपने गीता पढ़ा है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हम सभी लोग के जीवन में बहुत सारे पार्ट है, कोई साइंस का है, कोई कॉमर्स का है, किसी का है, और ये भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप गीता पढ़िए, लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं तो पढ़ना पड़ेगा, और वहां पर आपको अध्यात्म की परिभाषा मिलेगी कि नो योरसेल्फ। एक ही लाइन में अध्याय 2 से लेकर 4 के बीच में जब आप पढ़ेंगी तो अध्यात्म को परिभाषित किया गया शरीर से लेकर और अंतरात्मा तक। फर्स्ट यू हैव टू इन्वेस्टिगेट। तो जो सोक्रेटिस है पुराना ऋषि, थैंक यू सो मच, तो वो कहता है कि भाई देखिए, नोबलेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द वर्ल्ड इज टू इन्वेस्टिगेट योरसेल्फ। दुनिया में सबसे पहला लक्ष्य आपका है कि पहले तो अपने को जानो। जो अध्यात्म है वो मतलब है अपने को जानो। अध्यात्म इज नॉट समथिंग कि हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। तो उसके बाद आदमी अपने आप ही आ जाएगा। राहुल यादव जी ने बताया था, उसको मैं मैडम बताएंगे। अब आई एम नैन्सी यादव, इनका फ्लो बहुत ही अच्छा था। आपसे भी मेरा एक सवाल है, जरा बताइए कि आप होलिस्टिक डेवलपमेंट किसे मानते हैं? आप किसे मानते हैं? मैं पूरा जैसे कहते हैं ऑल ओवर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशल, स्पिरिचुअल। जैसे कि क्या होता है ना, बहुत सी चीज़ होती है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, तो हमें क्या एक जेलसी आ जाती है कि अगर हम कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात करें, एक दूसरे से सीख के सारी चीज़ें करें, इसको कोलैबोरेशन करते हैं, तो हम अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होलिस्टिक कोई एक गोल हो सकता है या डिफरेंट गोल? होलिस्टिक में सब कुछ आ जाएगा। नहीं, यही सवाल उठता है कि हर आदमी के लिए होलिस्टिक का मीनिंग डिफरेंट होगा। जो स्पोर्ट्स पर्सन है, मैडम हमारी स्पोर्ट्स की टीचर है, तो उनका जो इस होलिस्टिक का कांसेप्ट होगा दैट विल बी डिफरेंट। बट आई थिंक ये नहीं कि मैं सही हूं गलत हूं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। व्हाट आई थिंक, आई मीन क्या, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि होलिस्टिक के जो गोल पोस्ट है दैट शुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट, मतलब कि दैट इज व्हाट आई एम सेइंग दैट शुड बी। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब इसके साथ मैं इसलिए मैं कंक्लूड करते समय इन बातों को कोट किया हूं। मैंने आपको बहुत ध्यान से सुना सारे लोगों को, और मेरे ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि आप सहमत हो सकता है असहमत हो, किंतु एक मैं निवेदन करके जाऊंगा कि आप लोग बहुत युवा हैं, जितने भी लोग प्रेजेंट किए हैं लगभग सारे लोग कॉन्वेंस के हैं, और आप लोगों को सिर्फ एक मैं सलाह दे सकता हूं जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई है कि बिना पढ़े, बिना उसके एक भी शब्द अगर आप रिसर्च में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि उसके रूप को पता लगाने की कोशिश करिए कि वो क्या है। और हम दो किताब आपके बीच मिलाएंगे, पतंजलि का योग और एक कठोपनिषद। तो अब इन दो चीजों में शायद आपने कम सुना होगा कि पतंजलि की योग में ये कहा गया कि जैसे हम लोगों ने डार्विन का सिद्धांत पढ़ा कि कैसे जीवों का विकास हुआ है, पतंजलि आई थिंक फर्स्ट पर्सन टू एटलीस्ट डिफाइन कि कैसे एक जाति से दूसरे, यानी हमारे जो विकास का क्रम, अभी आपने नोआ हरारी की किताब सुनी होगी जिसमें उन्होंने होमो सेपियंस के डेवलपमेंट की बात की, कैसे नींदरथल भी थे, हम भी थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनुष्य थे, उनके बीच में संघर्ष हुआ और लास्ट में होमो सेपियंस की। ठीक है, तो ये जो मानवता का विकास है, पशु पक्षियों का विकास है, प्लांट्स का डेवलपमेंट है, वो इसके अध्याय में हम आपको एक कैवल्य 5:4 अर्थात का जो चौथा चैप्टर है, इसमें एक आपको श्लोक संख्या बता रहे हैं, श्लोक संख्या 2 ये कहता है कि जात्यंतर परिणाम प्रकृतिया पूरा, यानी एक जात से दूसरी जात में जब हमारा ट्रांसफर होता है या हम इवॉल्व करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं, तो वहां पर प्रकृति का काम क्या होता है कि वह उसमें पूर्णता प्रदान करती है। अब सवाल होता है कि क्या प्रकृति हमको डेवलप करती है? तो यहाँ पर जो पतंजलि है वो ये कहते हैं कि प्रकृति का काम हमको बढ़ाना है, घटाना नहीं। प्रकृति का काम एक किसान के लिए अगले श्लोक में कि जिस तरह एक किसान जब किसी खेत में जल प्रवाह होना है और जहां वो जल अवरुद्ध हो रहा, उस अवरोध को जिस तरह हटाता है, ठीक उसी तरह से जो प्रकृति है वह सिर्फ अवरोध हटाती है। और इस प्रकार से जीवों, जंतुओं और प्लांट्स का डेवलपमेंट होता है। फिर बार बार होता है कि बिग बैंग थ्योरी हमारे बीच में आई या दुनिया में कैसे आया, तो जो क्रिश्चियनिटी है वो क्रिएशन की बात है। उसी तरह इस्लाम में भी क्रिएशन शब्द का मतलब कि अल्लाह ने इन चीजों के माध्यम से सृष्टि को बनाया। हमारे यहाँ सृष्टि की रचना की बात ही नहीं किया कि न किसी ने बनाया न किसी ने घटाया। अब ये श्लोक हम आपको दिखा, ये कठोपनिषद का श्लोक है, अध्याय 3
और इसमें कहते हैं जो हमारे उपनिषद के ऋषि हैं, कहते हैं कि यदिदं किंच जगत सर्वम, मैडम आप संस्कृत में डर लग रहा है मुझे, उच्चारण गलत हो तो माफ कीजिएगा। यदिदं किंच जगत सर्वम प्राण एजत इदिश्रुतम, तो इसमें एक शब्द आया है एजत और अंग्रेजी का एक शब्द है एग्जैक्युलेशन। बेसिकली जिस तरह से एक जादूगर होता है या तो हम लोग फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो देखते हैं, तो हम लोग के जमाने में, पुराने जमाने में एक प्रोजेक्टर होता था जिससे कि वो सामने होता था और फिल्म समाप्त हुई और वो प्रोजेक्शन बंद हो। इसका मतलब कि जो फिल्म का कंटेंट है वो प्रोजेक्शन के भीतर है, ठीक है, वह समय आने पर प्रोजेक्ट करता है और फिर समय आने को वापस ले देता है। तो ये कैसे हुआ, एजेंट कैसे होता था, कहते हैं महास्पंदन, माइग्रेशन, महास्पंदन के माध्यम से प्रकृति का विस्तार और पुनः प्रकृति का वापस आना। तो इस प्रकार से हम इन दो उदाहरणों के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि हमें इन महान ग्रंथों को बहुत ही गंभीरता से खुद कई बार समझ में आया। हमें दो महापुरुषों की इस पर जो टिप्पणियां हैं, जिसमें खासकर लोकमान्य तिलक का जो गीता रहस्य जरूर पढ़िएगा, हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है, और विवेकानंद हम लोग के लिए बिल्कुल लोड स्टार है, दयानंद सरस्वती, तीन लोगों को अगर लोग पकड़ लें, क्योंकि हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। मैडम जी जानती हैं कि संस्कृत को समझना इतना आसान नहीं, तो हम कायदे से, क्योंकि हमारे संस्कृत का ज्ञान कम है, तो हम इन महापुरुषों के माध्यम से चलते हैं, लेकिन जो संस्कृत का विद्वान है वो सीधे इनको पढ़ सकता है। मेरा निवेदन है कि जब कभी भी हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें तो ये देखें कि उनके भीतर वो कौन से तत्व हैं जिन पर हम रिसर्च करके डार्विन के सामने, हम नहीं कहते डार्विन गलत था, हम ये कह रहे हैं कि डार्विन के सामने एक वैकल्पिक सिद्धांत, अब दुनिया को तय करने दीजिए कि वो गलत है। तो इस प्रकार हमने अपनी बात समाप्त की। इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए इस महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और इस मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को हृदय से आभार देता हूँ। और आपने हमें शेयर करने का अवसर प्रदान किया, कि बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर उस विषय का सिद्धहस्त ही करता है, लेकिन इस विषय में सिद्धहस्त मैं हूँ नहीं, ये सभी जानते हैं। मैं राजनीति विज्ञान का अध्यापक हूँ, तो खैर कोई बात नहीं, मैं भी पढ़ रहा हूँ और हर एक अध्यापक को अगर सफल होना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो हम सभी लोग मिलकर पढ़ते हैं, हमें बहुत शुभकामनाएं देते हैं। एक दो रिसर्च स्टाफ का टाइम मैंने खर्च कर दिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि बहुत शुभकामनाएं इस महाविद्यालय को, ज्ञान बहुत टॉपिक भी बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है। हमारे विद्यार्थी, हमारे शोधार्थी और हमारे आदरणीय गुरुजन यहाँ बैठे इस ज्योति को लेकर आगे बढ़ेंगे। और पेपर प्रेजेंटेशन। So the next one is Ms. Aarti Rawat, and she is a research scholar from Lucknow University, and the topic is Gaurav-Shahi Bharatiya Sanskriti, Naitik Moolya ka Satat Vikas. And I will please request everyone now to be within the limits of 4 minutes. Don't exceed that, please. Good afternoon, sir and ma'am. Good afternoon. मेरा नाम है आरती रावत, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की रिसर्च स्कॉलर समाजशास्त्र विभाग से। मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है गौरवशाली भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्य व सतत विकास। भारतीय संस्कृति और उसकी मूल भावना को सच्चे अर्थों में समझने के लिए विशिष्ट दृष्टि की आवश्यकता होती है। यह दृष्टि हमें भारतीय जीवन मूल्य और आदर्शों का अन्वेषण कर उनके सबके समक्ष प्रस्तुत करने का मार्ग प्रशस्त करती है। भारतीय संस्कृति की अवधारणा को हम समझते हैं, संस्कृति का संबंध मानव की क्रियाओं तथा उनके वैचारिक जगत से है। प्राणी जगत में मानव की स्थिति पूर्णतः भिन्न है, जिसका मुख्य कारण उसकी संस्कृति के कारण कि मनुष्य विकास की प्रक्रियाओं में अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक सफल और विकसित प्राणी है। यहाँ पे हम कुछ समाजशास्त्रियों ने जो परिभाषाएं दी हैं, इसमें जी.सी. पांडे के अनुसार मूलतः संस्कृति जीवन की ओर एक विशिष्ट दृष्टिकोण, अनुभव के मूल्यांकन और व्याख्या का एक विशिष्ट और मूलभूत प्रकार है। विचार, भावना तथा आचरण के विभिन्न प्रसारों में संस्कृति की स्थिति है। जिन्होंने अपनी बुक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर में दी है। वहीं एडवर्ड सैड ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में बताया है कि संस्कृति समग्र का एक संकुल है, जिसमें व्यक्ति ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक शिक्षा, कानून, रीति रिवाज एवं अन्य क्षमताओं का व्यवहार मानव समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है। वही रैल्फ विंटर बताते हैं अपनी पुस्तक कंट्री ऑफ कल्चर में
समाज के सदस्यों के जीवन का एक तरीका, इसमें व्यक्ति विचारों एवं व्यवहारों को सीखता है और तथा यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता रहता है। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो संस्कृति के मनुष्य मानव नहीं हो सकता है। मानव की समस्त क्रियाएं, व्यवहार के तरीके और उत्पादन की समग्रता ही संस्कृति है। अगर हम अतुलनीय भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, किसी भी देश के मूल्य, विश्वास, आदर्श और सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक विचार, परंपरागत आचार विचार तथा व्यवहार देश की संस्कृति को दर्शाते हैं। हिमालय से आरंभ होकर हिंदू सरोवर तक में फैला भूभाग भारतवर्ष है। भारतीय संस्कृति जिसे गंगा जमुनी तहजीब भी कहा जाता है, अति प्राचीन, ग्रहणशील, सहिष्णु, अनेक पारंपरिक नैतिक मूल्यों को समाहित किया, नेता में एकता वाली संस्कृति है। हमारा भारत संस्कृति हमें हम क्या है क्या बताती है। और संस्कृति, भारत की संस्कृति को सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा जैव विविधता है, जो हमें विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलाता है, जो हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों से लेकर दक्षिण के उष्णकटिबंधीय सघन वनों तक फैला हुआ है। उत्तर में महान हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर, जो भारत को विश्व का 7वां विशालतम देश बनाता है। और इसी के अनोखे भौगोलिक अस्तित्व के कारण ही यह अलग है। इसमें हम सतत विकास को ऐड करते हुए कि जैसे हमारा जो स्वतंत्रता के बाद में भारत एक विकासशील देश की पंक्ति में जब आया, तो उन्होंने वनों को काटकर कैसे वनों को काटकर खेती का विस्तार किया, बड़े बड़े बांध और नदियों का विस्तार किया। तो जिससे जनसंख्या विस्फोट होने के साथ साथ ही भारत जहाँ एक और विकासशील देशों की पंक्ति में अपने स्थान पर खड़ा था, वहीं दूसरी ओर वनों को काटने से पर्यावरणीय आकर्षण के कारण बाढ़, सूखा, भूस्खलन और सुनामी जैसे भयानक प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ गई। इसी के क्षरण को रोकने के लिए सतत विकास को मैंने अपने पेपर में ऐड किया है। तो सतत विकास की अवधारणा 1980 में प्राकृतिक संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जैसे कि मैं कंक्लूड करने को बोल रही है, तो और समाजशास्त्र में महान समाजशास्त्री भी हैं जो राधाकमल मुखर्जी, जिन्होंने अपनी कई सारी पुस्तकें द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द डायमेंशन ऑफ ह्यूमन वैल्यू, भारतीय संस्कृति, समाज, नैतिक मूल्य और परिस्थिति जैसे कई मुद्दों पर अपने विचार को प्रस्तुत किया है। और उसी में इन्होंने साधन और साध्य की बात की है। उनके अनुसार साध्य वह मानव या समाज जीवन के विकास के लिए अपनाता है, वही साधन मूल्य के तरीके हैं जो हमें साध्य मूल्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। मैं कंक्लूड करते हुए आज राष्ट्र के समग्र व सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण भारतीय मूल्यों व आदर्शों की भूमिका है। भौतिक समृद्धि के साथ अध्यात्म में संतुलन व एकात्म होना नितांत जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र अध्यात्म रहा है, वहीं भारतीय संस्कृति वैचारिक विविधता एवं विमर्श की परंपरा का सम्मान देती है, जो कि किसी भी समाज या राष्ट्र के विकास की गति देने का कार्य करती है। वर्ण वही जड़ों से जोड़े रखती है। युद्ध करना, दया, ये सभी भाव जीवन में महत्वपूर्ण है, परंतु सुख दुख के समत्व का भाव रखना भारतीय मूल्यों के में देखने को मिलता है। हम जीवन में विवेकशील होने की प्रेरणा देते हैं। निष्काय कर्म, लोक संग्रह भाव, सिद्धि असिद्धि में समान भाव रखना, ये सभी व्यक्ति के जीवन, समाज, राष्ट्र के सतत व सुचारू रूप से चलाने के मूल मंत्र हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति हमें चिंतन में गहराई और विस्तार दोनों का समन्वय सिखाती है। ये आदर्श मूल परंपराएं हमें प्रेरणा देती हैं कि जीवन की विपरीत से विपरीत परिस्थितियों और संघर्षों से पलायन नहीं करना, बल्कि उन्हें अखंड उत्साह से उसका विजयी होना है। वैश्विक समाधान प्रदान करते हैं और साथ साथ ही सामाजिक
and she is a research scholar from Kanpur. The topic is राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भारतीयकरण एवं भाषीकरण। Good afternoon to all of you. मेरा नाम स्वातिका है, मैं रिसर्च स्कॉलर स्टेशन। तो मेरा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय साहित्य। शिक्षा एक ऐसा आयाम है जो मानव को मानव बनाती है, अर्थात मानव में बुद्धि, कौशल एवं कई गुणों को विकसित करती है, जिससे मानव का वास्तविक अर्थ होता है। इसलिए शिक्षा प्रत्येक मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत के साथ साथ सारे विश्व में प्राचीन काल से ही शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। शिक्षा के समान पवित्र इस संपूर्ण विश्व में कुछ भी नहीं है। भगवद गीता में भी लिखा हुआ है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे प्रति पुस्तका सुचि चैन स्वपाके च पंडिता समदर्शिता। जिन ज्ञानी जनों को विद्या से प्राप्त होने वाले विनय प्राप्त होता है, विज्ञानी जन ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता व चांडाल आदि सभी प्राणियों में एक समान दृष्टि रखते हैं, अर्थात वे ज्ञानी लोग सभी प्राणियों को परमात्मा का अंश मानते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं करते हैं। और इसी प्रकार हम सभी ने अपने अपने विद्यालयों में कहीं न कहीं ये श्लोक पढ़ा होगा, विद्या ददाति विनय विज्ञान दीयते पादुका धर्म अर्थात विद्या हमें विनय देती है, विनय से पात्रता और पात्रता से धन और धन से धर्म और धर्म से ही सुख प्राप्त होता है। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही गुरुकुल व्यवस्था रही है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को कम आयु से ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुओं के आश्रम भेज दिया जाता था। यह व्यवस्था हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत आदि में देखा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी यह देखी जा सकती थी। भारत में प्राचीन शिक्षा पद्धति उल्लेख हम देख चुके हैं, किंतु आजादी के समय बाहरी आक्रामकताओं, अंग्रेजों का राज होने के कारण उन्होंने भारतीय शिक्षा की नींव को हिला डाला। वर्तमान युग में हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था हेतु प्रमुख शिक्षा नीतियां 1964, 1986 और 2020 लागू हुई। भारतीय शिक्षा नीति शिक्षा की व्यवस्था है जो भारत सरकार के साथ मिलकर समय समय पर शिक्षा विभाग में बदलाव लाती है, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो सके, वे जीवन उपयोगी बन सके। हमारा जो है उस पर हम बात करेंगे कि सर्कल हजमी ने एक मशहूर गीत पे लिखा है, पढ़ो लिखा है दीवारों की मेहनत इसका नारा, पढ़ो पोस्टर क्या कहता है दोस्त तुम्हारा, पढ़ो अगर अंधविश्वासों में पाना है, अंधविश्वासों से पाना है छुटकारा, पढ़ो किताबें कहती है संसार तो सारा तुम्हारा। इसी साथ थैंक यू। सुल्ताना फरहद and she is from SRM University. When girl leads to girl. Very cheerful good afternoon to each and everyone present over here. Today I, Farhad Sultana, a research scholar from SRM University, is going to present my topic. And my topic is Catering to Blessing, the journey of Asian Marina to loving the small creature. This poem, The Rhyme of Asian Marina, is written by S.T. Coleridge, one of the most renowned poets from Romantic era. Now this poem talks all about the Asian Marina, the marina who has killed and bird named albatross. This bird is considered as a Christianity's soul. So how and what he has lost throughout the journey, and its journey where he has awakened his own self. Now, ultimately the theme that provokes the finding is guilt, redemption, interconnectedness of life, and how this marina overcomes over it. The significance that the poem talks about is that people nowadays become ungrateful for everything leading to them, and how we should be grateful to each and everything that God has given us. It's a God limit that we should protect and admire for. We should only learn about the 4 R's of forgiveness: responsibility, remorse, restoration, renewal. Forgiveness is the acceptance of life. Now, what significance this poem is giving to us, what findings I have found is
We should revert to nature. Nature has that power of healing. We should always be grateful what God has given us. Rather than giving the destruction to the nature, we should always love and learn from nature. After all, God is the supreme being and God is the one who has given us everything. There is a famous saying that God's stick has no sound and nature offers some of the world's present and simplest joy. So with the top of Mariners' journey, we should learn to appreciate nature, whether it is small or big things that is coming on our way. And we should always be thankful to God. Thank you everyone. It is Prabhat Yadav and the topic is Prachin Kashmir ki Jaan Parampara. On the dais, respected teachers and my fellow students, my name is Prabhat Yadav. I am the research scholar from the University of Lucknow, Department of Ancient Indian History and Archaeology. मेरा आज का विषय है प्राचीन कश्मीर की ज्ञान परंपरा। प्राचीन काल से ही कश्मीर धर्म और शिक्षा का प्रधान केंद्र था। यह शैव धर्म का प्रधान केंद्र था ही, साथ ही वह बौद्ध धर्म और शिक्षा का भी एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ दर्शन, साहित्य, न्याय, ज्योतिष, इतिहास आदि की प्रतिभा संपन्न विद्वान हुए हैं, जिन्होंने साहित्य और संस्कृत के अनेक ग्रंथों को लिखा। सम्राट अशोक के शासनकाल में कश्मीर धार्मिक संस्कृति का एक प्रधान केंद्र था और बौद्ध और जैन धरोहरों का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से उत्पन्न हुआ। प्रसिद्ध चीनी यात्री स्वयं ने जैन धर्म का उल्लेख किया है। साथ ही उन्होंने कश्मीर में स्थित सारदा पीठ का भी उल्लेख किया है, जो कि प्राचीन कश्मीर की शिक्षा का एक बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र था। यह 5वीं शताब्दी में स्थापित हुआ और 22 शताब्दी तक यह शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र बना रहा। यहाँ एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें विभिन्न विषयों पर हजारों पुस्तकें उपलब्ध थी। सारदा पीठ कई प्रसिद्ध विद्वानों का घर था, जिनमें कल्हण, अवलोक, सोमदेव और दुतनचार्य शामिल हैं। कुछ प्रमुख विद्वान जैसे कि कथा सहित सागर के रचनाकार सोमदेव, हरिविजय रचनाकार, बृहद कथा मंदिर, रामायण मंदिर, भारत मंदिर, बोधिसत्वदान के लेखक क्षेमेंद्र, कला विलास, चतुर्वर्ग संग्रह, चारुचर्या, नीति कल्पतरु आदि ग्रंथों के प्रणयन करता सोमेंद्र लल्लदेव कश्मीर के प्रसिद्ध सुफी कवयित्री थी। उनके श्लोकों का संग्रह लल्लवाद के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी कविताएं आध्यात्मिकता और जीवन दर्शन से भरपूर है। शेख नूरुद्दीन कश्मीर के प्रसिद्ध सूफी संत, जिन्होंने रश के अदब नामक एक प्रसिद्ध कविता संग्रह लिखा। नैसर चरित्र के लेखक श्रीहर्ष आज ये सभी कश्मीर के निवासी। तंत्र और अलंकार शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान अवलोक, जिन्होंने रस सिद्धांत को की मनोवैज्ञानिक व्याख्या कर अलंकार शास्त्र को दर्शन के उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित किया। अपने लंबे जीवन काल में उन्होंने 35 से अधिक पुस्तकों की रचना, जिसमें शामिल है अवलोक और प्रसिद्ध तंत्रलोक नामक ग्रंथ, जो कौल और कृता के सभी दार्शनिक और व्यवहारिक पहलुओं पर एक विश्वकोश ग्रंथ है। प्रसिद्ध कश्मीरी इतिहासकार कल्हण ने राजकरण ग्रंथ लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। इसी ज्ञान परंपरा को कश्मीर के विद्वान चौरनाथ और श्रीवर ने आगे बढ़ाया और द्वितीय और तृतीय आयतन की रचना की। इस प्रकार प्राचीन कश्मीर की ज्ञान परंपरा ने भारतीय सभ्यता में अपनी अनूठी पहचान बनाई है और इसने साहित्य, कला, धरोहर और धर्म के क्षेत्र में अपने देश की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद। And this topic is Indian knowledge tradition in the Mahabharata. Good morning everyone. My name is Vivek Yadav. I am a research scholar in Ancient Indian History and Archaeology Department, University of Lucknow. And today I will be presenting my paper on the topic Indian knowledge tradition in the Mahabharata. Indian knowledge tradition is a rich and diverse amalgamation of intellectual and cultural practices that have been developed over thousands of years in the Indian subcontinent. For example, the Smritis, which includes a vast body of literature that covers law books, that is Dharma Shastra, Itihas, that is ethics, like Mahabharata and Ramayana. The Mahabharata is not only a story of Kurukshetra war, but also a comprehensive treasure that has shaped the Indian knowledge tradition. The national education policy of India emphasizes the importance of integrating cultural and knowledge practices into the educational content.
The Mahabharata rich tradition can serve as a fundamental pillar for developing a contemporary education system that is deeply rooted in the Indian ethos and yet aligned to the global standards. When writing the key conversation in the section of the Mahabharata, such as Bhagavad Gita, Anushashan Par, Shanti Par, Vidurniki, the story of Nachiketa, or the story of Eklavya and so on. I will try to highlight the contribution of Mahabharata to the Indian knowledge tradition. The epic Mahabharata grew over time, reflecting the contributions from various parts of India. The NAT similarly recognizes the importance of diverse perspectives and knowledge transmission. Both the oral tradition of the Mahabharata and the NEP recognize the education as a means to empower individuals in society. Now, let's take an example of Bhagavad Gita. The Gita emphasizes fulfilling one's duty, that is dharma, without the attachment to the result. Like Arjuna's dilemma, which mirrors the real-life ethical choices. The NEP encourages holistic education that instills values and self-control. It emphasizes character building and understanding one's roles in the society. By integrating Indian knowledge tradition, ethics, and holistic education, India can build a vibrant knowledge society. Now let me conclude with a very short story. A boy named Eklavya dreamed of becoming a great archer. He wanted to learn archery from a famous teacher, Dronacharya. Since Eklavya wasn't from a warrior family, Dronacharya refused to teach him. However, this setback didn't stop Eklavya. He remained firm in his goal and decided to teach himself. A perfect example of self-learning. The dedication of Eklavya paid off, and he became an excellent archer, even better than the many royal students Dronacharya himself was teaching. Eklavya's narrative is a representation of Indian ethos, which shows that the knowledge is not the sole province of a privilege, but a treasure accessible to all who seek it with sincerity and dedication. The new education policy of India aims to democratize knowledge and provide equal opportunities for learning. Similarly, the Eklavya's story serves as an inspiration for inclusivity and equity in education. The story teaches us that knowledge should be accessible to all, regardless of the social or the economic condition. Thank you. Thank you. You want to do? So we have Ms. Pragya, teacher, and my fellows. मेरा नाम प्रज्ञा तिवारी है। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग की शोध छात्रा हूँ। मेरा आज का विषय है गुरुकुल विद्या परंपरा में शिक्षा के विशेष महत्व का विश्लेषण। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, जिसमें विद्या, संस्कृति और आध्यात्मिकता के मूल्य शामिल हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूर्णता और बहुउद्देशीय शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया है, जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों के साथ मेल खाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य ही व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना था। इसका आधार अनुशासन व मेहनत था। इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत अद्वितीय गुरु शिष्य संबंधों ने एक सृजनात्मक एवं आदर्श वातावरण को बढ़ावा दिया है। इसमें छात्रों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने गुरुओं से ज्ञान अर्जित करें और अर्जित ज्ञान को अपने जीवन में इस्तेमाल करें। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली एक अद्भुत और शैक्षिक साधन है, जो विद्यार्थियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं में समृद्धि प्रदान कर सकती है। इसके अंतर्गत छात्रों को प्राचीन विद्या एवं विज्ञान की शिक्षा मिलती है, जिससे उनका बौद्धिक विकास एवं समृद्धि होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुभवात्मक शिक्षा के महत्व को मानती है, जो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का मौलिक पहलू है। इसमें विशेषज्ञता और विकास का मौका मिलता है, जो छात्रों को समग्र विवादों और चुनौतियों का सामना करने को तैयार करता है तथा छात्रों को समृद्धि, आत्मविश्वास एवं नैतिकता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय सांस्कृतिक विरासत एवं परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन को महत्वपूर्ण मानती है, जो गुरुकुल शिक्षा के भावनात्मक संकल्प के साथ मेल खाता है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं, जैसे कि विद्यार्थियों का गुरुओं के संपर्क में उनके कुल अथवा परिवार का अंग बनकर रहना, ब्रह्मचर्य पूर्वक सरल एवं तपस्यामय जीवन बिताना, चरित्र निर्माण एवं शारीरिक विकास पर बौद्धिक एवं मानसिक विकास की भांति भी पूरा ध्यान देना, शिक्षा में संस्कृत को अनिवार्य बनाना तथा वैदिक वाङ्मय के अध्ययन पर बल देना, शिक्षा के लिए कोई शुल्क न लेना तथा शिक्षार्थी को परीक्षा के दोषे से मुक्त रखना आदि को महत्व देना उस समय की शिक्षा में एक अत्यंत सराहनीय कार्य था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, संवर्धित करने के लिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के महत्व को मानता है। यह आधुनिक समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है एवं संपूर्ण शिक्षा पर बल देने के कारण यह वर्तमान पीढ़ी के लिए अत्यंत
She is from महिला महाविद्यालय बहराइच और इनका टॉपिक है भारतीय ज्ञान परंपरा का नई शिक्षा नीति पर प्रभाव। और सभागार में अब तक जो साहसी श्रोता बैठे रहे हैं, क्योंकि मैं सबसे अंतिम हूँ यहाँ पे, तो उन सबको भी मेरा प्रणाम। मेरा रिसर्च पेपर तो जो मैंने लिखा था वो गाड़ी में रह गया, तो इसलिए मुझे क्योंकि बोलना था, तो जो कुछ भी मेरे पास बचा है वो मैं बोल दे रही हूँ। वैसे भी सब इतना ज़्यादा बोल चुके हैं कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन मुझे आना था 2 मिनट, इसलिए मैं आई। तो सभी लोग, हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से ही बात शुरू करते हैं। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो हम लोग अब तक जो भी बात कर रहे थे, तो उसमें यही हम लोग बात कर रहे हैं। मैं रिसर्च पेपर से नहीं बोल रही हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा भटकेगा, लेकिन कि ऐसा है वैसा है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी कोई किसी चीज की हम बात करते हैं तो उसकी सीमाएं भी होती हैं। अगर उसमें कुछ गुण होते हैं तो उसमें दोष भी होते हैं। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए मैं यही कहूंगी, उसमें बहुत सारे गुण हैं, तो उसमें बहुत सारी उसकी सीमाएं भी हैं। दोष तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि दोष तो हम हटा लेंगे, दोष तो हम धीरे धीरे हटा ही लेंगे। तो हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान के आलोक में बनाई गई है। बस उसी की मैं 2-4 बातें करना चाहूंगी। सबसे पहले तो जो इसमें मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी, और ये जरूरी भी है, कि मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि हमारी मातृभाषा में हमको इंस्ट्रक्शन दिए जाए। ये बहुत ही अच्छी बात है। सरकारी स्कूलों में जरूर हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे उपेक्षित ना रहें, हम उन्हें उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा गया, तो ये इसका एक बहुत अच्छा पहलू है। हमारे हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे रहने को सूल। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह एक बहुत ही अच्छी बात है कि मातृभाषा को प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि इसके भी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन मैं उन पर ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है। दूसरी बात, जो इसमें दूसरा एक रखा गया है, इसकी की पॉइंट्स है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, इसमें साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स को ब्लेंड कर दिया गया है, एक में आ गया है कि हम अगर साइंस पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, तो हम आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत अच्छा पहलू है कि जब तक हम साहित्य को नहीं पढ़ेंगे, अब तक हम लोग ये समझते थे कि साइंस पढ़ना और कॉमर्स पढ़ना वो संवेदनशील नहीं होते हैं, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति संवेदनशील नहीं होगा तो तब तक वो एक अच्छा डॉक्टर भी नहीं बन सकता और एक अच्छा अर्थशास्त्री भी नहीं बन सकता। तो बस मैं यही कहूंगी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मेरे हिसाब से यह एक अच्छी बात है, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं कि अगर जो बच्चा नहीं पढ़ना चाहता तो हमें उस पर मजबूरी से ये थोपना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो ये कहती है कि हमने स्किल्स अलग अलग हैं, उसने वोकेशनल और करिकुलर ये सारी एक्टिविटीज दी है। तो हर बच्चे की अपनी स्किल होती है, तो कोई जरूरी नहीं कि अगर वो ना पढ़ना चाहे साइंस और कॉमर्स का बच्चा तो उस पर ये थोपा जाए। लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि प्रेमचंद कहते हैं कि जिस साहित्य से हमारी सुरुचि ना जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति ना मिले, हमें शक्ति और गति पैदा ना हो, हमारा सौंदर्य प्रेम ना जागृत हो, जो हमें सच्चा संकल्प और कठिनाइयों से लड़ने के लिए प्रेरित ना करे, ऐसी पढ़ाई से हमें कोई लाभ नहीं। तो ये जो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स को ब्लेंड करने की बात है, मुझे लगता है इससे साहित्य का, पढ़ाई का जो ये उद्देश्य है, ये आगे सामने आएगा। बस लास्ट बात ये है कि हम लोग कह रहे हैं कि हमारी भारतीय जो विज्ञान परंपरा है उसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत प्रभाव है। तो सच बात है, हमारी गुरुकुल परंपरा और हमारे वेद उपनिषद, हमारे उपनिषदों में ये कहा गया है कि हमारा ज्ञान जो है कर्मठ होना चाहिए, हमारी जो विद्या है उसके संग हमारे कर्म भी जुड़े होने चाहिए। तो हमारे वोकेशनल और को करिकुलर ये बात हमारी
जीवनदायक है और जैसा भी है ध्वंस से बचा रखने लायक है। और पानी का छिछला होना, संपन्न होकर दौड़ना क्रांति होती है, लेकिन पानी अगर घाट में बढ़ता है तो वो गहरा होता है। और हमारी परंपराएं यही काम करती है और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। सभी को मेरा प्रणाम, सभी ने मुझे समय दिया, इसके लिए सभी को एक बार फिर से आभार और धन्यवाद। Dr. Neetu Singh, please come and share the name of the best presenter with us. Please come and share his titles with us. Namaste. Very good afternoon to all. जैसा मैं मानवता दृष्टि से आया हूँ, मुद्दा पे ही कहूँ और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय प्रोफेसर मंजूराव उपाध्याय को। इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय संगोष्ठी है इसके कन्वीनर डॉक्टर एस सिंह को और पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को जिन्होंने हम लोगों को मौका दिया। विद दिस मंचस्थ डॉक्टर नीतू सिंह मैडम, प्रोफेसर सी उपाध्याय जी, जज के डॉक्टर अमृत मिश्रा जी, बड़े अच्छे संचालन करने मिला और यहाँ बैठे सभी रिसर्च स्कॉलर्स जो प्रोजेक्ट किए हैं आज पार्टिसिपेंट्स तो बड़े आयन निजा परोविधि गणना लक्ष्यता उदार चरिता ना उपस्थित संपूर्ण मतदान हमारा कुटुंब है और ऐसा भाव भारतीय ज्ञान परंपरा में है। और जब बात करें टॉपिक की तो कहते हैं इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें पार्टिसिपेंट्स ने चाहे रिसर्च पेपर हो या उनके कुछ थॉट्स हो इस टॉपिक को लेके प्रेजेंट किया। स्टार्टिंग विद डॉक्टर रंजना एंड द लास्ट डॉक्टर सीमा। पहले रिसर्च स्कॉलर हैं उनके लिए तो 2-3 संक्षिप्त बातें जरूर बताऊंगा मैं। जब आप पीपीटी से प्रेजेंट करें तो आपको सिर्फ लैपटॉप नहीं देखना, यू हैव टू फोकस ऑन योर पीपीटी। तो आप ज्यादा जीवंत और सजीव प्रसारण कर सकते, बता सकते हैं। फिर हम वहां देख के बताएंगे तो आपको लगेगा कि हम ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं और सामने वाला जो बैठा होगा तो ज्यादा से ज्यादा ग्रास करेगा आपकी बातों को। इसलिए हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा, टॉपिक मस्ट बी रिलेवेंट टू द सेमिनार और जो एरिया है। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में आया और हम चले आए और कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। तो हमें इस पे भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट है टाइम लिमिट, जो शुरू में बता दिया जाता है कि है 5 मिनट तो स्पीक ओवर है, और जबकि उसमें 2 मिनट 3 मिनट तो क्वेश्चन आवर होता है जो इसमें लिया नहीं गया, जबकि होना चाहिए था तो अच्छा होता। इन सब ध्यान हमें देना चाहिए। फैकल्टी मेंबर सबको ध्यान देना चाहिए। जैसे कहते हैं कि एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी ने कहा कि बेटू की ओर चले, तो उसका सामने से हमारे उपाध्याय सर ने बोला कि चलें तो क्या चलें और वहां से सीखें तो कैसे इम्प्लीमेंट करें। और मुझे लगता है कि एनईपी हमें वो मौका दे रही है कि हम उस विषय की तरफ जाएं, फिर से वापस जाएं, पढ़ें, समझें और फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और इसलिए बहुत शॉर्ट में कहते हैं कि नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुरातन से अधुनातन की तरफ ले जाती है, प्राचीन से नवीनतम की तरफ ले जाती है, नवीनता की तरफ ले जाती है और जड़ से जगत को जोड़ने वाली ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। कि हमें मौका है, जैसे हम कहते हैं हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, बहुत यूनिवर्सिटी ने कर दिया, हमारी यूनिवर्सिटी ने भी 2021 से ही कर दिया। उसमें बहुत व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं, इसलिए यूजीसी ने कह रखा है कि वर ऑल ऑटोनॉमस, यू कैन इम्प्लीमेंट इन ऑन वे, लेकिन
अपने करियर, तो उसका एक ऐसा फोकस रहे कि बच्चों के करियर पे इफेक्ट ना आए साथ साथ, और वो हमारे लिए रोल मॉडल बने जिससे हम सारी यूनिवर्सिटियां ऐसे इम्प्लीमेंट कर पाए। तो उसमें बेसिकली दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि मेजर माइनर वोकेशनल, मेजर में दो, डिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी। इसी तरह माइनर में दो, डिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी। कब हम इसे चेंज कर पाएंगे, कहां तक ले जाएंगे, और फिर इसको किस लिए किया गया नाम ऑनर्स डिग्री। वैसे तो उद्देश्य डिग्री का नहीं है, तो हमें इन सबको ध्यान देके वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट के लिए, यानी जो पढ़ रहे हैं आप उसको इरादे स्किल कैसे यूज करेंगे, वो चाहे सोशल साइंसेस में हो या साइंसेस में हो, उसके लिए हमें प्रावधान खुद से करना है। हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हमारी व्यवस्था क्या है, उस रिसोर्सेज और व्यवस्था के अकॉर्डिंगली हमको अपना सिलेबस सेट करना रहेगा। और किस तरह के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जनजाति, ऐसा कहा जाता है राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, तो हम लोगों की लोकेलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हैं, तो हमें उसके लिए फोकस क्या अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके पास विशेष औषधि ज्ञान है, उसको हम एनरिच कैसे कर पाए, ऐसा रिसोर्स सेंटर डेवलप कर पाए। दूसरा कोलैबोरेटिव, अगर हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो किसी पड़ोस के बगल की यूनिवर्सिटी में कॉलेज में है व्यवस्था, तो कैसे कोलैबोरेट करें, लैब फैसिलिटीज कैसे जनरेट करें, वर्चुअल लैब्स कैसे जनरेट करें, ये हमको थोड़ा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और फिर हम परंपरा में हम कहते हैं बहुत करादी से सुनिए, आचार करादी, आचार करादी एक कण आदि, यानी पार्टिकल और परमाणु, अणु परमाणु का वहां 5000 वर्ष पूर्व जब डाल्टन ने सिद्धांत दिया था, 2500 वर्ष पूर्व उनके पहले उन्होंने सिद्धांत दिया था। तो ये हमें अब चिंता करके उस पर विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत है हमारे पास, मार्कोनी का है, मार्कोनी का पहले दिया हुआ है, पहले ना किसी ने दिया, बोस ने भी बताया आपको, मार्कोनी ने उसको किया। उनके भी जिन्होंने, जिसे हम कहते हैं कि विदेशी विश्वविद्यालय या उनके साइंटिस्ट हैं, उनके योगदान को भी हम नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जो हमारी है परंपरा, उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया इसका कहां से लिया। इसलिए कहते हैं कण कण में भगवान है, ईच पार्टिकल है एनर्जी लाइक ए गॉड पार्टिकल। जैसे हम कहते हैं गॉड पार्टिकल की बात करते हैं, अभी कुछ पहले बहुत खोज हो रही थी गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसान, तो बहुत साइंटिस्ट अपने आ रहे बहुत ऐसे योगदान दिए हैं। उस एनर्जी को कैसे रिलेवेंट तरीके से हम लेके आए, वैज्ञानिकता के तरीके से कैसे लेके आए, और सब बहुत लोग काम कर रहे हैं। प्रोफेसर सुभाष काक हैं, आप कभी यूट्यूब पर डालिए प्रोफेसर सुभाष काक, तो आप देखिए इंडियन नॉलेज सिस्टम में कितना ज्यादा पढ़ा है उन्होंने। धर्मपाल जी की बात कर रहे थे, इतना बढ़िया लिखा है कि हमारी परंपरा पहले कैसे थी जो हम भूलते चले गए। हमारे 8 स्कूल थे बड़े बड़े, तक्षशिला, नालंदा, काशी, ऐसे ढेर सारे स्कूल थे हमारे पास, वो सब हम भूलते चले गए। खैर नालंदा बहुत अच्छे तरह से बन रहा है, कभी आपको विजिट करने का मौका मुझे जरूर जाना चाहिए। तो अंततः ये है कि ये शिक्षा नीति छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए, और सर्वांगीण विकास में भी कई क्वेश्चन आए, तो वो बहुत ऐसा है, क्या होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या हो सकता है, ये अलग अलग लोगों के अलग हो सकता है, लेकिन अंततः यही है कि उसका पूर्णता मानसिक से लेके शारीरिक तक पूर्ण विकास होना चाहिए, शैक्षिक तक पूर्ण विकास होना चाहिए। और इसी बात के साथ मैं पुनः सबको धन्यवाद दूंगा, मैडम को धन्यवाद दूंगा। थैंक यू। सम्मानित मंच और सभी प्रतिभागी, सर्वप्रथम तो मैं आभारी हूँ यहाँ की प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय मैडम का, जिन्होंने हमें अवसर दिया यहाँ सेशन को चेयर करने का, और डॉक्टर ऐश्वर्या जी का जो कन्वीनर हैं, इन लोगों का आभारी हूँ, और इस नवयुक्त कन्या महाविद्यालय का आभारी हूँ। अभी जो प्रेजेंटेशन चल रहा है, लगभग 15 प्रेजेंटेशन दिए हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी इसमें जितने अधिकांश लोगों का यही रहा है, आते हैं अपना कुछ इतिहास टाइप का या कुछ इस टाइप का लेकर चले आएंगे और उसको पढ़ रहे हैं लगातार।
भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत असीमित ज्ञान है, तो इसको आप चाहे जहां से उठाएंगे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन आप जब पढ़ते हैं इसको तो एक तरफ से पढ़ते चले गए, उसमें कुछ नहीं पता चलता कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं। किसी ने अभी बताया कि इधर हिमालय है, इधर वो पड़ता है, इधर वो पड़ता है, इधर पहाड़ है, इस टाइप से। ये तो सभी को पता है, आपको लॉजिक देना है इसमें। आपको हर चीज का जो भी आप कोई कहानी सुना रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं भारतीय ज्ञान की या प्राचीन ज्ञान की या किसी इतिहास की बात कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम लॉजिक आनी चाहिए कि क्यों भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की जा रही है, क्यों राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा बेस्ड बनाई गई है। इसका कारण होगा ना, तो इस कारण पे आपको सोचने की जरूरत है। और होता क्या है कि आप पेपर लिखे और सीधा उसको पढ़ लिए। तो इसीलिए सरकार ने जब सोचा भारतीय ज्ञान परंपरा के बेस पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के लिए 33 करोड़ सुझाव उस समय आए थे। 33 करोड़ सुझाव आए थे, मतलब ये समझिए कि कई देश, बहुत सारे देशों की आबादी 33 करोड़ नहीं है। कई देशों को हम मिलाएंगे तब 33 करोड़ की आबादी पहुंचती है, और उतने सुझाव आए। और इस सुझाव के बाद स्थिति ये बनी है कि एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट आया है। कई बार ये भी मन में आता होगा कि पहले भी 2 शिक्षा नीतियां आ चुकी हैं, तीसरी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि 1968 और 1986 में आ चुकी। उसका कारण है कि 1968 और 86 में जो स्थिति थी कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब से लेकर के जब देखा गया कि मात्र 36% आबादी स्कूलों तक किसी तरीके से पहुंच रही, तो प्रयास किया गया। सबसे पहले तो उन 2 शिक्षा नीतियों के माध्यम से प्रयास किया गया कि सभी को स्कूलों से जोड़ा जाए, सभी स्कूल तक पहुंचना सीखें, हमारी पहुंच वहां तक हो, स्कूलों तक पहुंच आई। अब जब सरकार को लगा कि अब स्कूलों तक पहुंच हो गई है, तब ये लगा कि किस तरीके की शिक्षा नीति अप्लाई की जाए जिससे कि हमारा राष्ट्र एक बार पुनः पूरे विश्व में अपने ज्ञान की पताका फहरा सके। अब बात आती है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में ऐसा क्या है, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा के बेस पे बना दी गई है। तो आप ये समझिए कि जब भी बात आती है, चाहे वहां पढ़ेंगे समग्र विकास, यहाँ समग्र विकास से भी आगे के लिए सोचा गया है। शिक्षा नीति समग्र विकास से आगे की बात की गई है। समग्र विकास से आगे का 3 बिंदुओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। एक तो हमारा समाज में क्या योगदान, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है समाज। दूसरा, हमारा राष्ट्र में क्या कंट्रीब्यूशन है। तीसरी बात, पर्यावरण में कंट्रीब्यूशन की गई है कि समाज को हम क्या दे रहे हैं, राष्ट्र के निर्माण में हमारी क्या भूमिका है। और जब पर्यावरण की बात आती है तो प्रकृति, प्राणी और मनुष्य तीनों के सामंजस्य की बात, क्योंकि सामंजस्य आज खो गया है। आज कोई बात आती है, आज हमको जीवों के प्रति दया नहीं रह गई। जीवों की बात छोड़ दीजिए, इंसानों के प्रति दया नहीं है जो हमारी तरह बोलचाल दे रहे हैं, उनके प्रति दया का अभाव चला गया है, कहीं न कहीं मुद्दों का ह्रास हुआ है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा बेस की बात आई। रही बात राष्ट्र की, जैसे ही आपको समय मिलता है या किसी को भी इस समाज में, जब तक आदमी नौकरी में नहीं आया रहता है या जब तक आदमी किसी पद पे नहीं रहता है, तब तक उसे ये लगता है कि मैं पहुंचूंगा, मैं बदल दूंगा सब कुछ। लेकिन वो बदलता नहीं, वो बदलने का छोड़ देता है और अपने आप को बदल देता है, अपने आप को बदल देता है कि यही एक कमी है। इसलिए भी भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की जा रही है। समाज में हमारा क्या योगदान है? कारण यह है कि हम समाज में ही अपने स्वार्थ की बात करते हैं, अपने स्वार्थ की तरफ भागते रहते हैं। और जब भारतीय ज्ञान परंपरा की बात आती है तो ईशोपनिषद का एक श्लोक है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृहः कस्य सुधनम्। अर्थात इस संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां ईश्वर का वास नहीं है। ये हमारी भारतीय जीवन दृष्टि कहती है, भारतीय ज्ञान परंपरा कहती है, कोई ऐसा स्थान नहीं। और उसके बाद कह रहे हैं तेन त्यक्तेन भुञ्जीता,
ईश्वर का वास है और पहले हमें त्याग की बात करनी है, उसके बाद हम भोग की बात करेंगे। 3 तकते हैं हम, पहले त्याग की बात करनी है, फिर उसके बाद बिना त्याग के भोग संभव नहीं है। समय भी काफी कम है, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, तो हमें पहले त्याग करना है, उसके बाद भोग की बात करना है और स्वार्थ की भावना को छोड़ना होगा। भारतीय ज्ञान परंपरा यही सिखाती है और समय को देखते हुए ज्यादा कुछ अब नहीं कह सकता क्योंकि आगे का सेशन होना है, इसलिए यहीं पे मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। बहुत धन्यवाद। Dr. Neetu Singh to give the best, present the name and सेशन में कुछ चीजों का हमने थोड़ा सा ध्यान दिया है, जिसके बेसिस पे हमने 2 बेस्ट पेपर्स निकाले हैं। कंटेंट तो था ही भाई, उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन टाइम ओवरऑल कई कैंडिडेट के हमने देखा जो यहाँ प्रेजेंट करने आ रहे थे, कंटेंट अच्छा था लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं था, टाइम की मॉडरेशन नहीं थी, बहुत सारी चीजों को फैक्टर्स न्यूनेस नहीं थी, ओरिजिनलिटी नहीं